A very good morning to everyone who is joining us for the live broadcast of yet another day of hockey. And we are coming all the way live from Ranchi in the state of Jharkhand. This is Mayur Barwa with a mic, and in some time we'll be joined by a distinguished Hindi commentator, Mr. Shami Malam. And it's going to be Delhi versus Assam. And we're here because it's the 16th Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. Coming all to you, all these pictures coming live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. That's me, Spit My Huntia, a very well known official in the circuit. And it's Assam, all the way from Northeast, the girls coming right here in the center, playing versus Delhi. In orange, playing the girls, in orange and black, rather playing the girls from Assam. In yellow and black are the girls from North India, from the capital Delhi. And attack already in the striking circle. It's a good way to start off, isn't it? Early morning. And early morning it is for Delhi. In 23 seconds, you get the penalty corner. Oh, what a mistake from Assam. Early morning to get your brain moving. This is not something they were expecting for, and not hugely. It might be favoring you if it just misses injection and trying to slap the ball. It's still curving towards the left corner. Assam doing very well with their defenses to take the ball away. So Delhi loses the first chance within 23 seconds of trying to insert a goal. It remains at the 0-0. What should have been a very superlative one, I believe. It will not be hinting too much, but they still survive. They still say it's something which might be remotely just wanting, trying to play it up. Let's see what happens. Dregs crosses, he makes a 360-degree angle, trying to breach and break the defenses. No, second time also couldn't do it. Reversing the angle straight into the pads of the goalkeeper of Assam. So that's a very nice movement. Assam on the counter attack. Love to see these girls just going onto a very nice circle where it can be just made into a nice movement. So that's what you need early on. It will be very, very interesting if they can just go on and spar up and sparkle it up. Very interesting. From the right flank, again, Delhi on the ascendancy. The ball going very much out of bounds. It'll be, and this is how you want to just get it going. And I believe and to take it all up, these girls always knows. And if I have to tell the back line, and if I have to give you a piece of history of what happened the last time Delhi versus Assam, it was a forfeited encounter. That was in the 12th edition. And since Delhi, and it was because Delhi didn't turn out to play, so Assam got a 5-pointer and resulted in a 5-0. So this is a piece of history which Delhi doesn't want to repeat, and it didn't turn up today. So that was in 2022 at the 12th edition. And if I have to go for what the statistics beckons before this match have started, this is the Pool A Division B match that you're witnessing, Delhi versus Assam. Curving inroads, trying a tomahawk, but the ball will go not anywhere closer towards the goal post. So Delhi has played three. So this is the fourth match that Delhi is playing, and out of which they have won two encounters. They've lost one match out of those two. So first match they started off with a 2-0 win versus Bengal, and
then 2-1 versus Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, and just lost the last and lost 0-2 versus Tamil Nadu. In fact, both the teams, Assam and Delhi, lost their encounters versus Tamil Nadu. But for Assam, they played three. They have won just one match and but lost two encounters. Started off with a loss versus Dadra and Nagar Haveli, very close match that one was, which they lost 3-4, and then lost heavily 1-5 versus Tamil Nadu. To pinpoint, Assam actually scored the first goal versus Tamil Nadu. They were 1-0 up, but finally they got five goals against and then lost 1-5 with that solitary goal coming from Chayanika Kalita, who has now two goals in total. And then last match they won 3-2 versus Bengal. And if I have to again versus Bengal, they were leading by 2-0, and then in fact, Bengal were leading 2-0 in that match, and then Assam made scored three goals to make it 3-2 eventually. If I have to buy Farket the goals column for Assam, and it was Bhumika Devi who made a field goal in the 3-4 versus Dadra Nagar Haveli. Chainika scored a field goal. Josna Ekka scored a field goal. In the loss of 1-5 versus Tamil Nadu, it was Chainika Kalita who scored a field goal. And then win of 3-2 versus Bengal. Josna Ekka scored a field goal. Tanu Yadav a field goal, and Josna Ekka a field goal again. So Josna Ekka has three goals in total as of now for Assam. And for Delhi, Deepika Bhavna has a penalty corner versus Bengal. Bhavna has a penalty corner in the match versus Bengal. They won 2-0. And then 0-2 versus Tamil Nadu, they lost, no goals. And in that winning match, 2-1 versus Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu, it was Deepika at a field goal and Ashna Kamboj with a penalty corner. So those are the goals that has been scored, with Deepika now having two goals to her name in the contest. Slams it very hard and goes out of bounds. The idea is correct. It's 9 minutes remaining in the encounter in the first quarter. It'll be very nice to move, and they are of the this is the 16th, so really well done by Hockey India. They are celebrating 100 years of its existence. They've been so nice, isn't it, the way they have been supportive of the proceedings of getting into hockey. And so some good character building also, which happens when you know that these are the girls who can just sum up and clean up this history. So penalty corner was there. Delhi on the brink of trying to break and open up the scoreline, trying to trickle the ball up. Goalkeeper very much up against Assam, making a vast corridor. Umpire Pritmai Huntia says, I can see the leg getting touched with the hockey ball, and signals awards a penalty corner to Delhi. Trying to get a very vast angle onto that ball was Assam. Unfortunately, couldn't get it, and that will be the end of the story. So they will be very disappointed of not making much of that going move. They started off, slams it, doesn't get it. Trying to put so much of angle onto it. It's been honestly inappropriate, if you have to say, how the players now trying to go again in a business angle. And one of the stories that will tell you that the more you get to know vastly all the players, as you do more of your homework, that will actually allow to settle in your paces. But again, it's all about how you talk it about, and
Again, as they say, it's always easier said than done. That's what actually happens, to tell you. So remotely, that's what it will be, as you try and check of what lies for you ahead. Nicely done. There's this place right at the center. 6.5 minutes remaining. That's little less than 7, I would say. Trying to put it majorly as that crisscross angle comes. This is really good. Just see what happens. Lost and made it through. This is really good. Did they say, now there is a time up signal? Some must be claiming something that there needs to be probably a penalty con. I'm sure that's they are asking, if I see it a little correctly. It might just be the captain was trying to signal it up. And this is what you want for the players to come up with my Huntia. That's Miss Madhu Kumari, the umpire today. Assisting them is the reserve umpire Miss Anjali Rathore. Timing judge is Miss Shweta. And the scoring judge is Miss Kanishka Chauhan. And technical officer is Miss Pratima Tirki. You have gone upstairs. Let's see what transpires. It's 0 for Delhi and 0 for Assam. And given a penalty corner, so the review for Assam is a blessing for them. And they have asked it, they have got it. They'll be very happy of the way they've got it. So the review stays for them. About Assam, that was the captain Urang Manaksi. The goalkeeper is Tarali Baro. The coach is Mr. Anand Shankar Pathak for Assam. Injection has been done, slamming from the left angle. Ball has gone out of bounds. Penalty corner has gone in vain for Assam. For all those reviews and to get nothing will be disheartening. Delhi is pressing a hard control on the attack immediately. Talk about Assam's lineup, starting off with the goalkeeper Tarali Baro. We'll talk about it a bit later, as Delhi has made a corner trying to slam it from inside the striking circle. Couldn't get it rebounds from touching of one stick, I believe, of Assam hockey. Then Pari Saikia, Josna Ekka, Sangita Romoni, Niharika Pathak, the captain Manasi Urang, Tanu Yadav. She has a goal to her name in this tournament. Then you have Chayanika Kalita, you know her, 2 goals to her name. Bhumika Devi, Kashmiri Pait, and then An Sumai Baro. The coach is Mr. An Shankar Pathak. For Delhi, the goalkeeper is Arti Priya Ritika Ashna Kambu. She's been such a tremendous player. She's got goals to her name. Ritika and Divya, and the captain Deepika, Jyoti, Ashta Divedi, Bhavna,
and Tanu. The coach is Mr. Krishan Kumar, and the team manager is Miss Shikha, and team manager for Assam Hockey is Miss Geetika Kalita Deka. So those are the players and the match officials which are playing in this inaugural in this first match here on day number 7. We'll be having a total of 6 matches today. So I'll be there for this match, and then I'll be joining in for the 2:45 p.m. match, and the rest of them will be covered by Mr. Shami Malum, a good human being and a commentator for the last 40 years. So much to learn from Mr. Shami Malum. He also hails from the same city where this tournament is being played in Ranchi in Jharkhand. Watching all those action live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. So use #India ka game, the hashtag for this tournament. That has been generally with a hashtag for all the tournaments and for official Hockey India. Also visit www.hockeyindia.org to get right behind all the action, and don't forget to download the official app of Hockey India and also of Hockey India League to get all the action, fixtures, tournaments, your favorite players, photos at the tip of your fingertips, so that you don't have to go anywhere else. And so it's always good to be right behind what's happening at a national sport of India and a game that you so much dearly love, and potentially working Hockey India working tirelessly behind the scenes to get everything under one umbrella, so that you are not missing out on anything. Assam now carrying on with the march of a home to open the scoreline. No goals have been scored yet in quarter number 1. Whoa, how she rotates herself just within the striking distance of the 23-meter circle. Right for a foul play acknowledged by umpire Ms. Pritmai Khunti. Getting a good long handle, but slams in straight into the coffers of Delhi Hockey, who gets the ball from right to the left. That's where they are attacking. From the left to the right is where Assam in orange and black are attacking. Delhi trying to give a huge snooze into that ball. Can get it. Penalty corner. No, 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 penalty corner. This is what vastly you don't want to see. Again, this is this is early and very early, and not much that you associate sometimes when you want to go so much aggressively and make a move which is potentially very much out of your league, and that's when a mistake just keeps on cropping up, because then in your heart and in your physical attributes you try a little very hard to probably snatch the ball and make that commitment of an error from the left, hitting the ball. Miss Pritmai Huntia signals the players to go to the center to play, as a penalty corner has not wasn't being been converted to a goal by Delhi Hockey. The receiver again was not too good. The injection was good, and the one who came in the first battery that you talk about, ushers are the ones who are, along with the goalkeeper, who are receiving the penalty corner. If someone joining newly, getting introduced into hockey. 1 minute 40 seconds remaining here. What a good venue this is. The Mayang Gomte Jaipal Singh AstroTurf International Hockey Stadium. So many memories, brindles it up. Good deflection. Did I see almost getting on hockey, because this is where Assam is defending. Assam pulling up, making the strings work for them. So early morning, trying to break the defense corridor, doing very well from the left flank. Assam, that's Miss Barrow from Assam, trying to make a very nice pastry storm to it. How it will be for them to get it nicely moving, the movements that you so talk about. They'll be needing it much more stronger, if I have to talk about
They also know this is not going to be an easy one. The proceedings will not be not be easy, as you so much sit and ball and the angle moving. Just say that this is one area they'll be looking to just try and conquer, and if not, they can vastly text. Oh, left angle. Delhi gets it. The striking circle, making it, and they'll be saying, "Oh, is it almost like a habit for us? Do we get it? They get it. The first goal, making it nice, and I have to just check." And that's Jyoti who's got the first goal now for Delhi, with 1.5 minutes remaining for the Strata to finish. Taking a bit of a breather. Did a signal come in for the end of the first quarter, I believe? Oh yes, there you go. It's all done and dusted. We'll be back with the second quarter very soon. Don't go far away. This is Mayur Bara with the mic. All the section will be coming live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. We'll start off with the second quarter. As this move, Delhi will be happy as they've scored the first goal. No, they'll have to keep that channel going. Delhi pressing, trying to move. There's Jyoti with the ball, already have scored the first goal for her and for the team, benefiting hugely, of course. They did look one, and not surprisingly, they scored the first goal also. And let's see what they can do. They have to just press it up. They can be very much there in the reckoning. So that's why it makes it vastly so important for Assam hockey to provide and to go up. The sun shines brightly right here in Gurgaon in Haryana. I woke up early morning, found water everywhere. It did rain overnight. There's nothing there like there in Jharkhand. That's why it will make a good one, I believe, to play it up and to understand the nitty gritties of how it will be happening out there, and very understandably so. Striking that nice little movement inwards, it can be sometimes very tricky, and the way you just know it, and can be a nice little advancement of understanding all the affairs, still trying to create a lovely bit of order. Can they mostly sum what they have seen? Just
It's almost like you're deleting your cache and trying to rebalance and regroup and to check how much you can go up and believe on your strengths and weaknesses. Sleep tossed up. It'll be very understandable to hold the line and to create all those much more important creating of ruffles. Just going on to the move on zero. And just test the waters of what they said. I'm sure that will be something that they're not expecting true. They get it. I'll be all in clappers. The movement is there, and you can see how they have done it from the right flank. He slowed it up. That's how they carry on the paces, trying to stop the ball. Gets advancing inroads going. The defense was not there. The goalkeeper so much ahead and trickles, almost trying to baffle it up. See, did make some headway, but how the toss came in and the ball, like a ping pong bounce, just went inside the goalpost for getting the second goal of the morning for the for Delhi to make it 2-0. So not getting easy for some early morning. We'll have to just be very much on the top of the game. It's, to losing the initial incidents. So they'll have to be so much mindful of not building on of not getting through the paces too regularly, of allowing Delhi to come back. They've already made 2 goals. So, let's just hope that they carry on. The Rods officially still says 1 goal on the score line. Just see, already got one. So making that move, that advancement. Corridor can be done. Very much excellent, and it'll be so much okay sometimes if you are just playing almost like a catch-up game, and then you can just say that it's all okay to be going on from here on. And for a brief while, our dear friend Mr. Shami Malan will be joining very soon. I'll introduce you when the time comes. But for the rest of the next 2 quarters, I'll be definitely be there when if he can also be pitching in, Mr. Shami Malan. This nice Toro gentleman to be there at the com box. I'm sure there'll be so many listeners and followers of the game who always love to hear Mr. Alam's voice. And why not slams the shot from outside off. There we go. Very widely at the moment. 9 minutes to go for the end of the second quarter. You can be just on the muted route. And nice. Shukriya. And that's what they'll always be moving across. They don't have to. And it's going across at 8.5 minutes, still going on the ascendance. Delhi on the charge again from the left. 23-meter circle, dotted line entry. Not much movement is still going on. Let's see whether they can curve and turn.
It's a nice cross pass. The ball is still alive. Delhi crisscrossing. Will be trying to an attempt of the tomahawk. Not much. Umpire misread my Hundia, asking them to go to the center to play. Delhi are still getting a very nice progress onto it with 2 goals leading. Assam really need to make a build on the attack. It's just been just one time that they have done in the other counter, which is making it very tough. Again, the ball regularly getting into the territory of Assam of, and that's why Delhi has been seriously on the charts and making a nice move entry into that game. In just few minutes, Mr. Shamim Alam will be joining. I definitely welcome Mr. Alam into the com box, and that's when he can get into the zone. So there is some time for Mr. Alam to get into the picture. So well, Assam trying with the left angle, the left footer that is onto the stick. It's not the footer. Sometimes some terminologies just come from football also, but it's from the left stick at the moment. From the left, some trying. This is the second time they have tried to make an entry. Assam knows they have lost 2 matches, so this is so important for them to keep their hopes alive. Good last game they had versus Bengal to win 2-0. But for Delhi, they have won 2 matches already, so their balance is good. So they can't afford to be losing also because they have also lost 1 match versus Tamil Nadu, which should have been in their territory. Both the teams have lost versus Tamil Nadu. So in their group in Division A, in Division B, in this Pool A, they're still doing vastly very okay. Tamil Nadu will be having a total of 6 matches, and so this is a good day to start off. And as the ball just squares up in 6 minutes, I'll be welcoming Mr. Shamim Alam into the commentary box, and I hope he can be a very nice added voice, as there'll be so many joining in to hear his voice. Welcome to the com box, sir. शुक्रिया Very शुक्रिया मयूर। और बहुत ही बेहतरीन इस वक्त आप एक कठिन मुकाबला देख रहे थे दिल्ली और आसाम के बीच, जबकि मैं बता दूं यहाँ पर इस वक्त दिल्ली की टीम आसाम से 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे है। बहुत बहुत कमेंट्री बॉक्स में हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर मयूर थे। और मैं बता दूं इस वक्त ये जो मुकाबला चल रहा है ये मुकाबला है इस वक्त एक तरफ से दिल्ली की टीम और दूसरी तरफ से है आसाम की टीम। ये बहुत ही डिवीज़न बी का कहा जाएगा एक मुकाबला है, जबकि पूल ए का मुकाबला है डिवीज़न ए का। डिवीज़न बी का पूल ए में दिल्ली की टीम है दादरा नागर हवेली और हॉकी यूनिट तमिलनाडु, बंगाल और असम की टीम। तो ये दिल्ली और असम की टीम के बीच एक मुकाबला हो रहा है। मैं बता दूं डिवीज़न बी का ये आखिरी है लीग का मुकाबला। इसके बाद तमिलनाडु की टीम भिड़ेगी बंगाल से। इसी पूल ए में दूसरा मुकाबला जो होगा डिवीज़न बी का तमिलनाडु का बंगाल से होगा। आज का सुबह के सत्र का पहला मुकाबला चल रहा है। आज है 7 अप्रैल और मुकाबले का है 7वां दिन। आज कुल 6 मुकाबले खेले जाने हैं यहाँ पर दिल्ली, असम, तमिलनाडु और बंगाल। और ये तमिलनाडु और बंगाल के जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा डिवीज़न बी का सारे मैच पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अब डिवीज़न ए का मुकाबला शुरू होगा। 10 बजे होगा खेल। मिजोरम और उत्तर प्रदेश के बीच। 11:30 बजे हरियाणा मध्य प्रदेश के साथ भिड़ेगी। 2:45 में उड़ीसा और पंजाब। और 4:30 बजे झारखंड और बिहार की टीम होगी। ये आज का पूरा टीम का ब्यौरा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति इस वक्त है वो बतला रही है कि यहाँ पर दिल्ली की टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से इस वक्त आगे चल रही है। बहुत ही इस वक्त आसाम के लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि दूसरा क्वार्टर का खेल लगभग अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मात्र 3 मिनट 40 सेकंड का समय बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नहीं पड़ा
स्थिति इस वक्त है 2-0। मैं बता दूं दिल्ली की तरफ से यहाँ पर 2 गोल इस वक्त हो गया है और दिल्ली की टीम एक बहुत ही मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है, जबकि 2 मिनट 43 सेकंड का समय इस वक्त बचा हुआ है आज के दूसरे क्वार्टर का। यानी अब मुकाबला यहाँ पर आधे समय का समाप्त होने वाला है। दिल्ली की तरफ से मैं बता दूं 15वां मिनट में, खेल के 15वें मिनट में ज्योति ने गोल किया था। ये एक बहुत ही बेहतरीन गोल ज्योति के द्वारा किया गया, एक आकर्षक गोल। और खेल के 19वां मिनट में दीपिका जो कप्तान हैं इन्होंने गोल किया। तो इस तरह से दिल्ली की तरफ से 2 गोल हो गया है। ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स की तरफ है दिल्ली की टीम और दूसरी तरफ है आसाम की टीम। दिल्ली के खिलाड़ी इस वक्त बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच गई दिल्ली की खिलाड़ी और यहाँ पर ये हिट और एक अच्छा मौका को तलाश रही थी इस वक्त दिल्ली की टीम। दिल्ली इस वक्त है 2 गोल, यानी दिल्ली इस वक्त दिल जीतने जा रही है यहाँ पर दिल्ली का। तो टीम दिल्ली 2 और यहाँ पर आसाम इस वक्त 0। आसाम को एक लंबा सफ़र तय करना है, तो यहाँ पर 2 गोल से इस वक्त पिछड़ रही है आसाम की टीम। 1 मिनट 24 सेकंड का मात्र समय बचा हुआ है दूसरा क्वार्टर का। अभी आप हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर मयूर बरुआ के से आप अंग्रेजी में आंखों देखा विवरण सुना रहे थे। बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छी अंग्रेजी में कमेंट्री करते हैं मयूर बरुआ। और अब यहाँ पर मात्र 1 मिनट का समय बचा हुआ है दूसरा क्वार्टर का खेल खत्म होने में। खेल आखिरी मिनट में चला गया है। इस वक्त यहाँ पर दिल्ली के खिलाड़ी के पास है बॉल, लंबा हिट, रेड फ्लैग में पीली रंग की जर्सी में खेल रही है दिल्ली की टीम, जबकि संतरे रंग की जर्सी में खेल रही है इस वक्त आसाम की टीम। 2-0 की इस वक्त यहाँ पर परिस्थिति है। सीधा पास बढ़ाने की कोशिश, यहाँ पर आसाम के पास है बॉल। इस वक्त फ्री हिट मिलता हुआ मदरका के पास बाइंग फ्लैंक से आसाम को लंबा हिट, बॉल लेके निकलने की कोशिश में दिल्ली के खिलाड़ी इस वक्त अग्रसर होते हुए मदरका को क्रॉस करने के बाद 23 मीटर रेखा के पास पहुंच गई है। बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया है। यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच गई है टीम। इस वक्त खतरा बढ़ रहा था, आकांक्षा यहाँ पर पहुंच गई थी। दीपिका एक बार फिर पहुंच गई थी। दीपिका मैं बता दूं ये कप्तान है दिल्ली की। और अब यहाँ पर हुटर बजता हुआ पहला यहाँ पर खेल आधे समय का खत्म हुआ। आधे समय तक दिल्ली 2 आसाम 0। दिल्ली की तरफ से खेल के 15वें मिनट में ज्योति ने पहला गोल डाला। खेल के 19वें मिनट में दीपिका कप्तान ने दूसरा गोल डाला और स्थिति है 2-0। मध्यांतर के बाद हम मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।
And welcome everyone to quarter number three, to the second half. This is Mayur Barwa, joining in the combox. And thank you so much, Mr. Shami Malam. Always a pleasure listening to you, I'm sure. It's been an early morning treat for everyone listening you to those last few minutes of the second quarter. And he'll be pitching in whenever required, Mr. Alam. Thank you so much. And we've started off Delhi right on the top with 2 goals versus Assam. So 2-0, leading into the quarter number three. Delhi playing very well, with good precedence on the hockey, nice hand-eye coordination. They have been dribbling well. They've been passing through the corridor so well, and that's where Assam really need to change their strategies. And I believe those last 10 minutes have allowed them to just get refreshed, get to know of what are the vast mistakes they have done. It's not a huge score line, to be honest. Delhi at 2 goals, but again, going more and more deeper. If they keep on losing times, then those 2 goals will seem like a huge mountain. From where, if they can erode that will be a huge task for them to then expect some erosion coming in from the left to the right. Now Delhi will be attacking, and they are attacking inside the striking circle. Oh my goodness. This is like one of those easiest catches that you get in a cricket field early morning. A huge open space, the goalkeeper was ahead, the pass, the assist from the left to the right was easy, and she just joggled in the park. Had all the time in the world to make that goal, and then slowly, with no effort, without burning any calories, she just made that goal happen. So Delhi 3, Assam 0. She'll be saying, okay, this is one goal which I haven't had in my career, not even during practice. So must be laughing inside. So one goal for her to get a nice vast into a statistics column, and what happens gets totally disappointing. Doesn't get easy. But in the men's, that's Haryana versus Manipur now playing. Let's take the third goal being scored by Priya. The earlier goal was scored by Deepika, and then Jyoti. So Jyoti, Deepika, and Priya, all the field goals which happened till now, and now the penalty corner. So maybe it's trying to check who are the injection specialists now. Can they find out? It's number 8 who has now gone in. Make you let the name. So that is Ashna Kamboj with pulls. And from the left, one of the ushers had a problem. And that's the reason why Ms. Pritmai Huntia, the umpire, has signaled the penalty corner. It means it's 3-0, getting one up against, making it vastly tough. So Ashna Kamboj will remain as the injection there. That will be so much remaining for them for not to make it moving. Stops from the left, attempting a tomahawk. Nice ankle movement, and this is something which they will be trying and not to make it happening. So, but it remains a 3. How many times do we get it? Gets it again. It's another penalty corner. Oh, this is tough. As Ashna Kamboj again runs for the penalty corner. This time they should be getting it. They said, okay, let's get it. We get so many chances. It's a nice pass into the center. It's a lovely trickle towards the corner of the screen. And she just makes an easy push into the jaws of the goalpost for goal number 4 for Delhi. And it's 0 for Assam. Look at that. Oh, the whole of the defense corridor was going towards the right. As Mr. Shami Malam is there. Welcome to the combox again, Mr. Alam. I'll take a small little break. शुक्रिया मयूर। तो स्थिति इस वक्त है 4-0। बहुत ही ज़बरदस्त स्थिति है इस वक्त यहाँ पर दिल्ली के लिए, और तीसरा क्वार्टर का इस वक्त खेल चल रहा है। मैं बता दूं इस वक्त आसाम
को एक लंबा सफ़र तय करना है यहाँ पर बराबरी पर आने के लिए। 4 गोल की स्कोरिंग का ग्राफ जो है वो बतला रहा है कि किस तरह से आज यहाँ पे जम के आक्रमण किया है। यहाँ पर जहाँ तक सवाल है दिल्ली का, दिल्ली 4 और आसाम 0। 12 मिनट 12 सेकंड का समय बचा हुआ इस वक्त यहाँ पर। तीसरा क्वार्टर का खेल इस वक्त चल रहा है, प्रगति पर है। धीरे धीरे बॉल लेके आगे बढ़ते हुए इस वक्त यहाँ पर दिल्ली का खिलाड़ी एक बार फिर अग्रसर होते हुए। Thank you so much, Mr. Alam. I can take it from here on. Thank you so much, sir. You can mute yourself. Delhi 4, Assam 0. It's getting on so well. Thank you so much, Mr. Alam, for pitching in for a few minutes. Always a treat towards. Don't worry, Mr. Alam will be there for the next set of matches also as I carry on for quarter number 3. Mr. Alam will be required for quarter number 4 to finish off this match. But 11 minutes now remaining in this match. Assam needs to be very serious with their game because they are trailing by 4 goals now. Assam slamming it. It's a nice cross pass. Trying to check of where they can just get on the passes. Man-to-man marking also has been quite prominent for Delhi, which is making actually Assam very much on the back foot. Is trying to make that stick work go on. Assam to regroup, seeing the pass, seeing the inroads, moving across past the 23-meter dotted line, and you can see every player has been moved strongly behind with those defense corridor, trying to slam it. Again, that the thunder stroke, but no, into the stick of Delhi. This is one zone where I feel they've been sleeping by. It's not been doing most of the work nicely, and that's why losing an opportunity, even if they are getting into the home of Delhi. As I mentioned before, the center forward was coming in attacking position. The walk will be attempted. She falls down straight into the goal post. It's a tremendous goal from the left winger. Whoa, what a goal. There were not 1, not 2, not 3, 4 defenses were coming right behind her, but not a single one could stop it. This is not going to be easy for Assam at all. Look at that, not even 4 or 5, and the goalkeeper dives ahead to stop it, making that corridor, that area behind absolutely empty. And for an easy one for goal number 5, they're pressing hard for goal number 6, trying to dribble it. It's a lovely pass. Entry inside the striking circle, rotates herself, trying to make a stick work. Assam claims to have done nicely this time as they steal the ball from underneath the feet. But the dangers are looming hard. There's a dark clouds of danger. Getting one again back past the center line. Assam doing very well. It's like a slow sprinter. Look at her running from the left flank. Can they open the score line? No. SC uses the back stick right in the air. So much of time she has taken that the two corridor, those 2 defense corridors just came in so quickly to steal the ball. Back to Delhi. Nice. It seems like Jyoti is there. Jyoti slams. Oh, it touches the crossbar or somewhere at some corner of the goal post. And then it goes movement away for the ball. See, it's absolutely strong. The way they started is seriously going very hard. It's a lovely pass. And if I have to check, that's Asna Kamboj, I believe, with the ball, or that was Bhavna. And Ritika Aldos making such a nice work with the ball, good stick work, good and good passing also. That's how you play the game, isn't it? In the fast-paced sport like hockey, this is one you need the assist to come in. This is doing well. Again, those 5 of the defense corridor not even allowing the ball to protect. It's a revolving of the ball has been so quick and so strong from Delhi, and that's why they've been caught little unaware of how to move along. So much of grittiness. Sometimes it goes and works for trying to spark an emotion for some. They are again trying to make a small little counter attack.
Let's see. It goes ahead. And it was as per schedule. Let's see if there's any foundations of going into the territory. If they can just middle the ball up and then get along. Let's see. And it's nicely done, nicely checked down, nicely crossed. So they will definitely get some time to get along and just move it very nicely. Five for Delhi, zero for Assam. Still getting into the quarter number three. So they can quietly relax at the moment. Some still making, still trying to press, still trying to press some of those. Let's see how they can go, how they can make the movement. They can just skate in along. Ah, 6 minutes remaining. Getting on the right corner, just pressing hard. Delhi again in the picture. Umpire says he can move along. I don't see any faulty progress there. Some stealing the ball, doing very well. She is the one who's been doing very well. Look, sometimes you sometimes feel the pronounce of the ball. Oh, she's injured. She's got a stick somewhere on the back of her head. This is not nice. That is jersey number 9. That's Tanu Yadav on such an important player. Oh, she's actually fallen down heavily on the back of her head. And that's why she's crouching. Good to see that she has stood up. But it's always good. Prevention is better than cure. So it's always good to get her just forward to the corner, get some medical assistance. So this is such a vital portion of your body, the mind, the brain. So always, she's still playing there, but it's always good to get through the scanner and trying to know if she's actually very much okay. 5 minutes remaining here. Delhi 5 right on the top of the game at the moment. Getting very tough. Remember, Delhi playing the fourth match. Assam also playing the fourth match. Getting nicely done. Number 12, Deepika, the captain. Time and again, she has been praising Deepika. She's such an astute leader, leading from the front, from the center forward, trying to make the make the picture more rosy here for Delhi. But in the driving seat now is Delhi, all buckled up, driving every engines and accelerator of the match now, very tightly in control of the match is Delhi. Assam, what can they make it? That's Tanu Yadav again, number 5. Says from Assam, Romani Sangita, I believe. I thought couldn't see from properly, but that has to be number. If it's number 9, then it has to be then it has to be Tanu Yadav. It's of number 5, then it has to be Sangita Romani. But whoever it is, they're trailing with vast at 5. It's trying to make that stick work, trying to cross it. It's Chanika Kalita trying to pull it on to Tanu Yadav. And yeah, finally, that's number 9. That's Tanu Yadav with the ball. Captain Deepika falls down. She is trying to steal the ball from the defenses. In a 23-meter circle, the whistle has come in, rotating herself. And that's Asta Dwivedi. Asta! Oh, trying to scoop the ball towards the center attacker position. Asta Dwivedi again coming early from the left flank towards the right flank. Now Tanu Yadav gets the position of the ball of Assam.
the Orange Army. It's a lovely work, giving a good pass on to Josna Eka. Josna Eka, 3 goals to her in a contest. She's trying to pass it on to Tanu Yadav, but in front of her were two defense of Delhi who gets the ball and hurls it away from the danger zone back past the center line and out of bounds. More and more, the time is moving out from Assam. 2.5 minutes remaining. So if they lose this contest, there will be like 3 losses for Assam out of five, out of two losses. In fact, with 3 losses out of four. As Deepika scores a goal, it's all over for the captain. Says, "Okay, whatever I have learned, see the picture of concentration. The sweat is there. It is. She says, "Okay, I don't need a celebration. These are just routine work for me." That's the captain, Deepika. All smiles. He says, "I keep on doing this. My coach will be happy. My individual coach might be happy. The team coach should be happy. The way I've been progressing, the way I've been carrying on the chores, the way I've been accompanying this work for my team." So make it 6 for Delhi with that goal coming from the captain, Deepika. It's rising so high in the order, and now Delhi is getting more and more tensed. Talk about the goals. So Captain Deepika, let's just shot number 13. I'm vastly sorry. So it's not Deepika, it's Jyoti actually. Captain Deepika has 1 goal, but this is goal number 3 for Jyoti. So Jyoti started off with the first goal, and then goal number 5 and 6 is for Jyoti. Beg your pardon. And Captain Deepika has goal number 12. That is Jyoti. That is Deepika with a goal, but eventually, finally, it was Jyoti who implemented it, got the goal. Then jersey number 3, Priya has a goal, and then jersey number 8, Ashna Kamboj has a goal via penalty corner. Rest of the 5 goals were field goals. Just a minute remaining. Mm, Yeah, I've talked about initially about head to head. It was a forfeited match which was played in 2022, the 12th edition of this sub junior women's national championship of hockey India. That's when Assam claimed that match. So it's almost like a vengeance that we didn't turn up that day, and Delhi is saying, but today when you are turning up, will make you feel the heat, and exactly that's actually has happened. There's 30 seconds remaining in this match now. It will be nice to see up and pulls it up, makes a straight into the body, making of a final move. It can just go blazing into it. Nice work, nice sticky corridor. If they can make that move, I'll be very happy. Just a second remaining from here on, and you can hear the play of the hooter. So they still have a 2 minutes breather. With the mic, I'm Mayur Barua. It's 6 for Delhi, 0 for Assam. We'll be having this break. Don't go far away. The last quarter will be coming very soon, live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. So stay tuned.
Welcome to the last quarter number 4. This is Mayur Barwa again with the mic, watching the 16th edition of Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, all the way live from Maram Gomke Jaipal Singh AstroTurf International Hockey Stadium, right here in the capital of Ranchi in the state of Jharkhand. Delhi clearly claiming the top honors with 6 goals, with Assam yet to open the scoreline. Really tough for them. Been able to hold the progress at one way, but the one they have been playing is just not getting easy. Not being able to claim any movement in there. So let's see what happens if they can just praise in full, make that ongoing onslaughts looking clearly. Assam gets the ball. Trickles. Defense is 3 behind. Trying to penetrate. It's a lovely pass, but into the stick of Delhi. Split my Huntia blows the whistle for Bang to go back to the back territory. 1.5 minutes remaining. And going has not been very tough. Delhi trying to again see and sneak a pass through. Assam doing well there to make that movement going. Delhi again coming back to the picture. Tries a lovely tomahawk. And the attempt was there, but penalty corner being signaled by the umpire. Umpire is in caution now. With her assisting is Madhu Kumari. Reserve umpire is Anjali Rathod. That's Madhu Kumari on your picture, who has signaled the penalty corner. Delhi will now be very happy. We're saying, okay, we have got it, and let's just make a full use of it. We're now getting the injection passing through for Delhi. Can they steal the moment? Red flick comes. Goalkeeper very much ahead. Does a wonderful work. Is the goalkeeper. Oh, from the corner. She sees the lining. The channel was okay, but into the base of the goal post on the left hand side. And the ball just deflects away out of bounds. So penalty corner has been thwarted. Some heaves a sigh of relief. And it's Tanu Yadav again. Delhi 6, Assam 0. Tanu Yadav still trying to circle along. She's been a good performer with the stick. Goes nicely. Gets it moving and going. Can Assam open it up? It will not be any easy conquest for sure. It's not getting easy at all. If I talk about 3, there was Jyotsna Ekka. Only told how many goals she has 3 goals, Jyotsna Ekka, in this contest. For someone joining late in the contest, let me tell you how much they have got it. And now it's a good news, as I can see, Assam has got the first penalty corner. Should be happy. So 3 goals for Jyotsna Ekka and 2 goals for Chayanika Kalita from Assam. And, 1 goal for Bhumika Devi and 1 for Tanu Yadav. That was just in number 9. Let's see if they can convert this, and in the very first penalty advantage. 12 minutes remaining for the match to finish. Injection has been done. Stops. Trying to make a drag flick. Reversing her stick. That was Pari Saikia from Assam. Was trying to storm the ball, but couldn't get it. The scoreline still remains the same from the third quarter. At 6 for Delhi, 0 for Assam. The movement has to be so swift. That's why it's trying to regress it very toughly to make it work now. The workload that you so much say. Trying to book that angle. Oh, just a deflection required. As the ball flew from the blade of Jyotsna Ekka, there is just right at the corner of your screen at the bottom, Jyotsna Ekka was making it fly to Niharika Pathak.
Niharika Pathak doesn't have any goals to her name, but with the deflection, she could have opened her individual score line. Assam suddenly trying something different, and this is really good to see. But if I have to tell, versus Bengal, they were leading, but they are trailing by 2-0. Then came a vengeance to win by 3-2. Versus Tamil Nadu, they are leading by 1-0, but lost in 1-5. Time and again, so much commotion at the left flank corner of the striking circle makes it hugely difficult for any umpire to look at just mind or those intricacies of where the sticks are, whose stick it is, and that's why you have the assistance of the technology. But what's happened at 100 years before, 50 years before, 60 years before, is when the technology was not there. That's why kudos to all people, all of those athletes, officials, administrators were behind the sojourn, behind the journey of the 100 years of Hockey India. An opportunity to thank our president, Dr. Dilip Kumar Tirki, former India player, and also the president of Hockey India, and also to Mr. Bholanath Singh, the General Secretary of Hockey India, and other office bearers for their wonderful contribution in shaping up Indian hockey. And here was trying to shape the future of Delhi and to secure and tightly doing it at the moment with less than 10 minutes remaining, and we're leading by 6 goals. It will be safe to say that Delhi are knocking very hard on this match to claim a win versus Assam. And after this defeat, I believe Assam might just be bowing out of the 16th edition of this Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. Trying to get make a break entry. Delhi not getting it past the center line. It's Captain Deepika again getting the ball rolling through the stick. It's a nice snatch work. Gives it to Asta Divedi. Asta Divedi trying to put a sneak pass through to Divya, who finally cannot. The ball gains much of the propelling of the engine on to that molecular formulation of the ball, and it goes out of bounds. Back to Deepika. How easily she frowns. She's a tall. Oh, look at how the zigzag fashion happens for Deepika. Oh, wonderful player. Oh, how she bisects the ball and so cleverly, so quickly, so smoothly is a treat to watch. Seriously, a treat to watch. And all of the defenses are awesome. Just kept on seeing of how she was going with the stick. Absolutely lovely. I would love to know who's the coach of Deepika because she's such a wonderful player to watch. Ashna Kamboj has a goal to her name for Delhi. Ashna Kamboj, a penalty corner she scored versus Dadra, Nagar Haveli, and Daman and Diu. And that victory of 2-1. And Captain Deepika has 2 goals, one goal in the form of a penalty corner versus Bengal, then a field goal versus Dadra, Nagar Haveli, and Daman and Diu. As on your picture, you can see the girls from Delhi who are waiting for another opportunity because they've got the penalty corner. 8 minutes remaining. Goal for Bhavna also in the penalty corner. It was a match versus Bengal. Trying to scoop the ball. And the goalkeeper of Assam is Tarali Baro very much ahead to stop the ball. Rams it from the edge of the striking circle. Couldn't get it. As umpire Miss Madhu Kumari watches with some strictness, I'd say. Just the formalities now for Delhi. The only thing better they can do is keep on building on the attack and also in the goals column. You pick up on the charge. Striking circle entry has been done. The corridor of defense of Assam is little light. Not getting really tight. Deepika again into the picture. That was Asta Divedi who marched the flames initially, who ignited it for the ball to happen for Deepika but couldn't. Assam gets the ball, steals it, carries it way past the center line now as the ball goes out of bounds. Umpire Miss Pritmaya Khuntia singles out of bounds. The ball just goes on to it. And I'll also be carrying on for the next match as we'll be preparing into it.
And after this, we'll be having so much trying to get into this match. As you just build up, just so much nicely. If I just keep on implying of what will happen, so it will be again will be Bengal playing. It's going to be a nice end card, but that's not going to be easy because Hockey Unit of Tamil Nadu will be playing versus Hockey Bengal. Tamil Nadu has won both the encounters. Bengal are yet to open the scoreline as they have lost both these teams who are playing at the moment. First versus Delhi and then versus Assam, they lost. So if they lose versus Tamil Nadu, I'm sure the fate will be hanging by a thread or almost will be going out of this competition. 5.5 minutes remaining. The section coming to you live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. Nice work from Delhi at the moment. Gets it going, Deepika, trying to make this put into the striking circle. How much she can get it? Can she get it all ahead? Will be the question. The movement of the stick work is something to be left for them to fortune themselves. So we'll have a six matches. After this will be Tamil Nadu versus Bengal, and then at 10 o'clock will be Mizoram versus Uttar Pradesh. At 11:30 will be Haryana playing versus Madhya Pradesh. At 2:45 will be Hockey Association of Urisa playing versus Hockey Punjab. And to finish up the day at 4:30 p.m. will be Hockey Jharkhand playing versus Bihar. And then tomorrow is a rest day. Remember, for all the listeners and viewers, tomorrow is going to be a rest day, and then we'll be having the quarterfinals on the 9th of April, and so which is on Thursday. Quarterfinal one starts at 7 o'clock. Quarterfinal two starts at 9 o'clock. Quarterfinal three is at 11 o'clock, and quarterfinal number four will be at 4 p.m. And then on the 10th of April, we'll be having the semi-finals. The first semi-final starts at 2 o'clock, second semi-final at 4 o'clock. And then 11th April is a rest day. And then 12th of April on a Sunday is going to be at 10 o'clock, the hardliner, the place for the third and the fourth. And then at 4 p.m., we'll be having the grand finale of the 16th edition of Hockey India Sub-Junior Women National Championship 2026. So that's where the schedule of how this tournament will be panning out. We started exactly on the 1st of April, the starting of the financial year, so that we can get the ball rolling. And also, the Sub-Junior Man National Championship is also going on at the Rajgir International Hockey Stadium in Rajgir in Bihar. It's a good game going on, and I had the fortune of visiting this Ranchi Stadium and also the Bihar Stadium. Very nicely done. So kudos to Jharkhand government, kudos to Bihar government and the Sports Authority of India, who have done very well to get this progress moving of Hockey India. I've already mentioned Dr. Dilip Kumar Tirki, the president, Mr. Bholanath Singh, the general secretary, who have done tremendous work to channelize and propel the engines and to infuse the next funnel's growth story of Indian hockey. So it's always there, isn't it? You have all the academies, all the people working with the scenes, the women's, men's, and right from the work that comes in from the grassroots, it vastly tells you the story of where, for example, like Urisa has been playing. And recently, I've mentioned the example of Khelo India Tribal Games. Urisa, both in men's and women's, snatched a gold medal. So that will tell you how it has just gone on. At the moment, Assam trying to ask a question across to Madhu Kumari as he signals a timeout. He says it will be going for a video referral for sure. He's asking the question. No signal of a video referral at the moment. And as I mentioned, there is a signal of a video referral, the T, and we'll be waiting to know what transpires from above. There's 2.5 minutes remaining for the match to finish. It's a video referral from Assam, Delhi 6, Assam 0.
So move ahead. This game, see, there was just say Delhi and Assam needs to create just some stupendous quality and then been so quietly just vying for as we'll be gearing up for the next match. I'll be joining for the first two quarters, remember, and then for the next two quarters of the next match, it will be the voice of Mr. Shamim Alam to join for hockey unit of Tamil Nadu versus hockey Bengal. As I mentioned before, Tamil Nadu, 2 out of 2 wins for them. They'll be playing the third one. There's another question being asked. One after the other, Assam. Scoreline still at 6-0, and it's for Madhu Kumari to again take the help of the third umpire. Just going through the stats and just wanted to add, as we just wait for the umpire signal, I missed the last match. So Dadra and Nagar Haveli and Damanin, you have actually won versus Hockey Unit of Tamil Nadu, 1-0. So in fact, 3 matches that Tamil Nadu has played. This is really my bad as a commentator. I should be so aware. As penalty corner has been signaled by Madhu Kumari. So Tamil Nadu will be playing the fourth match today. They have won 2, have lost 1, which was the last encounter. So they're back of a loss. It's really interesting because there's no goal scored till the second quarter. Then Dadra Nagar Haveli and Daman India scores a goal, and then there's nothing from Hockey Unit of Tamil Nadu to in reply. But penalty corner stays. So Assam loses the review. Delhi is action done from the edge of the striking circle. Deepika, the captain, still rolling a stick by for a goal and gets the goal. It's not through a stick. She made a lovely assist towards the corner, and there is a deflection. I don't know from whose stick it is, but it's a lovely deflection to get that goal. So goal number 7 for Delhi. Assam 0 as less than 100 seconds now remaining for this match to finish. So much of talking on man-to-man marking, ball possession, defenses. I'm sure as more and more goals gets against you, as you keep on conceding goals, the talk will be mostly on how your defense has been breached regularly. If it's 1, 2, in fact, even if it's 3, then also you can say, okay, we've done well to at least douse the initial fire. But yesterday it was 15, 15-2. There's a huge score line yesterday. It's one after the other. It's just really tough. Arunachal Pradesh versus Himachal. Arunachal, the in fact that was in the men's column, which was played in RANCHI in Bihar. That was the game I covered yesterday, and to as a my dear friends Vikas Kumar and Arbaz Khan are going through the paces in a men's sub junior national championship there. So just as a cover up, and I loved it. 15-2 initial the final score line as Arunachal Pradesh, the boys from Northeast defeated the boys from North from Himachal. Very upsporing. Back here, just 15 seconds remaining. Delhi will be winning this contest now, and final hooter will be blown. 5 seconds. Can Deepika get a goal? And there's the last few seconds. Can they get it? 23-meter circle entry has been done. Striking circle. Can they get it? Oh, yes. She was about to get a stick in line for the goal. The hooter has been sounded. And a convincing and a thorough professional performance as they whitewash Assam with 7-0. The capital of Delhi says that's why we are the capital of India. So Delhi 7, Assam 0. This is Mayur Barwa. I'll be taking a breather and I will be joining you for the next two quarters of the next match, which will be Tamil Nadu versus Bengal. So don't go far away. It will be coming very soon on your screen, live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. So stay tuned.
Hello, and a very warm welcome to one and all who's joining again us for the live broadcast of yet another hockey contest in the 16th Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. And it's going to be right on your screen Hockey Unit of Tamil Nadu to play versus Hockey Bengal. With the mic, I'm Mayur Barwa, and I'll be soon joined for the next two quarters because I'll be doing quarter number one and quarter number two. For next two quarters, of course, in Hindi, a distinguished and a very recognizable Hindi commentator, Mr. Shamim Alam, who also stays in Ranchi, where this tournament is being played, at this lovely AstroTurf, a venue which is historic and have created ample of memories for you for them to last forever. Live from the Marangomke Jaipal Singh AstroTurf International Hockey Stadium here in the capital city of Ranchi in Jharkhand. As I mentioned before, Tamil Nadu are now playing their fourth match. Three matches they have played earlier. They started off their campaign with back-to-back wins. Then they lost 1-0 in the last match versus Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. But for Bengal, it's for all of them all overseas because they lost two matches earlier. First versus Delhi and then lost versus Assam. So this is something which they have to just heavenly favor, or else it's going to be little something which is not going to be too easy for them. As I see some regroups happening there, and not getting easy. There's a penalty corner. Now it's position for them to sacrifice 2-0 versus Delhi. Then they won 0-1 versus Dadra Nagar Haveli, lost 2-3 versus Assam. Now they're playing this encounter. So let's see what happens. Injection all being started right here. Just waiting for the final touches to be happening. What it is at the moment. And just see. It's just the people in question of how they have made it on. It's been done, Drex, and I believe that's Hockey India of Tamil Nadu. I've been having that transaction going. Let's see of how they've just moved and all across. Have to be crossed. And they have got the second penalty corner. Green, I believe, is blue for Bengal. Can they get the color changes? Yes, it is. As the changes comes in heavily. And they're almost there, yellow color. And the movement is there. Just carrying through the paces absolutely wonderfully well. It's really nicely done, nicely covered up. I'm sure they've been putting so much of how they have been going through the paces. Still at 0-0, Tamil Nadu almost opening their account. Had that penalty corner being converted. So they'll be just be hoping for it goes in the right direction. This movement is good. Uh, Again, I'm scheduled to do Urisa versus Punjab. Urisa 4-0 win versus Andhra Pradesh. They will be playing the second match. Punjab also will be playing the second match. That will be in Division B in Pool A category. Record in the last edition, Urisa won 3-1 versus Punjab. Not surprised with the way Urisa have been building on their hockey growth story. 4-0 versus Andhra Pradesh. And again, Punjab also won 2-0 versus Andhra Pradesh. So clearly, Andhra Pradesh, with lots of pressure, they'll be stepping on the next match. And in the 4-0 win versus Andhra Pradesh for Urisa, the goal scorers have been one goal each for Sweetie Kuzur, Priya Princess Ekka,
Deepika Bays and Archana Kunzur. In fact, Archana Kuzur, not Kunzur. So that's going to be a good contest for Punjab. That was Rashmin Kaur, a penalty corner, and Jarmanpreet Kaur, a field goal. So that's the match which is coming in the afternoon at 2:45. It's going to be a good one. Urisa versus Punjab. Focus heavily on Tamil Nadu. They're on the back of a loss. I'm sure that was a shocking loss for them, because first two quarters there were no goals, and the third quarter down in Dadra Nagar Haveli, Dadra Nagar Haveli and down in Dew. That's how you say it's not. It's actually the other way around. They got the first goal, and that was the only solitary goal. As we keep on mentioning, sometimes just one goal can load very heavy and go against your favor. And that was Chandra Nagar Havili and Daman, and you got it. That's you call DDT in short format. And so Tamil Nadu, they are still a very good team. It's just one loss. They defeated Delhi. They have defeated Assam. It's some nice score line. So it's a nice team still to play up. But Bengal clearly on the back foot. Just one win versus Dr. and Nagar Haveli. Interestingly, 1-0 is again the score line. So they have the task cut out. The girls from Bengal playing in the blue and white, asking a question regarding the penalty corner, as the girls all the way from south, the Tamil Nadu, are in that huddle to try and progress ahead. And the penalty corner, second penalty corner opportunity for them. They couldn't convert the first one, and now we have the rectangular shape and then the T being formed by the umpires in question, Miss Ranju Karmakar and umpire Sibia S. And reserve umpire is Miss Madhu Kumari. The timing judge is Miss Pinky Naik. The scoring judge is Miss Harinder Kaur, and technical officer is Miss Sonali Sahu. I have to talk about hockey in Tamil Nadu. The goalkeeper is Miss S. Kavya Sri. The captain is S.S. Kanishka. The coach is Miss R. Deepika. Team manager is Mr. V. Karthi Gaya Chami. And for Hockey Bengal, as you look at the replay of why the question has been asked by Bengal on the penalty corner, the captain is Miss Pooja Kumari Shaw. The goalkeeper is Miss Kirti Hari. The coach is Mr. Mahendra Singh Yadav, and the team manager is Mr. Amandeep Kaur Rahal for Hockey Bengal. 0-0 for both Tamil Nadu and Bengal. Game goes going. I did speak, but I didn't realize it was on mute. That's my mistake. Lovely win. It's almost getting the sleeve of. It was either written or it was just that's consumption of
so much of it that you sometimes lose the progress, and so very easy, and is that's why. And you need to just play it up that it doesn't again get easy, because you know you're versus a certain time foundation that you move, and then you play. As you see again, the penalty corner is coming. Not surprised, because Bengal has not been able to just drag grass the way they were planning to do before, and that's the reason why it's getting a little difficult for them to make a comeback, a thorough comeback, which was so much required for them. And believe it or not, it won't get easy if they kept on just marching along of not answering much of the basics very much right. Sometimes you need to go back to your basics also to try and see what mistakes we have done, and they don't want to make any of those costly mistakes very early on. As you see, the ball just trying to retrieve and regroup. Oh, they are not happy. Don't quarrel too much. They have the authority to bring out a green card, a yellow card, even a red card also. Timeout signal by the umpire. Let's see what happens there. This is a question being asked. Um, what is the question? What will be the answer? And that's being asked from the captain Kanishka SS of Hockey Inter of Tamil Nadu. She goes back for some good question. Umpires are Miss Ranju Karmakar and Miss Sibia S. Skim moves on. 9.5 minutes remaining in the first quarter. Carrying on, it's number 14, that's Hema Malini S. You know who's Hema Malini. She's also an actress. Hema Malini, also a member of parliament. Not do mix sports and politics. I'll not be getting into that picture. I'm not a huge fan of Bollywood, but we all know, isn't it? Famously from that movie Sholay, Dharmendra, God bless the soul of Dharmendra, was the husband of Miss Hema Malini, who I've just mentioned. And then, of course, you know the superstar of Bollywood, the Sahenshah, Miss Amitabh Bachchan, was there in the picture. And then his wife, Miss Jaya Bachchan, who was Jaya Bhaduri. We're talking about Bollywood later, not huge into those subjects. It's back to sports in hockey. 9.5 9 minutes, in fact, remaining. Amitabh Bachchan loves sports. Let me tell you, his son Abhishek Bachchan has one of the franchise. They're not in hockey, but in Pro Kabaddi League. So although so many leagues coming up of different sports nowadays, you sometimes lose a track of who's who. And again, hockey also has been on the rise, been playing so well. That's why I say don't forget to download not only the Hockey India League app, but also the Hockey India League app to get so much of this action of what's coming in, what has happened, follow favorite stars and photos, download the videos, go through the statements, and also get into the celebration. Use the hashtag #India Ka Game and be a part of the momentous occasion of 100 years of completion of Indian hockey. The moment hockey is good at quarter number one, all silent in the gold column. Hockey Unit of Tamil Nadu 0, Hockey Bengal 0. Less than 8 minutes remaining for the match to all go at the moment. It's all playing fair and square from the right corner, revolving with the ball, rotating very nicely, trying to break that man-to-man marking, which came from Bengal. Bengal have also got their assistants coming. They haven't got any penalty corner. 2 penalty corners have come in for Hockey Unit of Tamil Nadu, which they have not been able to convert, and upsetting their rhythm. Probably the mindset also works so much on how you form and get into that transgression and make yourself in a progress, and try and see if you can make a recovery from here on. Bengal and Tamil Nadu both on the back of matches each versus the same team. Nadra Nagar Havili and Daman and Dew as Bengal are trying to make a curve. It's a lovely stick work, and what a good assist to the center of the goal line. And there is a goal for Hockey Bengal, believe it or not.
The girls from Bengal, what a lovely uprising. Lovely stick work, lovely assist. Great recovery. Look at that. The good diagonal position. The cross came in right to the center of the striking circle. The goalkeeper is very much ahead as Kavya Sri from Hockey Unit of Tamil Nadu entered the back line. Did the completion with a lovely deflection of the stick work to get the first goal for Hockey Bengal and zero for Hockey Unit of Tamil Nadu. Oh, wonderful! Seriously wonderful. Couldn't get who's the goal scorer, but here is Bengal now. Tamil Nadu will be facing the brunt of the heat, and also for the natural factor because it's hot, it's humid, we're very much into the summers now. But the game moves on. That's the beauty of this game, isn't it? Tamil Nadu now have to make some good counter attack from the left to the right. This is where Tamil Nadu is going to defend. Can they get another one? Bengal. The Blues, the bloat of the Blues. From the right to the left is where Tamil Nadu are going to attack, stealing the ball, trying to pass it, trying to make a nice cross pass, but gets into the stick of Bengal. Bengal on the ascendancy. 23-meter circle has been bridged into a striking circle, trying to slam the shot diagonally, but couldn't get it. Penalty. Corner has been signaled, and the captain of Tamil Nadu walks up towards the umpire, Miss Kanishka SS, and asking a question again. Initially, also, she did ask a question. And the video referral signal, the T comes in. Let's see what happens from the upstairs. Tamil Nadu 0, Bengal 1. Penalty corner stage. Looking into the 5.5 minutes. This is really good. What is happening here is now Bengal with the penalty corner. They'll be saying, can you get into 2-0 before the hooter is being sounded, and then gulp our energy back for the start of the second quarter. 336 minutes precisely remaining. Yeah. Bengal injection starts off with a blow the whistle. There you go. Stops and a drag flick. No. Russia very much ahead. That was a good work. The face mask will go off from Tamil Nadu with a sigh of relief as wide being signaled by the umpire. Opportunity gone by. Bengal is still there trying to hammer the shot from 23-meter circle. Tamil Nadu does well to get it going. The defense on the back is 3-2. 3 in the last corridor of defense, too little ahead, which is immediately back of Bengal. Couldn't get it exactly 300 seconds now. How quickly the time goes out.
The blink of an eye. That's what you talk about always. Good water just sprinkling also from the way it has just reverberating all across. Nice angle, nicely splayed up. Nice movement of the stick. Good going. Very happy with the way I'm sure the movement is. Now for the goals. Never gets it easy, but they are doing wonderfully well at the moment to stick it up, to get it going, and that's what you talk about, all this movement that you so much save. Sure. How they just recover, and Tom Bengal gets a goal. Absolutely voicing the toughness here at the moment, not getting easy at all. One by one, they're getting it. 4 minutes just remaining here. Stops, the rack fling slamming across the surface. Doesn't get it. Another penalty corner, which comes another set of face marks being thrown away into the corner out of the playing area. 0 for Tamil Nadu, 1 for Bengal. Just be one. Don't be surprised if till the end it remains as the same scoreline 0-1. We have had a handful of the similar scoreline in the previous matches of the league phase. You're watching the 16th edition of Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, coming all the way live on this wonderful historic venue of the Marangomke Jaipal Singh AstroTurf Hockey Stadium, being located here in the capital city of Ranchi in Jharkhand. Live and exclusive, all these pictures on the YouTube channel of Hockey India. From someone who has not been to the venue, let me tell you, it is located right at the edge of a main street, which also has a football stadium just some meters ahead. And it's a nice road as you walk past the entrance line. Oh, penalty corner! As I was trying to just explain the vicinity of this hockey stadium, signal comes in for penalty corner advantage for hockey unit of Tamil Nadu, the girls in yellow. And from the color that I'm seeing, it seems like it's a little bit of a fluorescent green and white and green. And again, we can term it as yellow. So they're on, they are trailing by 1 goal. So they need to be with a goal scoring formula for Tamil Nadu. Else it will get tough for them to make a recovery. All ready for the injection is Tamil Nadu. See what it's just benign for them, what lies in the corner for them, what is luck saying, stops, passes, and storms it from the right flank. Doesn't get into the vast territory. Have to be so much of spooting and spurning and knowing of what it is. Have to be just one of those front runner that we always talk about on the right hand column. That's always been never gets easy, as you always talk about of how it goes and how the movement is. Just trying to get into it in a nice bit of a process at the moment with still with 2.5 minutes remaining. Another penalty corner opportunity for Tamil Nadu. Waiting for the injection to come. So you can curve it anywhere. That's at the stroke of the corner. You can see one more receiver specialist. The battery is there, slams it, and it gets right into the padding of the goalkeeper, and it goes out of bounds. Face marks also gets out of bounds. There's another penalty corner for Hockey India of Tamil Nadu, goes in vain without being the scoreline rotating from 0 to 1, as it remains the same, with Bengal leading by 1 goal. 127 seconds remaining. The top by, and they just get this move
some thwarting away, not getting easy at all for Tamil Nadu. But again, it's not a very aggressive moves that from Bengal. But the moment they get into the home of Tamil Nadu, they've been able to create that waves of tension, the waves of that strong ripples which is coming in, and which eventually has been leading up to goal, the only solitary goal, if you can dare say only, but it seemed like more than 10 and 100 goals at the end of the contest. So so much it benigns now for Tamil Nadu come back in this contest at least to even it up at 1-1, and then you never know, one brings two and then can change the complexion of the game altogether for hockey unit of Tamil Nadu for the girls in the sub junior. This is under 17. When you talk about sub junior, it means the under 17 women's category. Remember, that's how it is. Under 17, under 19, then you progress on one under 21, 23, and finally you progress and you shine yourself in India colors, that sporting jersey in the blues that you so much play for passionately. We need to do 40 seconds as you talk about all this passion and the excitement for all the girls to go about with stick work, move right to address now Tamil Nadu, but it's not the area they're going to score. This is for Bengal to score. So I feel it will remain as 1-0, the score line in all fairness. Or should I say 0-1? That's how the scoring has been showed on your screen. 10 seconds. You can see another circle. Let's add a corner from the back of the fencing. And behind the dugout and the technical bench. She's enjoying her moment in the sun. Under the sun, the moments from Hockey Bengal and Hockey Unit of Tamil Nadu will come to an end with the blow of the hooter at quarter number 1. So Bengal will be happy. They'll be touch probably disappointed. They might be knowing that okay, we could have got 2 goals, but vastly will be disappointed. Will be Tamil Nadu of not being able to convert those penalty corners. We'll be back for the second quarter very soon. Don't go far away. This is Mayur Barwa, and we'll be back live and exclusive on Hockey India. So stay tuned. And we are all set to start quarter number 2. Bengal 1, Hockey Unit of Tamil Nadu 0. Watching the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. This is match number 2 of day number 7. With the mic, I'm Mayur Barwa, getting on with the pace of the first half. With me will be joining for the second half will be Mr. Shamim Alam in Hindi, our most renowned Hindi commentator, all the way based right in the same city where this tournament is being played in the capital of Ranchi in the state of Jharkhand. What a venue to
get all your progress moving. There's so much of you just knowing and just just bolting yourselves to know what is the next chapter in the girls of Indian hockey beckons. And this is what it is. It's right in front of you, playing some good hockey at the moment. And I'm sure you must have also made your own notes on who are who playing whom, and then knowing that this is exactly that you're tuning for, and nice progress at the moment, and a good game structure, nice movement, really well. And the moment you try and check, this is not something which you been just knowing, but all totality, this is something which you always love to check. But a game which is gives you ample of memories to rejoice, and so much of making it yourself. I believe you can steal up the show, but you can never so never. Absolutely wonderful recovery. But Bengal will be trying to say that let's believe we can get one more goal from here on and upset the rhythm of hockey unit of Tamil Nadu. Goal stick work clinched. I can hear the sounds, I believe. I couldn't hear much. So you can see the cycle from right back of all those hostel areas. They are enjoying the moment under the sun. Beg your pardon. And then good to see a few crowds in there, including I believe that's a goalkeeper watching the progress of this match, and might be biting her nails, which is not a good habit, but that happens when you have a little bit of attention. Delhi winning by 6 goals to 0 versus Assam in the previous encounter. What a good match! In fact, 7-0, I believe, versus Assam in the previous one. The yellow versus orange, and now it is Bengal again. They have got some more than a handful of chances to convert the penalty corners, but we're not being able to do. It's just one field goal, which have been able to do just at the moment. Trying to direct flick, the ball goes out of bounds. The head mask also comes out to give them some more air and the feel of the energy on the spores of their skin. Let that sweat just rip out. And it's very, because it's very hot and humid, you need to apply your sunscreen lotion. And girls are very much very more than the boys, but nowadays, given the advance of the technology, the reels that you see, all are very much aware of what to use, what not to. Use it judiciously, use it the right components which will be suiting your skin, because everyone has a different skin complexions and different skin texture, if I have to correctly put it. So but it's very important that you use your sunscreen lotion, because the sun can be damaging on your skin, and you need to have a longevity in your playing career, because these are just under 17, not even into a legal age. So a long time to go from this age and then to progressing ahead. Because on and off the field there's many things which can affect, and so you need to prolong your career beyond injuries can part and parcel, but not everyone will make the mark. But you need to keep on passionately playing to the best, and dutifully just carry on from dutiful to beautiful. And this from being beautiful, here comes with vengeance to open the scoreline is Tamil Nadu to make it 1-1. The pressure is now back on Bengal. Nice footwork. We have to check where Bengal has met that inroads, that nice marker going. And the flanks a shot from the corner. Look at that. Nice deflection gone, but then couldn't do it. Got
It rebounded from the goalkeeper, and then she took the chance. And it's not a heavy broad stick, isn't it? So that will tell you practice makes perfect, and she perfectly got that ball going, move into the goal post. I have an exclusive on the YouTube channel of Hockey India, and nicely progressing it all up, and you never know of what it is. See how they go in the work and in the business. And oh, penalty corner. And Tamil Nadu will be s- pouring and putting it all over. See what is for the mission to go ahead. See, 9 minutes remaining in the progressive quarter. Let's see what it just goes on from the video referral. It's 1-1 both for Tamil Nadu and Bengal. Mm. 9 minutes. Holding up. There's still be so much ground in progress. Let's see what is been done. It's been all twatted away. So good work from Bengal for not allowing Tamil Nadu to make the second one. Or else it would have been hugely disappointing. This is really something which is really sometimes of a shocker. Mhm.
And after this, that's what happens. They reached this point, and it just broke out. And then, let's see what happens. And this is really serious. If they can know of how they can now go on and address some of the concerns. And it'll be going on forever. And then and you'll be lacking almost you're playing it as tail blessed. 7 minutes to move. You can convey as many regards as possible and have some good happier time and have great memories from here. It's only about how you can play it up. So less than 7 minutes remaining. It's a good contest. And just inside the striking circle, Tamil Nadu suddenly building out a nice small attack, I would say. Beg your pardon. 1-1 at the moment. Bengal certainly feeling the heat. They haven't loosened their grip, but you definitely feel something coming every time they come towards the striking circle. Movement is nice, and Tres crossing it very nice, slams it from the corner. It's a stick work right in time. The umpire says you can get a little behind because this match is you need to play a little back of the angle. I'll be joined by Mr. Shamim Alam very soon for the start of the third quarter. I'm sure sir is ready in the wings to deliver his absolutely clean and spotless Hindi commentary. Has great name in the annals of commentary, and now they all know how he can be so good with his hockey, football, athletics. Recently, athletics was conveyed was conducted the athletics championship, the national championship in Ranchi, and Samim sir was one of those important core member of the commentary team. And he delivered such a spotless comedy. Never easy, let me tell you. In athletics, it's more tougher than in hockey and football because it has to be continuous. Because the sprinter, the athlete, keeps on just moving along and moving along with the ball. Is the stick, and the romanticism of Bengal could have been very clinical. If could have been a diagonal cross hit into the jaws of the goal post. It is not to be. It remains at 1-1. The scoreline. I said, don't be surprised if it remains a 0-1, but slowly it tickles over to 1-1. With Hockey India now feeling that okay, we'll be resetting our scoreline clocks to almost like 0-0. So whenever there's like even Stevens like squared up at 2-2, 3-3, 4-4, is almost you are resetting your energies back to 0-0 because no one loses, no one wins, and these are league matches, so there's no penalty shootout. Getting into quarterfinals, then the semis, and then the final, there will be penalty shootout to decide the winner. And that's what quarterfinals, semi-finals, and the finals will be coming very soon. And the finals slated on the 12th of April on a Sunday for you to enjoy the game. We'll be there with the coveted trophy of the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026. Will be a very nice one. We have already, I'm sure, figured out who will be there. It's a good names, isn't it? Urisa playing good hockey. Tamil Nadu is playing well. Some nice names who have cropped up. They should be there and playing through the quarterfinals and then progressing ahead from the knockouts of the semifinals and on towards the hard liner, which will be played at. So all will be in the afternoon games. I've already mentioned earlier how the timings will be morning 7 o'clock, 7, then 10, and 12, and then we'll have at 4 o'clock the quarterfinals.
3 minutes remaining from this match now to a line. See some good live pictures coming all the way. Good to see the progress moving. Movement is really nice. Really going ahead with the ball. Progressing nicely. Nicely done. And they're just trying to hammer it. Trying to get from the right flank. Flanks have started. Been moving along, trying to curtail some of the shots, and very nice. Let's see what happens. Be nice to create the inroads and to move it nicely, scaling the shores of the business so well. Eventually, this will be one of those days. I'm sure it will be really nice to move along. How it can be just gelling in front of them. Less than 2 minutes remaining for this match to now finish by. As you look through all the intricacies of where probably a second goal might just be coming in for either of the girls, find a goal fit moment, but not already, because both of them have one goal each. But what will be the coaches be saying from here on will be very important for both the girls. First for Bengal for sure, because they were on lead with one goal and then lost away with just one goal. It might just be one, but it can be effective going into the result. And as we look ahead into the knockouts phase of this championship, 66 seconds remaining for the blow of the hooter to end quarter number 2 and to bring in the end of the first half of the second match of day number 7. This action live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. So we just progress on. Some good shakes. Tamil Nadu in the striking circle. Can they make it 2-1? Getting to the defense corridor was not good enough. 33 seconds to go by. Shaking continues. 30, 28. Where does the movement go from here on? We are badging on something good here. 20 seconds remaining. Lovely sort of. So much of sort out of progress, and now it's into a single digit of this match finishing. Tamil Nadu, can they get it going? Just 5 seconds remaining. Can they get a goal? Can they make it 2-1? Oh, penalty corner! When it's just 2 seconds. Oh my goodness. Oh. I was about to say, welcome to the com box, Mr. Shamim Alam. But just 2 seconds. Oh, can Tamil Nadu say 2 seconds? Can we make it 2? Is this the luck they were looking for? Is this the inroad they were looking for? I'll be surprised if you just get it seeing. We're waiting for this to happen for some time now. We're trying to progress. It all ends up looking at the injection. All waiting started. We're looking for the whistle to be blown. Let's see if it comes at 2-0. Injection has been done. Stops. Drag flicks. The ball rebounds in the air. Well stopped. And trying to make it progress ahead. Penalty corner can be converted. The chance is still there. The ball moves away towards the right flank. It's nice. Stick works. Hammers it from the right flank. The ball goes out of bounds. And it is also the blowing of the hooter to signal the end of the first half. What a wonderful brand of hockey we have seen, both from Bengal and then Tamil Nadu. Really good work for the start of the second half. It will be Mr. Shamim Alam with the mic. Thank you so much for joining into action. This is Mayur Bora. I'll be signing off and joining with you guys in the afternoon. All the section will come to you live and exclusive on Hockey India. Welcome to the com box, Samim sir.
नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची के मरंग गोम के जयपाल से मुंडा स्टेडियम से मैं शमी आलम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ आपका स्वागत करता हूं, ये बताते हुए कि आज यहां पर सुबह के सत्र का दूसरा मुकाबला शुरू हो गया है। हॉकी यूनिट तमिलनाडु और दूसरी तरफ से हॉकी बंगाल की टीम। स्थिति इस वक्त है 1-1। पहला गोल किया था बंगाल की तरफ से किया गया था, दीपिका गुड़िया ने खेल के 9वें मिनट में गोल किया, लेकिन उसके बाद जी स्वाथी जो है तमिलनाडु के, उन्होंने खेल के 20वें मिनट में बराबरी का गोल किया। मैं बता दूं इस वक्त दोनों टीमें 1-1 की स्थिति में खेल रही है और तीसरा क्वार्टर का खेल इस वक्त शुरू होता हुआ। और यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा है इस वक्त यहाँ पर तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु की टीम पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त अर्जित करती हुई। मौका है यहाँ पर तमिलनाडु के लिए स्कोरिंग के ग्राफ बढ़ाने का। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आज मुकाबले का है 7वां दिन। 7वें दिन का दूसरा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। सामने टीमें हैं तमिलनाडु की टीम और दूसरी तरफ है हॉकी बंगाल। तमिलनाडु की तरफ से बॉल लेके निकली हुई है जी स्वाथी जिन्होंने पहला गोल किया, बराबरी का गोल किया था तमिलनाडु की तरफ से। यहाँ पर इंजेक्शन की तैयारी, इंजेक्ट बॉल को रोका गया, बढ़ा दिया गया है यहाँ पर ड्रैग के लिए। और अभी भी जो पोजीशन बनाने की कोशिश, इसको यहाँ पर डी के अंदर खेल चल रहा है। बहुत अच्छा बचाव बंगाल के द्वारा। तो अभी भी यहाँ पर खतरा बना हुआ है बंगाल के ऊपर। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये खतरा टला बंगाल के ऊपर से। स्थिति है 1-1। पहले बंगाल के द्वारा गोल, उसके बाद बराबरी का गोल तमिलनाडु की टीम करती हुई। दीपिका गुड़िया ने खेल के 9वें मिनट में गोल किया था बंगाल के लिए, लेकिन उसके बाद खेल के दूसरे क्वार्टर में जी स्वाथी जो हैं तमिलनाडु की, उन्होंने बराबरी का गोल किया। तो स्थिति है 1-1। जबरदस्त इस वक्त हॉकी खेल रही है दोनों टीमें। जहां तक सवाल है एक तरफ से बंगाल का और दूसरी तरफ से है यहाँ पर तमिलनाडु का सवाल है। दोनों टीमें इस वक्त बराबरी का गोल। मैं बता दूं आज की निर्णायक हैं एक तरफ से रंजू कर्मकार और दूसरी तरफ से हैं शिब्याएश। मैं बता दूं शिब्याएश जो है ये आती हैं केरला से आती हैं, जबकि जो रंजू कर्मकार ये आती है उत्तर प्रदेश से। स्थिति इस वक्त यहाँ पर है 1-1। आज के बता दूं मैं स्कोरिंग जज हैं हरिंदर कौर और दूसरी तरफ से हैं टाइमिंग जज पिंकी नायक। रिजर्व अंपायर हैं मधु कुमारी, ये उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो स्थिति है यहाँ पर 1-1। जहाँ तक हॉकी यूनिट तमिलनाडु का सवाल है, बराबरी का गोल करने के बाद एक अभी इस वक्त बराबरी की स्थिति में आ गई है बंगाल का। मैं आपको थोड़ा सा परिचय पर बता दूं। बंगाल तमिलनाडु की तरफ से एस काव्या श्री खेल रही हैं गोलकीपर के रूप में। OVR है जैसे नंबर 2 में, 3 में है एस बंदूर शर्मा, 4 में हैं कैनी मात ज्योति पी, 5 में खेल रहे हैं कनिष्का एस जो अपनी टीम के कप्तान भी हैं। जैसे नंबर 6 में खेल रहे हैं एस श्रीनाथ, 7 में जुनिशा मादीम MJ, 8 में खेल रहे हैं जी स्वाति, 9 में PS संजना, 10 में प्रतिभा R, 11 में R प्रियंका, 12 में के अमशाकानी, 13 में P मधुमिता, 14 में हेमा मालिनी सी, 15 में PS तेजस्वी, 16 में माथु श्रीभी, 17 में बेबी लक्ष्य और 18 में M दीपिका। यहाँ तक बंगाल का सवाल है। बंगाल के इस वक्त गोलकीपर के रूप में खेल रहे हैं हरि कीर्ति खेल रही हैं, जबकि अतिरिक्त गोलकीपर हैं कशिश रजक। 10 नंबर 2 में खेल रही हैं आरती कुमारी, 3 में लक्ष्मी सिंह, 4 में काजल तिवारी, 5 में स्वाति सरकार। और यहाँ पर ये पेनाल्टी कॉर्नर शायद इस वक्त अर्जित करती हुई यहाँ तमिलनाडु की टीम। 6 में है चंदन हांसदा, बंगाल के खिलाड़ियों का मैं परिचय दे रहा था। 7 में पूजा कुमारी साहब जो कप्तान हैं, 8 में आशा धाली, 9 में कशिश खातून, 10 में दीपिका गुड़िया जिन्होंने आज पहला गोल किया था खेल के 9वें मिनट में बंगाल की तरफ से, 11 में रजनी खातून, 12 में मशकूरा खातून, 14 में आयशा रजक,
15 में संगीता तुरिया, 16 में साधना सरकार, 17 में स्वामी मांझी, 18 में दीपिका बर्मन यहाँ पर इंजेक्शन की तैयारी चल रही है, पहुँची हुई हैं। जो निशा देशनी एम इस वक्त यहाँ पर तमिलनाडु की तरफ से, तो यहाँ पर इंजेक्शन अभी भी है। स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर खेल होता हुआ बंगाल के सर्किल के ऊपर हमला पनपता हुआ बंगाल के ऊपर, और अभी यहाँ अच्छा मौका है यहाँ पर तमिलनाडु के लिए। खतरा टला नहीं है, बंगाल के ऊपर से बॉल को बढ़ाया गया था साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन यहाँ पर CBIS का इशारा, गेंद चली गई है बाहर। तो स्थिति इस वक्त यहाँ पर एक तीसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है। 11 मिनट का समय इस वक्त बाकी है तीसरा क्वार्टर का, और हम आपको लिए चलते हैं मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, रांची का खूबसूरत स्टेडियम, जहाँ पे कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हो चुके हैं इससे पहले। एशिया कप, महिला हॉकी और महिलाओं का ओलंपिक क्वालिफायर का भी मैच यहाँ पे हो चुका है। 2 बार HIL का भी मुकाबला हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले HIL का मुकाबला यहाँ पर खेला गया था। लड़कियों की टोटल मुकाबला यहीं पे खेली गई थी, मेन का, कुछ मेन का भी मुकाबला यहाँ पे खेला गया था। तो स्थिति इस वक्त है 1-1 है। तमिलनाडु की टीम के क्षेत्र में इस पर बढ़ती हुई बंगाल की टीम के खिलाड़ी, गेंद है बंगाल के खिलाड़ी आशा धाली के पास। आशा धाली बॉल लेके निकलने की कोशिश, लेफ्ट फ्लैंक से साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया है। यहाँ पर गेंद एक बार आई गई थी रजनी खातून के पास, रजनी खातून ने बॉल को पीछे सरका दिया पूजा कुमारी शाह के लिए, जो कप्तान है। पूजा कुमारी ने अपने राइट विंगर को बॉल को बढ़ा दिया, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बढ़ने की कोशिश है, लेकिन बहुत अच्छा इंटरसेप्ट वहाँ पे तमिलनाडु का। स्थिति 1-1, तीसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है इस वक्त। अच्छा तालमेल के साथ खेल रही है यहाँ पर बंगाल की टीम और तमिलनाडु की टीम भी। बराबरी का खेल इस वक्त चलता हुआ, और यहाँ पर फ्रीट मिलता हुआ बंगाल को अपने क्षेत्र से। तमिलनाडु के एक खिलाड़ी इस वक्त मैदान से बाहर जा रही हैं। PS तेजेश्वरी इस वक्त मैदान से बाहर गई। फ्रीट मिलता हुआ तमिलनाडु को अपने क्षेत्र में। प्रतिभा आर के पास है बॉल। प्रतिभा आर मिडफील्ड के खिलाड़ी हैं। बॉल को हल्का फ्लिक किया है, सामने खड़ी अपने साथी खिलाड़ी को बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए मदरका को क्रॉस करते हुए तमिलनाडु के खिलाड़ी बॉल को राइट विंगर को बॉल को बढ़ा दिया है बहुत ही तेज तरीके से। इस वक्त राइट विंगर बॉल को निकलते हुए स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वहां पर अच्छा इंटरसेप्ट, यहाँ बॉल को जोनिशा देफनी को रोका गया, और बेहतरीन इंटरसेप्ट यहाँ पर बंगाल के खिलाड़ी के द्वारा। राइट विंगर को बॉल को बढ़ा दिया गया है। राइट विंगर इस वक्त 30 मीटर रेखा के पास पहुंच गई है। तमिलनाडु के 30 मीटर रेखा के पास अच्छा पास यहाँ पर मौका मिल सकता है। यहाँ दीपिका गुड़िया के लिए बॉल को भेजा गया था। दीपिका गुड़िया ने बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश की स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर तमिलनाडु के, लेकिन गेंद ठीक से आई स्टिक पे नहीं, और यह मौका हाथ से निकला बंगाल के हाथ से। बंगाल 1 तमिलनाडु 1, बराबरी का खेल चल रहा है। तीसरा क्वार्टर का लगभग 7 मिनट का खेल तो हो चुका है, मैं बता दूं, और टीमें इस वक्त दोनों एक की स्थिति में चल रही है। बंगाल के खिलाड़ी के पास आरती कुमारी के पास है बॉल। आरती कुमारी ने बॉल को लंबा हिट किया है साथी खिलाड़ी के लिए। मदरका को क्रॉस करते हुए राइट विंगर को बढ़ा दिया है। बंगाल इस वक्त अटैक के ऊपर, यहाँ पर लंबी हिट, यहाँ पर लेफ्ट विंगर बॉल को ले नहीं पाई, बहुत तेज गति से ये निकल गई इस वक्त यहाँ बाहर, टच लाइन के बाहर चली गई। फ्रीट मिलेगा, कॉर्नर फलेगा है उससे लगभग 10 फीट ऊपर। यहाँ पर तमिलनाडु के लिए हॉकी यूनिट तमिलनाडु, अच्छा पास। तमिलनाडु की टीम शुरुआती दौर में नहीं अपीयर कर पाई थी, लेट से पहुंची यहाँ पर रांची, लेकिन सारे मुकाबले उसके खेले जा रहे हैं जो मुकाबले बचा हुआ है। और मैं बता दूं ये जो मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है, ये यहाँ पर डिवीज़न बी का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। यहाँ से डिवीज़न बी का समाप्त हो जाएगा अभियान। तमिलनाडु और यहाँ पर बंगाल के बीच मुकाबला चलता हुआ है। इस पूल ए में, डिवीज़न बी के पूल ए में थी दिल्ली हॉकी, दादरा नागर हवेली, यूनिट तमिलनाडु, बंगाल और असम। इससे पहले आपने देखा कि यहाँ दिल्ली की टीम ने असम को बहुत बेहतरीन
मुकाबले में ज़बरदस्त न सिर्फ टक्कर दिया बल्कि 7-0 से पराजित कर दिया आसाम को। तो इस तरह से स्थिति है। फिलहाल यहाँ पर एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई तमिलनाडु की टीम। इंजेक्शन की तैयारी चल रही है। तमिलनाडु की तरफ से जी स्वाति इंजेक्शन के लिए पहुंची हैं। जी स्वाति जिन्होंने खेल के 20वां मिनट में बराबरी का गोल किया था तमिलनाडु की तरफ से। बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं, अट्रैक्टिव खिलाड़ी हैं जी स्वाति। अच्छी कलात्मक हॉकी खेलते हैं। स्टैक बढ़ा गया, इंजेक्शन, लंबा हिट, अच्छा मौका है यहाँ पर। और यहाँ पर गोलकीपर जो हैं बहुत अच्छा, हरी कीर्ति ने यहाँ पे बचाव किया बंगाल की तरफ से। तीसरे क्वार्टर का खेल चल रहा है इस वक्त। मध्य रेखा के पास तमिलनाडु के खिलाड़ी के पास है बॉल को सीधा पास बढ़ा दिया गया। बॉल लेके निकलने की कोशिश यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ पर इस वक्त बंगाल के खिलाड़ी के पास गेंद चली आई है। अपने क्षेत्र में बंगाल की खिलाड़ी इस वक्त खेलते हुए वहाँ से बिल्कुल लगे हुए। तमिलनाडु के खिलाड़ी सर्किल एंट्री करती हुई तमिलनाडु की टीम अच्छा मौके को निकाल रही है इस वक्त। अच्छा मौका है, बहुत बढ़िया मौका। और यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। तो स्थिति 1-1, लेकिन तमिलनाडु की टीम इस वक्त आक्रमण के ऊपर उतारू है। तो और यहाँ पर है पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई तमिलनाडु की टीम। वन वन की स्थिति है इस वक्त। एक बार फिर यहाँ पर जी स्वाति जैसे नंबर 8 निकली है इंजेक्शन के लिए। इंजेक्ट किया, रोका गया है, बढ़ा दिया गया ड्रैग के लिए। यहाँ पर साथी खिलाड़ी को पोजीशन लेने की कोशिश, लेकिन जब तक पोजीशन लेती वहाँ पर बेहतरीन ब्लॉकिंग किया गया। जो निशा देफनी थी उनको बहुत अच्छा ब्लॉकिंग किया गया आरती कुमारी के द्वारा। एक बार फिर लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा यहाँ पर है तमिलनाडु के लिए। स्टैम्प बॉल लेके आगे बढ़ते हुए स्टैगिंग सर्किल के अंदर घुसने की कोशिश, लेकिन अच्छा ब्लॉकिंग, अच्छा बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पे बंगाल के खिलाड़ी के द्वारा। तीसरा क्वार्टर का समय 5 मिनट 48 सेकेंड बचा हुआ है। तमिलनाडु के फीट मिलता हुआ प्रतिभा आर के पास है बॉल, जैसी नंबर 10 आप देख सकते हैं। प्रतिभा आर 23 मीटर रेखा के पास लंबा हिट, लेकिन उतना बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पर बंगाल के खिलाड़ी के द्वारा। गेंद यहाँ पे पूजा कुमारी शाह थी जो बंगाल की कप्तान, उन्होंने बॉल को बढ़ा दिया है अपने लेफ्ट विंगर के लिए। पीछे से आए वहाँ पर तमिलनाडु के खिलाड़ी, बॉल को क्लियर किया कनिष्का एस ने जो कप्तान है। लेकिन यहाँ पर काउंटर हिट ही बहुत अच्छा, काउंटर अटैक अभी होता हुआ यहाँ पर बंगाल की तरफ से। लेकिन रक्षा पंथी के खिलाड़ी बहुत मुस्तैद थी तमिलनाडु को, उन्होंने बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक बढ़िया पास। आप इस वक्त मिड फील्ड से यहाँ पर अटैक करने की कोशिश, तमिलनाडु के खिलाड़ी सर्किल एंट्री करने की कोशिश कर रही हैं। बॉल को सेंटर किया, क्रॉस पास बढ़ाने की कोशिश, और यहाँ पर मुझे लगता है ये पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा किया है खेल के निर्णायक ने। पेनाल्टी कॉर्नर है बीन अवॉर्डेड, लगता है पेनाल्टी कॉर्नर दिया गया। लेकिन देखिए क्या डिसीजन आता है। शिप्या एस जो केरला की हैं, यहाँ एस पेनाल्टी कॉर्नर को कंटिन्यू किया गया। बात कर रही है, उसे दिखाया जा रहा था किस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर को दिया गया। फिलहाल फील्ड अंपायर की वार्ता चल रही है वीडियो अंपायर से। एक बार फिर यहाँ पर जी स्वाति आगे बढ़ रही है, इंजेक्शन को तैयार। जी स्वाति तमिलनाडु की तरफ से हिट किया, और ये बढ़ा गया ड्रैग के लिए। अभी भी मौका है पोजीशन लेने की कोशिश। पर बॉल घूम रहा है डी के अंदर, अभी भी खतरा टला नहीं है यहाँ पर बंगाल के ऊपर से। अच्छा पास,
सर्किल के अंदर खेल चलता हुआ अभी तक दबाव बना के रखा है यहाँ पर तमिलनाडु ने बंगाल के ऊपर। एक बार फिर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर गेंद घूम रही है, बाएं फ्लैंक से एक बार फिर सर्किल एंट्री करने की कोशिश कर रही है तमिलनाडु की टीम के खिलाड़ी। और अब यहाँ पर फ्री मिलता हुआ अपने क्षेत्र से बंगाल को। बंगाल 1 तमिलनाडु 1। वन की स्थिति है। और यहाँ लगता है एक पेनल्टी कॉर्नर फिर अवार्ड किया गया है तमिलनाडु के लिए। जोनिशा देफ्नी इस वक्त गई है इंजेक्शन के लिए। जोनिशा देफ्नी इंजेक्ट, बॉल को रोका गया, बढ़ा दिया गया साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत ही आराम से खेल रही है इस वक्त तमिलनाडु की टीम। ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर बढ़त प्राप्त है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बराबरी का दोनों टीम खेल रही है। वक्त की नज़ाकत से फ़ायदा उठाना चाहिए था तमिलनाडु को, लेकिन बहुत यहाँ ढीला ढाला प्रदर्शन रहा। अभी जो देखा गया स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर कोई हलचल नहीं थी खिलाड़ियों के अंदर। स्थिति है 1-1। तमिलनाडु 1 हॉकी बंगाल 1। बंगाल जो झारखंड का पड़ोसी राज्य है, और एक समय था बहुत पहले जब बंगाल की कलकत्ता में देश की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। बंगाल वीर सेनानियों का देश है, क्रांतिकारी का देश है बंगाल। क्रांति की आग जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय चिंगारी यहाँ से भी काफ़ी तेजी के साथ फैली थी पूरी भारत में। सबसे कम समय में फांसी पर चढ़ने वाले खुदीराम बोस इसी बंगाल के थे। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्हें कहा जाता है, इसी बंगाल के रहने वाले। हालांकि नेताजी का जन्म कटक में हुआ था उड़ीसा में, लेकिन उनकी अपनी वतन अपनी धरती, अपनी मातृ जो है मातृ प्रदेश ऊपर बंगाल है। तो बंगाल क्रांतिकारियों का देश है, और यहाँ से आज़ादी की क्रांति की बिल्कुल फूंका गया था। एक से एक बढ़ के क्रांतिकारी पैदा हुए बंगाल में। उसी बंगाल का मुकाबला है आज तमिलनाडु से है। ये बिहार झारखंड का पड़ोसी राज्य है बंगाल। तो लाइफलाइन से बॉल निकलने की कोशिश। तीसरा क्वार्टर का समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। परिस्थिति इस वक्त जो बतला रही है वो बता रही है कि यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तमिलनाडु के लिए भी और बंगाल के लिए भी। बराबरी का मुकाबला दोनों टीम खेल रही है। बंगाल की तरफ से हिट, बहुत तेज हिट लगाया गया साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर बॉल को बढ़ा दिया था पूजा कुमारी शाह के लिए। पूजा कुमारी शाह ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया। इस वक्त काउंटर अटैक अभी भी पूजा कुमारी शाह के पास है। बॉल राइट विंगर के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया है। राइट विंगर बॉल लेकर निकलने की कोशिश, साथी खिलाड़ी को पास बढ़ाने की कोशिश की गई थी कशिश खातून के लिए। कशिश खातून बॉल लेके कलेक्ट करते इससे पहले गेंद चली गई टच लाइन के बाहर। फिर मिलता हुआ सर्किल के ऊपर यहाँ पर बंगाल को, तमिलनाडु के सर्किल के ऊपर अच्छा पास। गेंद इस पर बढ़ा दी है पूजा कुमारी शाह के लिए। कप्तान लेके गेंद से छिन गई, सफलता मिली। इस बार तमिलनाडु के खिलाड़ी को 23 मीटर रेखा के पास बॉल को हल्का फ्लिक किया है अपने साथ ही खड़े खड़े बाएं फ्लैंक में एक साथी खिलाड़ी को। गेंद इस वक्त चली गई है लेफ्ट विंगर के पास। तमिलनाडु का लेफ्ट विंगर बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन गेंद से छीन गई। स्थिति इस वक्त है 1-1। तीसरा क्वार्टर का खेल अपने अंतिम सेकंड में चला गया है।
1-1 की स्थिति है। खेल अब यहाँ पर बराबरी का चल रहा है। तीसरा क्वार्टर का समय बहुत नज़दीक है, अब हुटर बनने की तैयारी चली है। लगभग 25 सेकंड का समय बचा हुआ है। बंगाल के खिलाड़ी के पास बॉल, बहुत अच्छा पास, बॉल लेके निकलते हुए लेफ्ट विंगर इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ बॉल लेके निकल रहे हैं। और मैं बता दूं ये हैं दीपिका गुड़िया बंगाल के। बॉल को छोड़ दिया है वहाँ पर, पूजा कुमारी साहब के लिए पास बढ़ा दिया है, पीछे बैकवर्ड पास बढ़ाया है। और गेंद एक बार फिर यहाँ पर है कशिश खातून के लिए, लंबा हिट। कशिश खातून ने बॉल को सीधा गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया। और ये यहाँ पर दूसरा गोल करती हुई बंगाल की टीम तीसरा क्वार्टर के जा कर के यहाँ पर 11वां मिनट में सफलता मिली। यानी अगर हम कुल बात करें तो 41वां मिनट में यहाँ पर कशिश खातून ने दूसरा गोल डाला है। इकतालीसवां मिनट में थर्ड गोल, ये दूसरा गोल। पहला गोल दीपिका गुड़िया ने डाला था खेल के 9वां मिनट में, और अभी अभी यहाँ पर कशिश खातून ने खेल के 41वां मिनट में दूसरा गोल डाला बंगाल के लिए। और यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ। मिलेंगे हम चौथे क्वार्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक। नमस्कार, स्वागत है आपका हॉकी इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और मैं शमी आलम, चलिए एक बार आपको लिए चलता हूं रांची का मरांग गोम के जबार से मुंडा स्टेडियम चलते हैं, जहां पर आज मुकाबले का है 7वां दिन। और 7वें दिन में एक बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है हॉकी यूनिट तमिलनाडु और दूसरी तरफ से हॉकी बंगाल के बीच। अभी अभी तीसरा क्वार्टर का 41वां मिनट में यहाँ पर गोल डालकर बंगाल के यहाँ पर कशिश खातून ने एक गोल की लीड दिला दिया है बंगाल को। स्थिति है इस वक्त 2-1, हॉकी बंगाल 2 और तमिलनाडु 1। तमिलनाडु को बराबरी पर आने के लिए यहाँ पर एक गोल की ज़रूरत है। इस वक्त 23 मीटर रेखा के पास तमिलनाडु के खिलाड़ी पहुँचते हुए यहाँ पर प्रियंका पहुँच गई थी, और लेकिन अच्छा इंक्रीमेंट वहाँ। एक बार फिर यहाँ पर लंबा राउंड कॉर्नर हिटिंग का इशारा, यहाँ PS तेजस्वी इस वक्त निकल रही है तमिलनाडु के, गेंद से छिन गई। स्थिति यहाँ पर 2-1। हिट मिलता हुआ एक बार तमिलनाडु का, एक बार फिर यहाँ प्रवेश हो रहा है डी के अंदर, लेकिन अच्छा बचाव यहाँ पर डिफेंडर के द्वारा जो है बंगाल के डिफेंडर। अब यहाँ पर काउंटर अटैक बहुत तेजी के साथ बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए बॉल को घुमा के रजनी खातून ने अपने कब्जे में किया है। बहुत छोटी कद की खिलाड़ी हैं रजनी खातून, लेकिन बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर फिर मिलता हुआ सर्किल के ऊपर बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए आयशा रजक, गोलकीपर ने अच्छा बचाव किया। ऐसे काव्या स्त्री ने बहुत बढ़िया हिट किया गया था आयशा रजक के द्वारा,
लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी, तमिलनाडु के गोलकीपर एस काव्या जी ने बहुत अच्छा बचाव किया है। तो स्थिति है 2-1, चौथा क्वार्टर से इस वक्त शुरू होता हुआ। गेंद एक बार है यहाँ पर के अमशाकानी के पास बॉल, तमिलनाडु के खिलाड़ी बॉल लेके आगे बढ़ते हुए इस वक्त पहुँच गए हैं 23 मीटर रेखा के पास। हल्का फ्लिक पास बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी के लिए भी, सुदर्शना के लिए। सुदर्शना बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही है, एक खिलाड़ी आपके बंगाल का उनके साथ साथ चल रही थी। फ्लिट मिला है यहाँ पर तमिलनाडु को डी के ऊपर, और अच्छा पास, मौके को तलाश रही है, जगह वहाँ पर बनाने की कोशिश, पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। शिप्या एस ने यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा किया है तमिलनाडु के लिए। इंजेक्शन की तैयारी, तमिलनाडु की तरफ से इंजेक्शन की तैयारी हो रही है। इंजेक्ट, बॉल को बढ़िया ड्रैग, और यहाँ गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। व्हाट ए ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन ऑफ पेनाल्टी कॉर्नर इनटू गोल। बहुत अच्छा कन्वर्ट किया गया, देखिए किस तरह से यहाँ पर गोल हुआ। इंजेक्शन, और यहाँ पर बहुत ही तगड़ा हिट, ड्रैग, गेंद फिर आई घूम करके, और यहाँ पर जर्सी नंबर 13 यहाँ पर पी मधुमिथा ने बेहतरीन डिफलेक्शन किया और यहाँ पर गोल किया बराबरी का। और ये गोल हुआ है चौथा क्वार्टर का तीसरा मिनट। अगर कुल मिनट समय की बात करें तो खेल के 48वां मिनट में ये गोल हुआ है। तो खेल के 48वां मिनट में यहाँ तमिलनाडु की तरफ से बराबरी का गोल होता हुआ, और खेल चल रहा है जबकि चौथा क्वार्टर का मात्र 11 मिनट 45 सेकंड का समय बचा हुआ है। एक अच्छा मौका एक फिर निकाल रही है बंगाल की टीम, गोलकीपर का अच्छा बचाव, और यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त लगता है मिल गया है बंगाल को। इस पेनाल्टी कॉर्नर है बीन अवार्डेड इन फेवर ऑफ बंगाल। बंगाल के एक और मौसर मिलता हुआ यहाँ पर स्कोरिंग के ग्राफ को बढ़ाने का। अगर ये पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में डाल दिया जाता है, आयशा रजक इस वक्त अपने कदमों को आगे बढ़ाती हुई यहाँ पर इंजेक्शन के लिए तैयार। आयशा रजक खिलाड़ियों के ऊपर उछलती हुई नजर डाल रही हैं। आयशा रजक स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इस वक्त आयशा रजक को, बंगाल के होनहार खिलाड़ी, ये ड्रैग फ्लिकर हैं। इंजेक्शन, बॉल को रोका गया, बढ़ा दिया गया अभी भी मौका, लेकिन इतनी अगर आप देर कीजिए तो कहीं देर न हो जाए वाली बात हो जाएगी अभी भी। लेकिन स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर खतरा टला नहीं है इस वक्त तमिलनाडु के ऊपर से। और यहाँ कॉर्नर का इशारा बंगाल के लिए, लगातार पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित कर रही है बंगाल की टीम, लेकिन इस पेनाल्टी कॉर्नर से फायदा उठाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी बंगाल के लिए। हिट और ड्रैग, दूर मार गए, फिर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। आपसी मंत्रणा चल रही है बंगाल के खिलाड़ियों के बीच, कैसे इस पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया जाए। और यहाँ पर लंबी कद के खिलाड़ी आगे बढ़ती हुई इंजेक्शन के लिए हैं तैयार। देखिए ये बंगाल की तरफ से इंजेक्शन की तैयारी हो रही है। इंजेक्ट,
बॉल को रोका गया, इस वक्त बढ़ा दिया गया साथी खिलाड़ी के लिए एक मौका यहाँ पर। यहाँ अवसर था सटीक हिट लगाने का जो गोल पोस्ट के अंदर जाए। और ये ऐसा लेकिन हुआ नहीं यहाँ पर, और ये बॉल बाहर से निकला। 10 मिनट 45 सेकंड का समय बचा हुआ है, और यहाँ पर तमिलनाडु के खिलाड़ी कनिष्का एस जो कप्तान है उनको बाहर किया गया। बाहर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा एक बार फिर यहाँ पर CBIS का बंगाल के लिए। आपसी मंत्रणा चल रही है इस वक्त बंगाल के खिलाड़ियों के बीच, इस तरह से पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया जाए। हाउ दिस पेनल्टी कॉर्नर में बी कन्वर्टेड इनटू गोल, इस बात की ऊपर बात यहाँ जाके बंगाल की आशाएं टिक रही है। क्या ये पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया जाएगा? चौथा क्वार्टर का खेल चल रहा है इस वक्त। लम्हे को तो भुनाना पड़ेगा, इंजेक्शन किया हुआ, और यहाँ पर गेंद हाथ से टकराई, कैरेड हुआ, फ्री मिलता हुआ तमिलनाडु को अपने क्षेत्र से। एक बार फिर यहाँ पर इंजेक्शन की तैयारी। बंगाल की टीम कुछ समय से यहाँ पर दबाव बना के रखा है तमिलनाडु के ऊपर। हाथ से टकराई, कैरेड हुआ, फ्री मिलता हुआ तमिलनाडु को। स्थिति है 2-2, तमिलनाडु 2 और हॉकी बंगाल 2। राइट फ्लैंक से इस वक्त अटैक करती हुई तमिलनाडु की टीम। बॉल लेकर आगे बढ़े थे PS तेजस्वरी, बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, गेंद एक बार फिर पीछे सरकाया गया हेमा मालिनी शी के लिए। ये जिसने 14 जो मैं आप जो देख रहे हैं ये खिलाड़ी है हेमा मालिनी शी, तमिलनाडु से आती है। और संयोग की बात है यहाँ पर कि हमारी फिल्मी दुनिया की एक बड़ी हस्ती एक्ट्रेस जो हेमा मालिनी है वो भी तमिलनाडु से आती है। तो स्थिति इस वक्त 2-2 है, तीसरा चौथा क्वार्टर का खेल प्रगति पर है। एक बार फिर यहाँ पर सर्किल एंट्री करने की कोशिश कर रही थी तमिलनाडु की टीम लेकर खिलाड़ी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश और इंप्रूवमेंट हुआ, फ्री मिलता हुआ यहाँ पर तमिलनाडु को। तमिलनाडु अच्छा खासा दबाव बना रही है टीम। कनिष्का SS बॉल के यहाँ पर बहुत तेजी के साथ स्टिक को घुमाया था इन्होंने, लेकिन गेंद और स्टिक के बाद कोई मुलाकात नहीं। और ये खतरनाक खेल के लिए CBIS ने यहाँ पर कार्ड दिखलाया है खिलाड़ी को। ये देखिए जा रही है बाहर, इस खिलाड़ी को कार्ड दिखलाया गया। और ये हैं कनिष्का SS जो कप्तान हैं तमिलनाडु के। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, आप खेल के अंदर कितनी बड़ी आपके पास यहाँ गरिमा हो, पोस्ट हो, लेकिन डिसिप्लिन अनुशासन यहाँ सिर चढ़कर बोलता है। अगर आप गलत खेल का प्रयोग कीजिएगा, गलत स्टॉक लगाइएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा आपके विरुद्ध। और यही यहाँ पर हुआ। कप्तान तमिलनाडु के मैदान से इस वक्त उस समय के लिए बाहर भेजा गया है। तो स्थिति इस वक्त है यहाँ पर 2-2।
तमिलनाडु 2 और हॉकी बंगाल 2। अच्छा क्रॉस हिट लगाया गया था यहाँ पर बंगाल के खिलाड़ी के द्वारा। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा और यही वजह है कि यहाँ पर वक्त की नज़ाकत बतला रही है कि तमिलनाडु के लिए भी बराबरी का अवसर है और यहाँ पर बराबरी का अवसर है। जो भी टीम आखिरी समय तक जूझती रहेगी मैदान के अंदर, अपने खेल के अवसर को ढूंढती रहेगी, गोल करने के अवसर को निकालती रहेगी, उससे ही सफलता मिलेगी। क्योंकि जो टीम सुस्ता जाएगी वो टीम घाटे में रहेगी। स्थिति इस वक्त है यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 2-2 की स्थिति है। काफी लंबे समय का खेल हो चुका है, चौथा क्वार्टर का मात्र अब 5 मिनट 52 सेकंड का समय बचा हुआ है। बॉले की निकलने की कोशिश, लेकिन इस वक्त कुछ टेक्निकल व्यवधान आ रहा है। लंबा हिट, चौथा क्वार्टर का खेल चल रहा है। तकनीकी व्यवधान के चलते कुछ यहाँ पे कठिनाई हो रही है। तमिलनाडु के खिलाड़ी इस वक्त बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्थिति है 2-2। एक बार बंगाल का आक्रमण पनपता हुआ और यहाँ अच्छा मौका था बंगाल के लिए। तो 2-2 की स्थिति है। तमिलनाडु 2 हॉकी बंगाल 2। तमिलनाडु की तरफ से फ्री हिट यहाँ पर कानी मोजी बी ने लगाया है, साथी खिलाड़ी को पास दे दिया है। साथी खिलाड़ी को एक बार फिर यहाँ पर बंगाल का आक्रमण पनपता हुआ अच्छा मौका है यहाँ पर बंगाल के लिए। और यहाँ पर देखिए स्टैकिंग सर्किल के ऊपर बहुत तेज कोशिश की जा रही है बंगाल के द्वारा। फ्लैंक से देखिए डॉटेड लाइन के पास पहुंच गई है बंगाल की टीम, गेंद गई बाहर और यहाँ रंजू कर्मकार जो हैं खेल के नायक, उनका इशारा। स्टकिंग फीट जो है स्टक होके आ रहा है यहाँ हमारे पास इस वक्त। तकनीकी व्यवधान कुछ जरूर है और इसी के चलते हम सही रूप से आपको विवरण नहीं बता पा रहे हैं। फ्लिट मिलता हुआ यहाँ पर बंगाल को, बाएं फ्रेम में बंगाल ने बॉल हिट किया है अपने लेफ्ट विंगर के लिए बंगाल के खिलाड़ी ने, गेंद गई बाहर। फ्लिट मिलता हुआ अब यहाँ पर तमिलनाडु को, तमिलनाडु की तरफ से कानी मोजी भी इस वक्त फ्लिट लेते हुए सरका दिया है बॉल को। सामने खड़े वहाँ पर कृष्का एसएस के लिए जो कप्तान हैं, और गेंद लेकिन बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश बहुत साधना सरकार पहुंच गई थी। साधना सरकार ने बॉल को बढ़ा दिया है पूजा कुमारी साहब के लिए। पूजा कुमारी जो कप्तान ही बंगाल के राइट विंगर को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। खेल यहाँ पर 2 मिनट 54 सेकंड का बचा हुआ है। हालांकि कुछ हल्की यहाँ पर व्यवधान आ रही है तकनीकी। स्टकिंग इस वक्त जारी है, हमारे पास सीट जो है वो कट के आ रहा है। तो स्थिति है यहाँ पर 2-2, खेल अंतिम चरण में चलता हुआ। 2 मिनट 28 सेकंड का समय बाकी है। यहाँ पर तमिलनाडु की टीम में अटैक करती हुई नजर आ रही है।
देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले गोल डाला गया था बंगाल की तरफ से, तमिलनाडु ने बराबरी का गोल किया, फिर बंगाल, फिर तमिलनाडु की टीम से बराबरी का गोल। और यह पेनल्टी कॉर्नर का इशारा है। आखिरी कुछ लम्हे हैं बाकी हैं, कुछ मिनट खेल का, और 2 मिनट 18 सेकंड, और यहाँ एक पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई तमिलनाडु की टीम। हेमा मालिनी शी इस वक्त इंजेक्शन को तैयार, तमिलनाडु की तरफ से पेनल्टी कॉर्नर का इंजेक्शन इस वक्त तैयारी चल रही है। हेमा मालिनी शी इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया, और ये देखिए ड्रैग लगाने की कोशिश। अभी भी मौका है यहाँ पर तमिलनाडु के लिए। सर्किल के अंदर खेल चल रहा है इस वक्त, बंगाल के सर्किल के अंदर। गेंद गई इस वक्त गोल लाइन के बाहर। 16 गज का हिटिंग, ये सॉरी यहाँ पर लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा है इस वक्त तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु की तरफ से कनिष्का एसएस जो कप्तान है ने हिट लगाया इन्होंने। अभी भी सर्किल के ऊपर खेल चल रहा है अंदर यहाँ पर बंगाल के सर्किल के अंदर, लेकिन गेंद गई बाहर। बंगाल जो झारखंड का पड़ोसी राज्य है, इस वक्त बराबरी पर आके टिक गई है बंगाल की टीम तमिलनाडु से। हालांकि मैं बता दूं अब यहाँ पर तकनीकी व्यवधान खत्म हुआ, क्लियरेंस अच्छी आ रही है, अब फिट बढ़िया आ रहा है, और लंबा हिट यहाँ पर तमिलनाडु के खिलाड़ी के द्वारा, गेंद गई बाहर। अब 1 मिनट 20 सेकंड का समय बाकी है। मैं बता दूं इस वक्त तापक्रम है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी है 35%। हवा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है स्टेडियम के अंदर। आज बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मैं बता दूं कल हालांकि रांची में नहीं हुई बारिश, लेकिन झारखंड के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्य में काफ़ी जम के बर्फबारी हुई है, तेज तूफान चला। और यहाँ पर देखिए एक मौका टॉम हॉक लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन देर कर बैठी यहाँ पे संगीता तूरिया, जैसी नंबर 15, और ये मौका हाथ से निकला यहाँ पर बंगाल के हाथ से। एक बार फिर यहाँ पर बॉल लेके स्ट्राइकिंग सर्किल की तरफ पहुँच गई है पूजा कुमारी साहब। कप्तानी पारी खेलने की कोशिश कर रही है पूजा कुमारी, बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश। मात्र 10 सेकंड का समय बचा हुआ है। एक बार फिर यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुँचती हुई यहाँ पर बंगाल के खिलाड़ी, और अब यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। आखिरी लम्हे में पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई बंगाल की टीम। अवसर है यह बंगाल के लिए बढ़त प्राप्त करने का। खतरे का बादल मंडराता हुआ इस वक्त तमिलनाडु के ऊपर एक अवसर है बंगाल के लिए। यहाँ पर अगर पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर देती है बंगाल की टीम, तो निश्चित रूप से ये समय बहुत कम है, मात्र 6 सेकंड बचा हुआ है। इसके बाद तमिलनाडु को बराबरी का गोल करने के लिए रास्ते बिल्कुल लगता है ख़त्म हो जाएंगे। अब अवसर नहीं मिलेगा तमिलनाडु को। अगर ये टीम बढ़त बना पाती है बंगाल की टीम, तो निश्चित रूप से आज बंगाल की टीम यहाँ पर आखिरी समय में गोल करके पेनल्टी कॉर्नर को 2 गोल में तब्दील करके जीत जाएगी ये मैच। देखें क्या होता है, भविष्य इसके हाथ में है। इंजेक्शन, बॉल को रोका गया, हिट, और ये गेंद गई बाहर। इसी के साथ हूटर बजा। स्कोरिंग का टाइमिंग बता रहा है 0-0। और यहाँ इस वक्त यहाँ पर रंजू क्रमकार जो हैं वो बात कर रही है, उनसे बंगाल की खिलाड़ी बात कर रही है पूजा कुमारी शाह, ये कप्तान हैं। ये रंजू क्रमकार जो है अपने साथी खिलाड़ी, साथी जो है अंपायर हैं, उनसे बात करने के लिए जा रही है सिबिया एस से। व्हाट डिसीजन मे बी टेकन, यहाँ पर इस
मामले पर शायद बात करनी गई होगी रंजू कर्मकार CBI से। और यहाँ पर इस तरह से फाइनल हूटर बजा और यहाँ पे मामला जाके खत्म हुआ। दोनों टीमें बराबरी का मुकाबला खेल करके वापिस जा रही है शिविर में। इस वक्त बंगाल की टीम और दूसरी तरफ से तमिलनाडु।
नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मैं शमीम आलम आपका स्वागत करता हूं, ये बताते हुए कि यहाँ पर 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का मुकाबले का आज है 7वां दिन। और 7वें दिन में इस वक्त मुकाबला शुरू हो गया है। यहाँ पर डिवीज़न ए का मुकाबला, एक तरफ से है मिजोरम की टीम, दूसरी तरफ से है उत्तर प्रदेश हॉकी। पीली रंग की जर्सी में बता दूं, मैं हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स की दाईं तरफ ये उत्तर प्रदेश की टीम है, जबकि हमारी कमेंट्री बॉक्स की बाईं तरफ ये मटमैला रंग, सफ़ेद मटमैला रंग कहा जाएगा, ये है टीम मिजोरम की टीम। मिजोरम, ये दोनों टीमें अपना, मैं बता दूं, दूसरा मुकाबला खेल रहा है। उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 5-1 से पराजित किया था, एक बड़े गोल के अंतर से पराजित किया था। जहाँ तक सवाल है मिजोरम का, तो मिजोरम की टीम एक मजबूत टीम है और मिजोरम ने छत्तीसगढ़ को 2-1 से पराजित किया था। यानी छत्तीसगढ़ की टीम अपना 2 मुकाबला जो खेली वो दोनों मुकाबले को हार गई है। तो ये उत्तर प्रदेश भी अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है और यहाँ पर मिजोरम की भी टीम अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये मिजोरम, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों डिवीज़न ए का पूल डी में आती है। तो ये स्थिति है, यानी कि मिजोरम ने भी 3 अंक प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश ने भी 3 अंक प्राप्त किया है और दोनों टीमों ने छत्तीसगढ़ को पराजित किया। तो इस पूल में सबसे कमज़ोर टीम नजर आई है छत्तीसगढ़। तो यानी इस पूल का ये जो है मुकाबला है, ये अंतिम मुकाबला है। इसके बाद आज जो मुकाबला खेला जाएगा, हरियाणा के सामने होगी मध्य प्रदेश की टीम, उड़ीसा के सामने होगी पंजाब और झारखंड के सामने होगी बिहार की टीम। यानी पूल डी का, डिवीज़न ए का पूल डी का लीग का ये आखिरी मुकाबला। 3-3 अंक लेकर के यहाँ पर ये दोनों टीमें लीग का आखिरी मुकाबला खेल रही है। इस मुकाबले में जो जीतेगी टीम मिजोरम और उत्तर प्रदेश से, वो अपने पूल में शीर्ष स्थान पे चली जाएगी, टॉप पे चली जाएगी। चलिए अब चलते हैं खेल के मैदान में, आपको मैं लिए चलता हूँ। एक खूबसूरत हॉकी जहाँ पर चल रहा है, टीमें इस वक्त मिजोरम और उत्तर प्रदेश। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इनके खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कराते चलूँ। जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश के गोलकीपर के रूप में खेल रहे हैं वर्षा सिंह, जर्सी नंबर 2 में खेल रही हैं अरिका कुमारी, 3 में आद्या यादव, 4 में खेल रही है राशि सिंह, 5 में वैशाली, 6 में मानसी सागर, 7 में अंशु कुमारी, 8 में ममता कुमारी, 9 में आकांक्षा मित्रा। ये सर्किल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश इस वक्त कर रही थी यहाँ पर मिजोरम की टीम। 10 में खेल रही उर्वी यादव, 11 में अनूप पाल, 12 में नैना, 13 में दिव्यांशी सिंह, 14 में खेल रही है दिव्या यादव, 15 में विभा कटियार, 16 में गुरमीता, 17 में आराधना यादव। इनके कोच हैं अकरम महमूद और टीम मैनेजर है अर्शी परवीन सिद्दीकी। चलिए मिजोरम की तरफ चलते हैं। मिजोरम का जहाँ तक सवाल है, मिजोरम के गोलकीपर के रूप में खेल रहे हैं पीसी लालरिन छानी, ये गोलकीपर के रूप में खेल रहे हैं। और उसके बाद जैसे नंबर 2 में लाल रेम रुवाती स्तर, जैसे नंबर 3 में के भान लाल पेकी, 4 में शीलाल रुवात श्यामी, 5 में लाल रेम रुवाती स्टर, 6 में खेल रहे हैं लाल रिति लुवांगी, 7 में लाल था किमी, 8 में लाल रेम पुई, 9 में के लाल श्याम थारी, 10 में लाल भेन पुई, 11 में रेम रुवात पुई, 12 में लीजिया सी, 13 में लाल रेम रुवाती, 14 में है लाल रिन पुई जो अपनी टीम के कप्तान भी हैं,
इस वक्त अटैक कर रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचते हुए बहुत अच्छा ही है। टॉम हॉक गोलकीपर का अच्छा बचाव, अच्छा मौका था यहाँ पर। 15 में खेल रहे हैं लियान लूंग छांगी और 17 में सीमाल लसाओ में वम जय जेली, 18 में लाल पेक लुई। ये था खिलाड़ियों का परिचय। मिजोरम के खिलाड़ियों का नाम भी कुछ अजीब सा है इनका, तो खास करके मिजोरम और मणिपुर के खिलाड़ियों की नाम बड़ी टेढ़ी नाम होती है, जिनके तो इस तरह से अभी यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी बॉले के आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर लगता है पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित कर लिया है मिजोरम ने। पहला पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किया है मिजोरम ने। यहाँ फर्स्ट क्वार्टर का लगभग ये 6 मिनट में 6 मिनट में है पहला पेनाल्टी कॉर्नर। इस वक्त जा रही है लाल था किमी जर्सी नंबर 7 इस वक्त इंजेक्शन को तैयार यहाँ पर है मिजोरम की तरफ से। ये था खिलाड़ियों का मैं बता रहा था स्वरूप, इनका परिचय मैं बता रहा था। इंजेक्ट किया गया और लंबा हिट, और अभी भी यह है स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर खेल चलता हुआ। और एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा यहाँ पर मिजोरम के लिए। लगातार ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई मिजोरम की टीम। क्वार्टर 1 का खेल चल रहा है, खेल का 6 मिनट चल रहा है। एक बार फिर चली गई है लाल थाकिमी, इस वक्त इंजेक्ट किया लाल थाकिमी ने, लंबा ड्रैग और यहाँ पर ये मौका हाथ से निकला, यहाँ मिजोरम के हाथ से मौका निकला। और अब मैं समझता हूँ ये लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा किया गया है। लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा, हिट लंबा हिट यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी के द्वारा। अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा। मध्यरेखा से उत्तर प्रदेश का काउंटर अटैक, मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन गलत पास दे बैठे हड़बड़ी में। गेंद चले ये मिजोरम के खिलाड़ी के बाद लेफ्ट फ्लैंक से एक बार फिर अटैक बनता हुआ। निश्चित रूप से ये जो मुकाबला हो रहा है बहुत तेज हॉकी इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर गेंद गई बाहर, खेल का निर्णायक का इशारा इस वक्त लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग के लिए। मैं बता दूं यहाँ पर जो है एफ भानलाल भेनी है कोच मिजोरम के, जबकि एफ रमेन मावली ये हैं इनकी टीम मैनेजर। अंपायर हैं एक तरफ से ओंद्रीला परमानिक की, जो बात मैं बता दूं जो बंगाल से आती हैं। दूसरी तरफ से अंपायर सोनू ये दिल्ली से आती हैं। स्कोरिंग जज है प्रतिमा टिक्की, टेक्निकल ऑफिसर अश्रिता लकड़ा ये झारखंड की हैं। टाइमिंग जज है श्वेता, और यहाँ पर जो है रिजर्व अंपायर हैं शिबिया एस, ये केरला से आती है। बॉल के आगे बढ़ने की कोशिश इस वक्त मिजोरम के खिलाड़ी कोशिश कर रही है। अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी का। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी इनकी कद काठी लंबी है, जबकि सॉफ्ट हाइट के खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं इस वक्त मिजोरम के। मिजोरम हो चाहे मणिपुर हो चाहे आसाम हो, ये नॉर्थ ईस्ट के जो खिलाड़ी होते हैं इनकी कद काठी छोटी होती है, इनकी एक अलग पहचान है। लेकिन खेल में मिजोरम की टीम बहुत आगे है। जैसा मैं आपको बता रहा था, मिजोरम ने 5-1 से पराजित किया था छत्तीसगढ़ को। बहुत बेहतरीन हॉकी खेली थी मिजोरम की टीम। और उत्तर प्रदेश ने 5-1 से पराजित किया था, और मिजोरम की टीम ने 2-1 से पराजित किया था छत्तीसगढ़ को। तो उस मुकाबले में तो कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का पलड़ा भारी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 5-1 से पराजित किया और मिजोरम ने 2-1 से। यानी बहुत कांटे की टक्कर रही होगी मिजोरम और छत्तीसगढ़ का मुकाबला जो हुआ होगा। तो एक बार परिस्थिति को यहाँ पर अभी कोई भी टीम अपने कब्जे में नहीं कर पाई है, और पहला क्वार्टर का लगभग अब 6 मिनट का समय शेष बचा हुआ है। सुबह का यहाँ पर ये तीसरा मुकाबला आज का चल रहा है।
डिवीजन ए का मुकाबला, यहाँ पर बहुत अच्छा हिट, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी का। लेफ्ट हैंड से बॉल लेके निकलने की कोशिश यहाँ पर यूपी के खिलाड़ी, सीधा पास। लेफ्ट विंगर बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। राशि सिंह इस वक्त बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, यहाँ पर क्रॉस पास बढ़ाने की कोशिश। और यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा औंद्रिला प्रमाणिक का। एक तरफ से है औंद्रिला प्रमाणिक और दूसरी तरफ से है सोनू कुमारी। और निश्चित रूप से एक अच्छी खबर यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसी हैं औंद्रिला प्रमाणिक, आप इस वक्त देख रही हैं, ये जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं अंपायर औंद्रिला प्रमाणिक, ये बंगाल से आती हैं। ये देखिए यहाँ पर औंद्रिला प्रमाणिक ने डिसीजन के लिए यहाँ पर रेफर किया है वीडियो अंपायर को। और यहाँ पर ये डिसीजन को बदला गया, पेनाल्टी कॉर्नर के डिसीजन को। अब फिर हिट का इशारा है। लाल रिनपुई जो है कप्तान है इस वक्त, ये हिट लेने की कोशिश में हैं। और दूसरी तरफ से कप्तान को बुलाया गया, जो कप्तान हैं रिका कुमारी, उत्तर प्रदेश की कप्तान। तो स्थिति 0-0, पहला क्वार्टर का समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। दोनों टीमें इस वक्त अपना मुकाबला खेल रही है। ये लीग का आखिरी मुकाबला है पूल डी का। पूल डी में थी छत्तीसगढ़ की टीम, मिजोरम और उत्तर प्रदेश की टीम। छत्तीसगढ़ की टीम अपना दोनों मुकाबले को हार गई है, चूंकि लीड हार चुकी है। एक मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने 5-1 से पराजित किया, और दूसरे मुकाबले में यहाँ पर मिजोरम ने पराजित किया 2-1 से। तो परिस्थिति जो है इस वक्त बतला रही है कि यहाँ मुकाबला इस वक्त जो चल रहा है वो, अगर गोल डिफरेंस की बात करें तो गोल डिफरेंस में आगे है इस वक्त उत्तर प्रदेश की टीम। यानी उत्तर प्रदेश की तरफ से 5 गोल हुआ, विरुद्ध में उसका 1 गोल हुआ। और मिजोरम की तरफ से अगर हम बात करें तो मिजोरम की तरफ से 2 गोल हुआ, विरुद्ध में 1 गोल हुआ। तो गोल डिफरेंस है उत्तर प्रदेश का 5 और गोल डिफरेंस मिजोरम का है 1। इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो अपने पूल में शीर्ष स्थान पे चली जाएगी। अब उसका
प्रवेश हो जाएगा क्वार्टर फाइनल में। यानी हर पूल से, डिवीजन ए के हर पूल से 2 टीमें जो है वो निकलेगी क्वार्टर फाइनल के लिए। तो यहाँ उम्मीदें अब है कि ये इस पूल से निकल जाएगी टीम मिजोरम, और उत्तर प्रदेश की टीम छत्तीसगढ़ की टीम के लिए चिंता का विषय है। ग्यारहवां और 12वां पोजीशन में जो टीम रहेगी, जो डिवीजन ए का 4 पूल में बांटा गया है, तो वो टीम शिफ्ट हो जाएगी, कहा जाए वो डिप्रमोट हो जाएगी, वो चली जाएगी डिवीजन बी में। और डिवीजन बी में जो भी टॉप पे 2 टीमें आएगी, उनका स्वतः शिफ्टिंग हो जाएगा डिवीजन ए के लिए, वो क्वालिफाई कर जाएगी। ठीक उसी तरह डिवीजन बी में जो सबसे अंतिम पायदान पर रहेगी टीम, वो चली जाएगी डिवीजन सी के लिए, और डिवीजन सी में जो 2 टीमें टॉप पे रहेगी, उनका ऑटोमेटिक शिफ्टिंग हो जाएगा डिवीजन बी के लिए। ये होगा शिफ्टिंग और अनशिफ्टिंग, प्रमोशन और डिमोशन का जो सिलसिला है, इसी तरह से जारी रहेगा। यहाँ पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। एक तरफ से है सोनू कुमारी, ये आते दिल्ली से, दूसरी तरफ से है औंद्रिला प्रमाणिक, बहुत ही अनुभवी अंपायर खिला रही हैं, बंगाल से आती है। एक पेनल्टी कॉर्नर इस वक्त अर्जित करती हुई यहाँ पर मिजोरम की टीम, मिजोरम की तरफ से लाल था किमी, ये निकली है यहाँ पर इंजेक्शन के लिए। समय 1 मिनट 21 सेकंड का बचा हुआ है। लाता किमी का इंजेक्ट, बॉल को रोका गया। हालांकि मिजोरम की टीम बहुत अच्छा पेनल्टी कॉर्नर को ट्रैक फ्री कर अच्छा है इनके पास, मिजोरम के पास, लेकिन उस तरह से आज नहीं दिख पा रहा है। काफ़ी पेनल्टी कॉर्नर को बर्बाद किया है मिजोरम ने। और दबाने की कोशिश, यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बॉल को भेजने की कोशिश। मैं इसको बता दूं, इसके बाद हरियाणा का मुकाबला होगा मध्य प्रदेश से। आज का दूसरा मुकाबला जो डिवीजन ए का है मुकाबला, सर्किल के ऊपर खेल होता हुआ 23 मीटर रेखा के पास बॉल को बाहर किया, गिन गई बाहर। इस वक्त दबाव बना के खेल रही है मिजोरम की टीम उत्तर प्रदेश के ऊपर। 16 गज का हिटिंग बॉल है इस वक्त लाल रेम रुवाती स्तर के पास। लाल रेम रुवाती ने स्तर ने बॉल को पीछे सरका दिया अपने साथी का रैली के लिए। लंबा हिट यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, बॉल गोलकीपर सामने है यहाँ पर, और यहाँ इशारा है, लगता है पेनल्टी कॉर्नर का। दबाव इस वक्त बना रही है मिजोरम की टीम उत्तर प्रदेश के ऊपर, बार बार पेनल्टी कॉर्नर अर्जित कर रही है, मौके को तलाश रही है मिजोरम की टीम, पहली गोल की तलाश में है मिजोरम। लाल था किमी इस वक्त बढ़ी है यहाँ पर इंजेक्शन के लिए, पेनल्टी कॉर्नर के इंजेक्शन के लिए लाल था किमी इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया, लंबा हिट, लेकिन अच्छा बचाव यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ने अच्छा ब्लॉकिंग किया था, बढ़िया बचाव किया यहाँ पर आर्थनाथ यादव ने, बिल्कुल ब्लॉक करके रखा यहाँ पर, मिजोरम के खिलाड़ी को मौका नहीं दिया। के भान लाल पेकी के पास है बॉल, भान लाल पेकी, लेकिन यहाँ पर पहला क्वार्टर का खेल खत्म हुआ, हूटर बजा, इस बात का संकेत कि यहाँ पर अब समय खत्म हो गया पहला क्वार्टर का। दोनों टीमें इस वक्त 0-0 की स्थिति में है, मिजोरम 0 उत्तर प्रदेश 0। हम मिलेंगे दूसरे क्वार्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।
नमस्कार, जोहार, आदाब। चलते हैं झारखंड की राजधानी मरांगोम के एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जहां पर मुकाबला चल रहा है। डिवीजन ए का पूल डी का मुकाबला चल रहा है। सामने टीम है एक तरफ से मिजोरम, और यहाँ पहला गोल करती हुई उत्तर प्रदेश की टीम। दूसरा क्वार्टर का पहले ही मिनट में यहाँ गोल कर दिया। एक सोची रणनीति के तहत खेली यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम। बॉल लेके आगे बढ़ी। देखिए किस तरह से बॉल को बढ़ाया यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर। वहाँ सामने खिलाड़ी तैयार थी, और यहाँ पर देखिए किस तरह से डिफ्लेक्ट किया गया और गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। बेहतरीन डिफ्लेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर पहला गोल करती हुई यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम। उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का पहला मिनट, अगर हम बात करें तो खेल के 16वां मिनट में यहाँ पर गोल डाल दिया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से 16वां मिनट में पहला गोल डाला गया। तो बहुत ही गजब का बीच में से मैदान से लेके बॉल चले उनके खिलाड़ी। बहुत अच्छा पास है वहाँ पर डी के अंदर बढ़ाया। दो खिलाड़ी मौजूद थे, और सामने दूसरे खिलाड़ी ने बॉल को डिफ्लेक्ट किया। गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। पहला गोल इस वक्त उत्तर प्रदेश की तरफ से होता हुआ। हालांकि अभी स्कोरिंग का ग्राफ आपको नहीं बदला गया है, लेकिन एक गोल हो गया है उत्तर प्रदेश की तरफ से। अब यहाँ पर मिजोरम को, जैसे मैं बता रहा था, गोल डिफरेंस से आगे है उत्तर प्रदेश की टीम मिजोरम से। उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 5-1 से पराजित किया था। मिजोरम ने एक कड़ी टक्कर में छत्तीसगढ़ को 2-1 से पराजित किया। तो इस तरह से पश्चिम में कहा जाए तो खेल जा रहा है। इस आंकड़े बतला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरफ आंकड़ा है गोल डिफरेंस, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। और वैशाली सेन ने खेल के 16वां मिनट में, बिल्कुल यहाँ पर खेल के 16वां मिनट में वैशाली सेन ने उत्तर प्रदेश के लिए फर्स्ट गोल किया, पहला गोल। कड़ाके की इस वक्त यहाँ पर बोला जाए कांटे की टक्कर चल रही है दोनों टीमों के बीच। जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश, जहाँ तक सवाल है यहाँ पर मिजोरम का। तो इस तरह से यहाँ पर वैशाली सिंह ने गोल डाला खेल के 16वां मिनट में, पहला गोल उत्तर प्रदेश के लिए। एक बहुत ही संतुलित टीम है उत्तर प्रदेश। एक बार फिर बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, गिर पड़े वहाँ पे। राइट विंगर को बढ़ाने की कोशिश, लेकिन मिजोरम की टीम भी बहुत मजबूत टीम है, ऐसी बात नहीं है। समय भी बहुत है, अभी तो दूसरा क्वार्टर ही चल रहा है। वक्त के साथ चलना पड़ेगा किसी भी टीम को, और अंतिम समय तक जो टीम अपने दमखम को कायम रखेगी, सफलता निश्चित रूप से उसे ही मिलेगी। सवंत पास बॉल के बढ़ने की कोशिश इस वक्त यहाँ पर आद्या यादव के पास ही गेंद, लेफ्ट विंगर को बॉल को बढ़ा दिया है। इस बार तो बॉल लेके निकलने की कोशिश है स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर। ये देखिए बहुत अच्छा कितना जुझारू रूप से खेल रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की लड़कियाँ। आप देख सकते हैं राइट फ्लैंक में बॉल को बढ़ा दिया, बढ़िया अच्छा कॉम्बिनेशन से खेल रही है। लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी का, बेहतरीन क्लियरेंस, बॉल को भेज दिया है लेफ्ट फ्लैंक में लेफ्ट विंगर के लिए। लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट, कोई बॉल लेके खिलाड़ी बढ़ना चाहते हैं। अच्छा ब्लॉकिंग की जा रही है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा। डायगोनल पास स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर एक बार फिर पहुंचती हुई यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम।
चलिए चलते हैं एक बार फिर मैदान में। यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का वक्त इस वक्त बिल्कुल अब नज़दीक है, यहाँ पर ख़त्म होने की स्थिति में है। और परिस्थिति जो इस वक्त बतला रही है वो बतला रही है कि यहाँ पर 1-0 की अभी तक जो उत्तर प्रदेश की तरफ से गोल हुआ था वो गोल अभी तक कायम है। फर्दर कोई गोल नहीं हुआ है, लेकिन 3 मिनट का समय बचा हुआ है दूसरा क्वार्टर का। दोनों टीमें इस वक्त बेहतरीन हॉकी खेल रही है। जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश का, जहाँ तक सवाल है एक तरफ से यहाँ पर मिजोरम का। मिजोरम की भी टीम भी बहुत ही जुझारू टीम है। ये अलग बात है कि मिजोरम की तरफ से अभी बराबरी का गोल नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ से है सोनू कुमारी जो दिल्ली से आती हैं, दूसरी तरफ से हैं ओंद्रिला परमानिक। और यहाँ सर पेनाल्टी कॉर्नर दे दिया गया है यूपी के विरुद्ध। और यहाँ पर अंतिम निर्णय अब आएगा वीडियो अंपायर से। वीडियो अंपायर इसको देख रहे हैं, इसको देखा जा रहा है। यहाँ पर सोनू कुमारी ने बुलाया है मिजोरम के कप्तान लाल रिनपुई को बुलाया। और एक तरफ से ये कप्तान यहाँ पे पहुँच रही हैं अरिका कुमारी जो कप्तान हैं उत्तर प्रदेश की। और फिर से खेल शुरुआत कराने की इस वक्त तैयारी। फिर से खेल शुरुआत होती हुई। तो स्थिति इस वक्त है यहाँ पर मैं बता दूं अभी भी 1-0 की स्थिति है। दिव्यांशी सिंह आज की हैं कप्तान जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है। तो स्थिति इस वक्त है यहाँ पर
उत्तर प्रदेश 1, जो खेल के 16वां मिनट में वैशाली सेन ने गोल डाला था, वो अभी तक बरकरार। और 1-0 की स्थिति है। यहाँ पर मिजोरम के 1 गोल की ज़रूरत है बराबरी पर आने के लिए, लेकिन यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त हॉकी खेल रही है उत्तर प्रदेश की टीम। सोलहवीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मोराबादी में चल रहा है। ये स्टेडियम मोराबादी में है, कहा जाए रांची का हार्ट, दिल कहा जाता है यह स्थान जहाँ पे मुकाबला चल रहा है। बाएं लेफ्ट फ्लैंक से बहुत तेज आक्रमण बनता हुआ उत्तर प्रदेश का सर्किल के अंदर पहुँच गई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी, लेकिन बड़ी इंटरसेप्ट मिजोरम का। और गेंद इस वक्त खतरे के क्षेत्र से बॉल को बाहर निकाल दिया है। 10 मीटर रेखा के पास फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर उत्तर प्रदेश को पीछे सरका दिया। यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा पास, डीप डिफेंडर को बॉल को भेज दिया गया है। 1 मिनट 27 सेकेंड का समय बचा हुआ है दूसरा क्वार्टर का। और गेंद एक बार बहुत बेहतरीन अरिका कुमारी के लिए बॉल, और अरिका कुमारी से गेंद निकली तो स्थिति 1-0। मात्र 1 गोल जो वैशाली सेन ने डाला था खेल के 16वें मिनट में उत्तर प्रदेश की तरफ से, वो बढ़त अभी भी कायम है। यहाँ तक मिजोरम अभी तक कोई गोल नहीं कर पाई है, दूसरी तरफ से फर्दर कोई अगला गोल नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश की भी टीम 1 गोल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आधे समय का खेल अब खत्म होने की कगार पर है। लाल रिनपुई के पास, कप्तान के पास बॉल, साथी खिलाड़ी को बॉल को भेज दिया है। यहाँ पर लेफ्ट फ्लैंक में बढ़िया नपातुला पास, मिजोरम के खिलाड़ी के पास है बॉल। मिजोरम के खिलाड़ी को ड्रिबल करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को डायगोनल पास, देखिए कितना स्वच्छ पास बढ़ा दिया गया यहाँ पर लाल थिक्कीमी के लिए। और यहाँ पर चोट लग गई और लाल थिक्कीमी के पास है बॉल। अभी भी मिजोरम के खिलाड़ी स्कूप किया है, यहाँ सर्किल के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रही है मिजोरम के खिलाड़ी इस वक्त यहाँ, और एंट्री करते हुए इस वक्त, लेकिन वहाँ पर पहुँच गए थे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, बॉल को क्लियर कर दिया। स्थिति 1-0, लगभग 5 सेकंड का समय बचा हुआ है दूसरा क्वार्टर का। इस वक्त भूटर बजने की तैयारी, और यहाँ पर अभी तक 1 गोल की बदौलत बेहतरीन स्थिति में कहा जाएगा उत्तर प्रदेश की टीम। बहुत ही तो मजबूत स्थिति नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो अभी आगे है वो आगे है, पीछे चल रही है मिजोरम की टीम। हम
नमस्कार, जोहार, आदाब। चलते हैं, हम तीसरे क्वार्टर में चलते हैं। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है उत्तर प्रदेश और मिजोरम के बीच। दोनों बहुत ही संतुलित टीमें हैं जहाँ तक सवाल है मिजोरम का सवाल है, और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। इस बीच गेंद इस वक्त पिच मैदान के अंदर मध्य रेखा के पास मिजोरम के खिलाड़ी के पास है बॉल। मिजोरम के खिलाड़ी एक सीधा पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। राइट फ्रंट से बॉल लेके निकलने की कोशिश थी, लेकिन वहाँ पर तैयार थे रक्षापंथी के खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। बॉल को पीछे सरका दिया। बहुत बेहतरीन एक कलात्मक हॉकी खेल रही है उत्तर प्रदेश की टीम, जबकि दूसरी तरफ से मिजोरम की टीम भी संघर्षरत है यहाँ पर इस मुकाबले में बराबरी पर आने के लिए। 2 क्वार्टर मात्र जो एक पहला गोल किया गया था वैशाली सेन ने खेल के 16वां मिनट में किया था। ये लंबी कद के खिलाड़ी हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा, वैशाली सिंह के द्वारा। वो बढ़त अभी भी कायम है। बहुत तेज सटीक पास से खेल रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम। उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 5-1 से पराजित कर दिया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की वैसा नहीं चल रहा है जो छत्तीसगढ़ के विरुद्ध उन्होंने खेला था। छत्तीसगढ़ को मिजोरम ने 2-1 से हराया। आंकड़े की गोल की आंकड़े की बात करें तो पर्रा भारी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मिजोरम से। और लेकिन जितनी आसानी से उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 5-1 से राउंड दिया था, लेकिन वैसा आज नहीं चल रहा है, क्योंकि मिजोरम की टीम भी एक मजबूत टीम है। इसको आप इतनी आसानी से पराजित नहीं कर सकते हैं, नहीं परास्त कर सकते हैं। बैकफुट पे भेजने के लिए आपको और गोल का आंकड़ा बनाना पड़ेगा, तभी इनका जो है ये मनोबल टूटेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मिजोरम की टीम ये बहुत ही जिद्दी टीम है, आखिरी समय तक लड़ेगी, यहाँ पर मैदान के अंदर भिड़ेगी मिजोरम की टीम। तीसरा क्वार्टर का 5 मिनट का खेल लगभग पूरा होने को है। स्थिति अभी जस की तस है, 1-0। मध्य रेखा के पास बॉल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल को पीछे सरका दिया। और मैं बता दूं बहुत तेज हॉकी जो चल रहा है, इसका स्वागत है आपका हॉकी इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर भी स्वागत है, जहां से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। लाइव एक्शन हमारी प्रोडक्शन टीम के द्वारा आपको रांची से दिखलाया जा रहा है। और उन व्यूअर के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, इस मुकाबले का सीधा आनंद ले रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी भाग से देख रहे हैं या मिजोरम के किसी क्षेत्र से देख रहे हैं, सबका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो स्थिति अभी है 1-0, उत्तर प्रदेश 1 मिजोरम 0। उत्तर प्रदेश की तरफ से हमला, यहाँ पर क्रॉस पास बढ़ाने की कोशिश, लेकिन बीच में से आए मिजोरम के खिलाड़ी और टकरा गई। मिजोरम के खिलाड़ी यहाँ पर लाल रिनपुई जो है कप्तान, वो टकरा गई यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी से। एक बड़ी दोनों खिलाड़ी, लेकिन एक बार फिर अटैक बनता हुआ उत्तर प्रदेश का स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर। बहुत तेज अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी का, 10 मीटर रेखा को क्रॉस करने, गेंद गई बाहर इस वक्त। तो स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर अभी तक 0-1। बहुत ही तेज हॉकी चल रहा है दोनों टीमों के बीच। जहाँ तक सवाल है, एक तरफ से उत्तर प्रदेश की टीम और दूसरी तरफ से यहाँ पर है मिजोरम की टीम। परिस्थितियों से जूझ रही है दोनों टीमें यहाँ पर, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए राहत की बात है कि उनको 1 गोल का बढ़त प्राप्त है। 0-1 की स्थिति। बहुत तेज हमला बनता है उत्तर प्रदेश का, खास करके जो आक्रमण बन रहा है वो देख सकते हैं आप, बहुत तेज आक्रमण बनता हुआ। हिट मिलता हुआ व्यापारल 16 का हिटिंग, यहाँ पर बॉल को पीछे सरका दिया था रेम रुआतपुई ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए। अभी भी यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बराबरी का टक्कर चल रहा है दोनों टीमों के बीच। इस बीच यहाँ पर लाल रेम रुआती स्थर के पास थी गेंद, बॉल को हिट किया, लेकिन गेंद चलाई उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास। काउंटर अटैक बाय फ्लैंक से। देखिए अब 2-3 खिलाड़ी जो चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, खास करके वैशाली सेन, दिव्यांशी सिंह
आकांक्षा मित्रा, देखिए किस तरह से क्या एक बिल्कुल तूफान की गति से ये बॉल लेके निकलते हैं। ये 2-3 खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश की फॉरवर्ड के खिलाड़ी हैं खास करके। अच्छा पास है, मदरका के पास खेल चलता हुआ यहाँ पर गेंद चलाई इस वक्त मिजोरम के खिलाड़ी के पास, लंबा हिट यहाँ पर गेंद चली आई है के भानलाल पेकी के पास बॉल, के लाल पेकी ने बॉल को छोड़ खिलाड़ी के लिए लंबा हिट यहाँ पर स्टैटिक सर्किल के अंदर। और यहाँ पर ये खेल के निर्णायक जो अंपायर हैं उनका इशारा, यहाँ पर लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा, तो लंबा हिट यहाँ बहुत ही तेज आक्रमण बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ से। गेंद एक बार फिर यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी बॉल लेके निकालने की कोशिश, बहुत तेज हिट, बहुत तेज दौड़ लगा रही है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी वहां पर अपने क्षेत्र में खेलती हुई उत्तर प्रदेश की टीम। बहुत ही तेज आक्रमण बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी बॉल लेके निकालने की कोशिश, बहुत तेज दौड़ लगा रही है, तो परिस्थितियों से जूझ रही है इस वक्त मिजोरम की टीम। बराबरी पर आने के लिए मिजोरम को यहाँ पर 1 गोल की जरूरत है, लेकिन 6 मिनट का समय, बहुत लंबा समय इस वक्त खींच गया है दोनों टीमों के बीच। मात्र खेल के जो 16वां मिनट में सफलता मिली थी उत्तर प्रदेश को, वैशाली सेन ने जो गोल किया था, उसके बाद फर्दर कोई गोल नहीं हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ से। दूसरी तरफ से यहाँ पर मिजोरम की टीम लगातार जूझ रही है मैदान के अंदर। मिजोरम की भी टीम काफ़ी शक्तिशाली टीम है, काफ़ी जिद्दी टीम है, ये भी अंतिम समय तक लड़ेगी यहाँ पर इस हॉकी के मैदान में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, अच्छा पास राइट विंगर को उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है, इसने छत्तीसगढ़ को 5-1 से पराजित किया, मिजोरम ने छत्तीसगढ़ को 2-1 से पराजित किया। स्कोरिंग का ग्राफ अभी बढ़ा है, क्षेत्र में इस वक्त झूलता हुआ है जो गोल लीड के आधार पर, तो कहा जाए पक्ष में यह निर्णय झूल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश के पक्ष में। अगर ये खेल ड्रॉ पर भी समाप्त होता है तो फिर भी उत्तर प्रदेश का अंक बढ़ेगा और यहाँ पर मिजोरम को दूसरे स्थान पर छोड़ देगी गोल लीड के आधार पर। और अगर जीत जाती है उत्तर प्रदेश की टीम तो इसका अंक हो जाएगा 6 और मिजोरम का 3। छत्तीसगढ़ पूल डी में सबसे पीछे स्थान पे चली जाएगी, लास्ट पायदान पे, यानी 3 जो टीम है पूल डी में डिवीजन ए का, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़। एक अच्छा मौका यहाँ पर, बहुत अच्छा, लेकिन डी के अंदर यहाँ गलत तरीके से रोका गया और मैं समझता हूँ ये पेनाल्टी कॉर्नर मिल गया है उत्तर प्रदेश को। आकांक्षा मित्रा इस वक्त लंबी कद की खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश की, वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इंजेक्शन की तैयारी। आकांक्षा मित्रा इस वक्त तैयार, खिलाड़ियों के ऊपर नजर दौड़ाते हुए इंजेक्ट किया, बॉल को रोका, ये ड्राइव, ये हिट, अभी भी मौका है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर अभी तक गेंद घूम रही है, यहाँ पर इस वक्त स्टैटिक सर्किल के अंदर घूम रही थी गेंद और एक बार फिर यहाँ पर बॉल हिट, फिर हिट। मिजोरम के पक्ष में खेल तीसरा क्वार्टर का 4 मिनट का बाकी है। मिजोरम एक बार अटैक करती हुई देखिए यहाँ पर 23 मीटर रेखा के पास मिजोरम के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पर पेमेंट हुआ ऑंद्रेरा पर, फ्री हिट के ऊपर इस वक्त मिजोरम
इस वक्त पेनाल्टी कॉर्नर यहाँ पर डिमांड कर रही थी और ओंद्रिला परमानिक ने पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है मिजोरम को। मिजोरम के लिए अच्छी खबर, अगर पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर पाती है मिजोरम की टीम तो निश्चित रूप से बराबरी पे चले आएगी। इंजेक्शन की तैयारी, इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया। देखिए यहाँ पर हिट, गोलकीपर का अच्छा बचाव, लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा। उत्तर प्रदेश की गोलकीपर ने अच्छा बचाव किया। गेटिंग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए मध्य रेखा के पास बॉल, राइट विंगर के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के लिए राशि सिंह के लिए बॉल को बढ़ाया गया था, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर मिजोरम के खिलाड़ी लाल हकीमी ने बॉल को बढ़ा दिया। एक बार फिर यहाँ पर बॉल के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा। यहाँ पर रूबी यादव इस वक्त बॉल को नियंत्रण किए हुए हैं, स्कूप किया है रूबी ने, लंबा ऊंची उड़ती हुई गेंद, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहाँ पर बेहतरीन रिसीविंग कर लिया है मिजोरम के खिलाड़ी ने। मिजोरम के खिलाड़ी इस वक्त लाल भेंटुई ने बॉल को बढ़ाने की कोशिश की। बहुत अधिक समय तक मिजोरम के भी खिलाड़ी बॉल को अपने पास नहीं रख पाते हैं और दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश के भी खिलाड़ियों के पास अधिक समय तक बॉल नहीं रहता है। क्षणिक समय में बॉल को छीन लिया जाता है। हर टीम विपक्षी टीम के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। हिट मिलता हुआ इस बात लाल रेम रुबाती स्थर ने बॉल को निकाला है डी के अंदर। यहाँ पर बेहतरीन क्लियरेंस उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा और यहाँ पर बॉल डायगोनल पास। इस बार फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम के खिलाड़ी बॉल लेकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक खिलाड़ी को डील करने की कोशिश, एक सुरक्षित पास बढ़ा दिया है पीछे अपने साथी खिलाड़ी को। एक बार फिर यहाँ पास, अब उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी राइट फ्लैंक से बॉल लेकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हर खिलाड़ी के ऊपर ब्लॉकिंग किया जा रहा है, हर खिलाड़ी के ऊपर यहाँ पर बेहतरीन पेट्रोलिंग की जा रही है। दोनों टीमों की तरफ से गार्ड करके रखे हैं हर एक दूसरे को। के बेनलाल पेकी के पास बॉल है, के बेनलाल पेकी इस बात बॉल लेके बढ़ते हुए बाएं फ्लैंक से घुसने के लिए चाह रही है। वहाँ पर सर्किल एंट्री की कोशिश कर रही है मिजोरम की टीम और यहाँ पर देखिए एक बार फिर बॉल लेके बढ़ने की कोशिश और पेनल्टी कॉर्नर का इशारा यहाँ पर ओंद्रिला परमानिक का। खेल के निर्णायक ओंद्रिला परमानिक बहुत ही अनुभवी अंपायर हैं, ये बंगाल से आती हैं और एक बार मौका यहाँ पर है मिजोरम के लिए, जबकि 1 मिनट 38 सेकंड का समय बचा हुआ है तीसरा क्वार्टर। यहाँ पर जो है दिव्यांशी सिंह जो आर्गुमेंट कर रही थी ओंद्रिला से, उत्तर प्रदेश की कप्तान, फलता यहाँ पर ओंद्रिला ने मदद मांगी है यहाँ पर आपके वीडियो अंपायर से। वीडियो अंपायर इसको देख रहे हैं, देखिए किस तरह से ये स्लो मोशन में देखा जा रहा है।
और अंततः ओंद्रिला प्रमाणिक ने डिसीजन को बदला है और यहाँ पर फ्रीट मिलता हुआ उत्तर प्रदेश को। पीली रंग की जर्सी में देख खेल रही उत्तर प्रदेश की टीम, हल्का मटमैला रंग, ये है मिजोरम का खिलाड़ी का जर्सी का रंग। तीसरा क्वार्टर का इस वक्त वक्त जो है बहुत अब कम बचा है, मात्र 1 मिनट का समय बचा हुआ है। यहाँ पर हूटर बजने की तैयारी अब चल रही है, लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति है वो बतला रही है कि 1-0 अभी तक एक जो लीड लिया था उत्तर प्रदेश की टीम ने वो अभी तक कायम है। लेकिन यहाँ पर वो परिस्थिति मिजोरम के लिए बिल्कुल उल्टा है, पीछे चल रही है मिजोरम की टीम। हालांकि एक गोल हॉकी में कोई इतना मायने नहीं रखता है, कभी भी पलटवार कर सकती है मिजोरम की टीम, कभी भी खेल में वापसी कर सकती है। लेकिन फिलहाल वक्त की नज़ाकत बतला रही है कि उत्तर प्रदेश 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है मिजोरम से। समय बड़ा बलवान होता है, समय के साथ जो भी टीम चलेगी निश्चित रूप से सफलता उसे ही मिलेगी। और जहाँ तक हॉकी का सवाल है, अंतिम समय तक जो भी टीम अपने दमखम को कायम रखेगी सफलता उस टीम को ही मिलेगी, क्योंकि हॉकी बहुत तेज खेल होता है। और यहाँ समय का तो हर जगह महत्व होता है, लेकिन हॉकी में तो गजब महत्व होता है। यहाँ पर मिनट नहीं सेकंड में परिणाम बदल जाते हैं और गोल का जो समीकरण है, गोल का जो गणित है, बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्योंकि और यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का समय खत्म होता हुआ 1-0 की लीड है उत्तर प्रदेश के पास। हम चलेंगे चौथे क्वार्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां एक कांटे की संघर्ष चल रही है हॉकी के अंदर। ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। एक तरफ से है मिजोरम की टीम, दूसरी तरफ से है उत्तर प्रदेश की टीम। उत्तर प्रदेश की टीम पूरी अपनी दमखम के साथ खेल रही है और मिजोरम का जहाँ तक सवाल है, ये टीम बिल्कुल हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अंतिम समय तक ये टीम लड़ेगी। बहुत ही मिजोरम की टीम जिद्दी टीम है। मैं इस टीम को खेल चाहे जूनियर हो या सीनियर हो देख चुका हूँ। काफ़ी संघर्ष रहती है, आखिरी समय तक, आखिरी मिनट तक ये टीम लड़ेगी मैदान के अंदर। इतनी आसानी से ये टीम हारने वाली नहीं है मिजोरम की टीम। हालांकि अब मात्र 1 क्वार्टर का समय बाकी है खेल का, और देखते हैं मिजोरम की टीम क्या उलटफेर कर पाती है, या उत्तर प्रदेश की टीम कहाँ तक, किस हद तक मिजोरम के बढ़ते कदम है जो इनका ऑफेंसिव के खिलाड़ी हैं, आक्रमण पक्ष के खिलाड़ी हैं, इनको रोक पाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खैर, सफलता को अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। हम चलते हैं खेल के मैदान में। चलिए, मैं आपके लिए चलता हूँ और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर हॉकी इंडिया का, जहाँ से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं।
और मैं शमी मालम आपको मुकाबले का एक एक पल की जानकारी दिए जा रहा हूँ। अपने साथी कमेंटेटर हमसे पहले मयूर बरुआ आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है मैं आपको बता दूं, मिजोरम 0 है, कोई गोल नहीं कर पाई है। चौथा क्वार्टर का खेल इस वक्त शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की टीम 1 गोल से आगे चल रही है। उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी अभी स्मार्टफोन के ऊपर खेल देखना शुरू किया होगा, मैं बता दूं पीली रंग की जर्सी में है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम। एक अच्छा मौके को तलाश रही उत्तर प्रदेश की टीम, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचती हुई और बहुत अच्छा क्लियरेंस। और सफ़ेद रंग की जर्सी मटमैला रंग, ये है रंग मिजोरम के खिलाड़ियों का। मैं आपको बता दूं खेल के 16वां मिनट में उत्तर प्रदेश के वैशाली सेन ने गोल किया था अपनी टीम के लिए, और वो गोल जो बढ़त था अभी तक कायम है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की टीम फर्दर कोई गोल नहीं कर पाई है, लेकिन खतरे की घंटी जरूर है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि 1 गोल पे उतना आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। और यहाँ ग्रीन कार्ड अंद्रिला प्रमाणिक ने दिखलाया है एस जर्सी नंबर 11 उत्तर प्रदेश को, अनुपाल इस वक्त मैदान से बाहर जा रही है। अनुशासन अगर देखने को है तो देखिए हॉकी के मैदान में किस तरह से अनुशासन है। अनुशासन यहाँ सिर चढ़ के बोलता है। जैसे ही अंपायर अपने पॉकेट से ग्रीन कार्ड निकालते हैं, पीला कार्ड निकालते हैं, खिलाड़ी बिना हिचक का, बिना समय गंवाए हुए बिल्कुल मैदान से बाहर अपने कदम को निकालते हैं और जाके डगआउट में स्थान ले लेते हैं। यहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट का कोई स्थान नहीं है। तो वैसे भी कहा जाता है कि खेल अनुशासन का दूसरा नाम खेल है, और खेल का मैदान तो कहा जाता है बिना छत का विद्यालय होता है। अनुशासन यहाँ सिर चढ़कर बोलता है। खास करके हॉकी के खेल में जो अनुशासन देखने मिलता है शायद इसी खेल में देखने को मिले, क्योंकि हर जगह नाराज़गी की इजहार करते हैं खिलाड़ी। कभी आप देखते हैं क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट का बल्ला को तोड़ के मैदान से बाहर जाता है अंपायर के निर्णय से नाखुश होकर के, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, नहीं तो आज ऐसी बात देखने को मिलेगी। शुरुआत से ही हॉकी में बहुत बेहतरीन अनुशासन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक लंबा हिट यहाँ पर लेफ्ट फ्लैंग में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी के झुरमुट में से ले के बॉल निकले, बॉल को बढ़ा दिया गया है वैशाली सेन के लिए। वैशाली सेन बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए सर्किल के अंदर एंट्री करती हुई यहाँ पर वैशाली बहुत अच्छा क्रॉस पास, एक अच्छा मौका निकल गया यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हाथ से। खेल लगभग 5 मिनट का हो गया है, चौथा क्वार्टर का 10 मिनट का खेल बाकी है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर मिजोरम के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए लेफ्ट विंगर को बहुत अच्छा नपतुला पास बढ़ा दिया है। लेफ्ट विंगर इस वक्त बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए बहुत ही बेहतरीन इस वक्त यहाँ पर नियंत्रण है बॉल के ऊपर। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मिजोरम के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए काफ़ी समय बिता रहे हैं, जबकि 2 खिलाड़ियों से घिरे हुए थे यहाँ पर। और यहाँ ऐसा लगता है कि फ्रीट मिला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश को। काफ़ी देर तक यहाँ पर जो लेफ्ट विंगर हैं मिजोरम का, उन्होंने समय बिताया था, और ये इस वक्त टचने के बाद फ्रीट मिलता हुआ उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पर फ्रीट लेती हुई लंबी कद की खिलाड़ी बॉल थी राशि सिंह, लेकिन यहाँ पर सफलता मिली है मिजोरम के खिलाड़ी को। लीजियाशी बॉल लेके निकलने की कोशिश की रही थी, लेकिन गेंद से छिन गई। सफलता मिली यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को। लेफ्ट फ्लैंग में हल्का फ्लिक किया है, हल्का छोटा सा पास बढ़ाया है। बाएं फ्लैंग से बॉल लेके निकलते हुए 10 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए बहुत बढ़िया पास, अटैक बनता हुआ इस वक्त यहाँ पर यूपी का अटैक बनता हुआ। और ये देखिए हिट, बहुत ज़बरदस्त हिट, लेकिन गोलकीपर का अच्छा बचाव। तो चौथा क्वार्टर का समय बहुत तेज़ी के साथ निकल रहा है, लेकिन यहाँ अभी 1 गोल की लीड प्राप्त है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास। कांटे की टक्कर चल रही है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा की खिलाड़ी तैयार हो रही हैं, क्योंकि इसके बाद जो खेल होगा वो हरियाणा का मुकाबला होगा मध्य प्रदेश से। 2 टीमें, मजबूत टीमें भिड़ेगी यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल मध्य रेखा से अच्छा पास बढ़ा दिया है। राइट विंगर बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही है इस वक्त लंबी कद की खिलाड़ी, और गेंद उनसे छीन गई। 6 मिनट का खेल हो गया है। यहाँ पर गेंद है लाल रीति लुआंगी के पास बॉल। लाल रीति लुआंगी ने बॉल को पीछे सरका दिया। रक्षा पति के खिलाड़ी के पास, मिजोरम के खिलाड़ी के पास सटीक पास बढ़ाया गया है,
और गेंद चली आई थी यहाँ पर के भानलाल पेकी के पास, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश। इस वक्त मिजोरम के खिलाड़ी एडवांस होती हुई क्षेत्र में यहाँ पर जा रही है। इस वक्त यूपी के क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ती हुई, लंबा हिट यहाँ पर, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मैं जैसा बता रहा था, ये हर खिलाड़ी को ब्लॉकिंग करके रखा गया है मिजोरम के खिलाड़ी को। यही वजह है कि मिजोरम के खिलाड़ी बहुत छूट लेके नहीं खेल रहे हैं, बहुत ही उनको छूट नहीं दिया है खेलने का। यहाँ पर इस बीच लाल रिपुई जो कप्तान है बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर लाल रुवाती स्तर के लिए, और गेंद गई बाहर। फीट मिलता हुआ इस वक्त स्थिति 0-1, अपने क्षेत्र से फीट मिलता हुआ यहाँ पर उत्तर प्रदेश को। खेल लगभग 8 मिनट का खत्म हो गया है, यानी आधे समय का खेल खत्म होता हुआ। आधे समय तक अपने इस आक्रमण को बरकरार रखना है उत्तर प्रदेश को, इस मुकाबले को जीतने के लिए अंतिम समय तक दमखम को कायम रखना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकती है, तभी भी उत्तर प्रदेश की टीम जीत सकती है। क्योंकि ये मिजोरम की टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं है। इस बीच यहाँ उत्तर प्रदेश का प्रवेश डी के अंदर, और इस वक्त यहाँ पर गेंद कई बाहर की स्थिति है। इस वक्त 1-0, उत्तर प्रदेश 1 मिजोरम 0। कलात्मक हॉकी खेल रही है यहाँ उत्तर प्रदेश की टीम। मिजोरम की टीम बहुत ही ऑफेंसिव हॉकी खेल रही है, आक्रामक खेल रही है, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिल पाया। तो बहुत ही बेहतरीन हॉकी खेलती हुई इस वक्त उत्तर प्रदेश की टीम और जितनी भी तारीफ की जाए इस वक्त मिजोरम की भी कम होगी, क्योंकि मिजोरम की भी टीम बहुत बेहतरीन हॉकी खेल रही है। उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को जो 5-1 से पराजित किया था, आज वो स्थिति नहीं बन पा रही है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि मिजोरम ने उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम को रोका है। यहाँ पर एक मौका है, यहाँ पर इस बीच यहाँ अच्छा बचाव किया है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ने। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के बाद 23 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए बढ़िया पास बढ़ा दिया है। मिजोरम के खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे। जैसे मैं बता रहा था, मिजोरम के हर खिलाड़ी को ब्लॉकिंग करके रखा है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने, कड़ी पेट्रोलिंग की जा रही है। यही वजह है कि मिजोरम के जो ऑफेंस के खिलाड़ी थे, आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी थे, उनको बहुत छूट नहीं मिली आज यहाँ पर गोल पोस्ट यानी स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर जा करके हिटिंग करने का। नहीं तो मिजोरम के खिलाड़ी, इनका जो खास करके पेनाल्टी कॉर्नर है बहुत अच्छा होता है, अच्छे पेनाल्टी कॉर्नर के ड्राइव फिनिकर है इनके पास। लेकिन इस वक्त अब खेल 5 मिनट का बचा हुआ है। बाहर टच लाइन का बहुत बहुत इस वक्त हमारे व्यूअर का धन्यवाद, जो हमारे इस हॉकी इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, जो हमारी कमेंट्री को सुन रहे हैं, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और मैं बता दूं, इस वक्त बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। 2 चिर प्रतिद्वंदी टीमें इस वक्त आमने सामने है। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में डिवीजन ए का पूल डी का मुकाबला चल रहा है, जिसमें मिजोरम, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीम। लेकिन यहाँ परिस्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए स्थिरता जारी है। एक गोल से फर्दर कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन मिजोरम की टीम की भी सारी मेहनतें बेकार जाती हुई, कोई छूट नहीं मिला है मिजोरम के आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी को। ये यहाँ पर
बहुत ज़्यादा उनको मौका नहीं मिला यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर जा कर के हिट करने का। स्थिति यहाँ पर 1-0 है। राइट फ्लैंक से बॉल की निकालने की कोशिश, अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश के डिफेंडर का, और इस बीच फिर यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ मध्यरेखा से यहाँ पर मिजोरम को। खेल लगभग 3 मिनट 25 सेकंड का बचा हुआ है। सीधा पास, डायगनल पास बढ़ाने की कोशिश, अच्छा मौके निकाल रही इस वक्त मिजोरम की टीम के खिलाड़ी, लेकिन वहाँ पर अच्छा ब्लॉकिंग किया गया। बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे लाल रिनपुई जो कप्तान है मिजोरम के। गेंद चली इस वक्त उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास, बॉल काउंटर अटैक अब होने की तैयारी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी बहुत अच्छा पास मध्यरेखा के पास बॉल लेके निकलते हुए इस वक्त राइट फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही है। दो खिलाड़ियों के झुरमुट से बॉल को सीधे पर बैक सरका दिया है, बॉल को पीछा पास। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी ने 23 मीटर रेखा के पास इस वक्त दो खिलाड़ी उत्तर प्रदेश, 2 खिलाड़ी मिजोरम के पहुंचे हुए हैं। गेंद गई बाहर, टच लाइन का फ्री हिट मिलता हुआ क्षेत्र में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की टीम बढ़ रही इस वक्त क्षेत्र में, मिजोरम के क्षेत्र में। बॉल है यहाँ पर रूबी यादव के पास, रूबी यादव ने लंबा हिट लगाया है। गेंद गई बाहर इस वक्त टच लाइन का, बॉल के पीछे भाग रही थी लाल रेम रुआती स्तर, लेकिन बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाई। हिट मिलता हुआ इस वक्त यहाँ लंबा हिट, यहाँ ये बहुत अच्छा इंटरसेप्ट उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को, बाएं फ्लैंक में बॉल को भेज दिया है। अब धीरे धीरे एक बार फिर यहाँ पर रणनीति बनती हुई उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को। खेल 2 मिनट का बचा हुआ है। इस 2 मिनट में अपनी खेल की लय को बरकरार रखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छा मौका, और ये हाथ से निकला और ये गेंद गई बाहर। अच्छा मौका मिला था अभी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को। खेल 1 मिनट 53 सेकंड का बचा हुआ है। वक्त की नज़ाकत को समझना पड़ेगा अब मिजोरम की टीम को, लेकिन वक्त का पहिया बहुत तेजी के साथ घूम रहा है। समय बड़ा बलवान होता है। वक्त आप किसी का भी इंतजार नहीं करता है, बल्कि समय के साथ आपको चलना पड़ेगा, तभी आप जो है इस जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, चाहे खेल का मैदान हो या हमारे जीवन का क्षेत्र हो। ये इस वक्त उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, 1 मिनट का समय बचा हुआ है। अपने दमखम को उत्तर प्रदेश को 1 मिनट तक निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। जो इनका खेल का कर्म जारी है, इसी तरह से खेल को रखना पड़ेगा जारी, तभी यहाँ पर बात बन सकती है। क्योंकि अब 57 सेकंड का समय बचा हुआ है। यहाँ मिजोरम की टीम पूरी शक्ति को झोंक रही है मैच में वापसी के लिए। मध्यरेखा के पास एक बार फिर मिजोरम की कोशिश, लेफ्ट हैंड में बॉल को भेज दिया है के भानलाल पेकी के लिए। के भानलाल पेकी बॉल लेके निकलने की कोशिश, लेकिन मैं जैसा बता रहा था, हर मिजोरम के खिलाड़ी के ऊपर पैनी नज़र है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का। इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। बॉल जैसे ही पहुँचता है मिजोरम के खिलाड़ी के पास, हर कोई न कोई खिलाड़ी उनका पेट्रोलिंग करते रहते हैं जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं। अब फलता यहाँ पर मिजोरम का सारे प्रयास बेकार जाते हुए। गेंद गई बाहर टच लाइन का, और अब समय बहुत तेज़ी के साथ घड़ी की सुई बढ़ रही है। इस वक्त समाप्ति की तरफ चौथा क्वार्टर का इस वक्त हुटर बजने की तैयारी में है। क्षेत्र में इस वक्त खेल होता हुआ मिजोरम के क्षेत्र में बाएं फ्लैंक से इस वक्त, और यहाँ पर देखिए फ्री हिट मिलता हुआ क्षेत्र में, मिजोरम के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को। और यहाँ हुटर बजा, चौथा क्वार्टर का समय खत्म हुआ, बाजी मारी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम ने। मिजोरम को 0 के मुकाबले 1 गोल से पराजित करके इस मुकाबले को जीत लिया है। अपने स्थान पे टॉप पे पहुंच गई यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम 6 अंक लेकर, और इस पूल डी में 3 अंक है मिजोरम के पास, छत्तीसगढ़ के पास कोई भी अंक नहीं है। तो ये बताते हुए कि इस मुकाबले को, लीग के आखिरी मुकाबले को, डिवीजन ए का पूल डी का मुकाबले को आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने एक कड़ी टक्कर में मात दिया मिजोरम को। मैं शमी वाला से विदा हो रहा हूँ। नमस्कार, थैंक यू।
नमस्कार, झारखंड की राजधानी रांची से मैं शमीम आलम आपका स्वागत करता हूं, ये बताते हुए कि छठी हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आज मुकाबले का है 7वां दिन। और 7वें दिन का आज डिवीज़न ए का पूल सी का मुकाबला होने के लिए जा रहा है। दो टीमें इस वक्त हमारे आमने सामने हैं। एक तरफ से हरियाणा की टीम, दूसरी तरफ से है यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम। दो चिर प्रतिद्वंदी टीम इस वक्त आमने सामने मुकाबले को तैयार। और यहाँ पर नमिता खालको के विसिल के साथ खेल की शुरुआत, पहले क्वार्टर की यहाँ पर खेल की शुरुआत हो गई है। मैं दर्शकों को बता दूँ, व्यूअर को बता दूँ, जो यहाँ पर ब्लू रंग की जैसे में खेल रही है ये टीम है मध्य प्रदेश की टीम, जबकि पीली और लाल रंग का मिश्रण ये टीम है, और कुछ सफ़ेद रंग, ये तीन रंगों का मिश्रण जो टीम खेल रही है ये टीम है हरियाणा की टीम। आप गुलाबी रंग देख रहे हैं और पीली रंग का मिश्रण ये हरियाणा की टीम। हमारी ठीक कमेंट्री बॉक्स की दाईं तरफ है हरियाणा की टीम, जबकि बाईं तरफ है ये है मध्य प्रदेश की टीम। इससे पहले कि यहाँ पर खेल के मैदान में मैं चलूँ, आपको चलिए मैं थोड़े से खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करा रहा हूँ। हरियाणा की तरफ से अभी आज जो गोलकीपर के रूप में खेल रहे हैं ये हैं इस वक्त हिमांशी यादव, और दूसरी तरफ से खेल रहे हैं जर्सी नंबर 2 में रवनीत कौर, जर्सी नंबर 3 में है वंशिका, जर्सी नंबर 4 में खुशी, 5 में खेल रही है इस वक्त आशी, 6 में नाया, 7 में आरती कुमारी, 8 में विशाखा, और 9 में खेल रही हैं इस वक्त दिया, 10 में खेल रही हैं नैन्सी शरोहा, 11 में अंतिका, 12 में हिमांशी, 13 में अनु, 14 में अंजलि, 15 में ज्योति, 17 में राधिका खेल रही हैं जो अपनी टीम के आज कप्तान की बागडोर संभाली हुई है, 18 में मानसी। तो इस तरह से ये था हरियाणा का। इनके टीम मैनेजर हैं प्रीति कुमारी, जबकि इनके कोच हैं आजाद सिंह मल्लिक, एक बहुत ही जाने मानी हस्ती है ये आजाद सिंह मल्लिक। हरियाणा के बहुत काफ़ी दिनों से ये सेवा करते आ रहे हैं, चाहे हम सब जूनियर टीम के काम बात करें लड़कियों की या जूनियर या सीनियर, सबों को इन्होंने बेहतरीन अपने प्रशिक्षण से संवारा है। लड़कियों को हॉकी का तकनीक, हॉकी का गुण सिखाया है, इनको एक एक बारीकी से अवगत कराते रहते हैं। काफ़ी लंबा समय इनका अनुभव है कोचिंग का। दूसरी तरफ से चलते हैं अब हम मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की तरफ से जो गोलकीपर के रूप में खेल रहे हैं महक परिहार, इसके बाद जर्सी नंबर 2 में अक्षा खान, जर्सी नंबर 3 में भाविका, 4 में केशर भाभर, 5 में नौशीन नाज, 6 में रूली वाल्मीकि, 7 में सुदीप्ता किंडो, 8 में गीता श्री नम्मी, 9 में प्रियांशी छत्री, 10 में स्नेहा दावड़े, 11 में साजिदा बेगम, 12 में है प्रियांशी भंवर, 13 में सदफ जहां, 14 में सरोज मानसी, 17 में शालिनी सिंह, 20 में विभा सिंह, 21 में है जागृति यादव, और इनके कोच है देवकी नंदन कुशवाहा। ये भी बहुत ही जाने माना चेहरा है, ये मध्य प्रदेश के काफ़ी दिनों से ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। खेल की बारीकियों को लड़के है ये काफ़ी अच्छी तरीक़ा से प्रशिक्षण देते हैं। मध्य प्रदेश को हॉकी की बारीकियों से अवगत कराते रहते हैं। अपने जो इनकी लड़कियां हैं जो खेलती हैं, खास करके सब जूनियर हो या जूनियर की बात करें, हर वर्ग में इन्होंने अपना प्रशिक्षण को दिया है, अपनी ट्रेनिंग को दिया है, अनुभव को साझा किया है, और इन लड़कियों को हॉकी के एक छोटी और बड़ी तकनीक से इनको आगाह कराते रहते हैं। तो ये थे, और यहाँ पे एक मौका मिल रहा है इस वक्त स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, और ये गोल करती हुई इस वक्त यहाँ पर मध्य प्रदेश को पहला यहाँ पर गोल करने का श्रेय प्राप्त हो गया है। खेल के चौथा मिनट में, क्वार्टर 1 का चौथा मिनट में देखिए यहाँ पर किस तरह से गोल हुआ। गेंद काफ़ी देर तक यहाँ पर घूमती रही गोल पोस्ट के अंदर, डी के अंदर, और अंततः यहाँ पर देखिए बेहतरीन डिफ्लेक्शन और गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश ने श्री गणेश किया पहला गोल डाला है। तो ये मैं बताता हूँ, ये गोल इस वक्त हो गया है नौशीन नाज ने किया है, जहाँ तक मेरी नज़र यहाँ पे जा रही थी। तो जो भी हो, पहला गोल कर दिया गया इस वक्त मध्य प्रदेश की तरफ से। पहला गोल इस वक्त होता हुआ मध्य प्रदेश की तरफ से खेल के चौथा मिनट में एक यहाँ पर झटका दिया है हरियाणा को। और मैं बता दूं
हरियाणा की टीम बहुत मजबूत टीम है, लेकिन ये घबराती नहीं है। ये टीम का संयम है काफ़ी। यहाँ पर मैंने देखा था इससे पहले वाले खेल में, यहाँ पर हरियाणा की टीम के पहले गोल कर दिया गया था मणिपुर के द्वारा, लेकिन बाद में मणिपुर को डिफीट किया हरियाणा की टीम ने। तो इस तरह से अभी कोई शुरुआती है। और तो बिल्कुल खेल के चौथा मिनट में नौशीन नाज ने गोल किया है। नौशीन नाज ने आज ये खाता खोला है यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए। तो मैं बता दूं, ये पहला गोल नौशीन नाज इससे पहले 3 गोल कर चुकी है। ये सिवनी से आती है, ये जबलपुर के नज़दीक एक जगह है सिवनी, जहाँ से ये आती है नौशीन नाज। बहुत ही आक्रामक हॉकी खेलती हैं और बेहतरीन कलात्मक हॉकी खेलती है नौशीन नाज। तो एक बार फिर यहाँ पर हमला पनपता हुआ इस वक्त मध्य प्रदेश का लेफ्ट फ्लैंक से खिलाड़ी अंदर जाते हुए स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बहुत तेज अटैक यहाँ पर बनता हुआ। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर ग्वालियर के खिलाड़ी के नौशीन नाज का। तो नौशीन नाज एक बहुत ही तेज तर्रार आक्रामक खिलाड़ी हैं, काफ़ी बेहतरीन। इससे पहले भी उन्होंने खेल दिखाया था, अपने कला का प्रदर्शन किया था जब ये टीम खेल रही थी मणिपुर के विरुद्ध। तो 3 गोल स्कोर किया था नौशीन नाज ने। तो अब हम चलते हैं, फिर आपको खेल के मैदान में मैं लिए चलता हूँ। देखते हैं अब यहाँ जो है मध्य प्रदेश के विरुद्ध अब हरियाणा को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पहला झटका दे दिया है इस वक्त मध्य प्रदेश ने। इस बीच यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर डॉटेड लाइन के पास पहुंच गई हरियाणा की टीम। इस वक्त एमपी के स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर पीछे से आए एमपी के खिलाड़ी, उन्होंने ये अपने बॉल को कब्जे में किया है। अच्छा हल्का सा पास बढ़ाया है साथी खिलाड़ी के लिए। स्थिति 1-0 है, पहले क्वार्टर का खेल इस वक्त चलता हुआ। और एक बार फिर यहाँ पर आक्रमण पनपता हुआ मध्य प्रदेश का बहुत तेजी के साथ यहाँ पर 23 मीटर रेखा के पास पहुँच गई है। बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, बहुत तेज है अटैक बनता हुआ। बिल्कुल तूफान की गति से बॉल लेके चलती है यहाँ पर एमपी की टीम। फिर मिलता हुआ यहाँ पर हरियाणा को। हरियाणा इससे पहले की कुछ सोचती समझती इनकी लड़कियाँ, खेल के चौथा मिनट में यहाँ पर नौशीन नाज ने गोल डाल दिया है एमपी के लिए। मध्य प्रदेश 1 हरियाणा 0। 23 मीटर रेखा के पास इस वक्त खेल होता हुआ हरियाणा के खिलाड़ी के पास है बॉल। डायगोनल पास इस वक्त लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करने की कोशिश हरियाणा की टीम के द्वारा। हरियाणा की मैं बता दूं अधिकतर लड़कियां ये हिसार से आती हैं, कुछ सोनीपत की हैं, लेकिन मैक्सिमम लड़कियां हिसार से आती हैं जो खेल रही हैं इस वक्त सब जूनियर टीम में। और इनका श्रेय काफ़ी हद तक जाता है इनके कोच आदासी मल्ली की, आपके असिस्टेंट कोच इनके है राजेश मल्ली के, प्रीति इनकी है टीम मैनेजर। तो बहुत ही संतुलित टीम है हरियाणा की टीम। मणिपुर से पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें मात खा गई थी। मणिपुर से पहला गोल कर दिया था मणिपुर ने, लेकिन उसके बाद जो है 2 गोल का स्कोर खड़ा कर दिया था मणिपुर ने, 2 पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके। लेकिन उसके बाद हरियाणा की टीम लय में आई और न सिर्फ बराबरी पर आई बल्कि 3 गोल का स्कोरिंग ज़्यादा करके यहाँ पर 6-3 की स्थिति में अपनी टीम को जिता दिया था यहाँ पर हरियाणा की लड़कियों ने। तो ये 1 गोल हो गया है एमपी की तरफ से, इससे घबराएगी नहीं हरियाणा की टीम। मैं जानता हूँ ये लड़कियाँ जो है काफ़ी संयम तरीके से खेलती है, सुसज्जित कूल माइंड से खेलती है, लेकिन टक्कर यहाँ दोनों टीमों के बीच एक बराबरी का आज होगा, इसमें कोई भी शको शबा की गुंजाइश नहीं है। कड़ी टक्कर देगी एमपी की टीम हरियाणा को। पहला क्वार्टर का खेल चलता हुआ इस वक्त स्वागत है आपका रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। जो व्यूअर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं इस वक्त नीली रंग की जर्सी में खेल रही है इस वक्त यहाँ पर एमपी की टीम को खेल रहे हैं, जबकि गुलाबी और पीला रंग का मिश्रण ये है हरियाणा की टीम। रेड फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश, अच्छा जहाँ पर डिफ्लेक्ट बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी का था। एमपी के खिलाड़ी बाएं फ्लैंक से बहुत तेज बॉल लेके आगे बढ़ने की कोशिश, बॉल को बढ़ाने की कोशिश की गई थी साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर रूली वाल्मीकि के लिए गिर गई बाहर। बहुत ही तेज हॉकी चलता हुआ एक कलात्मक हॉकी देखने को आज मिलेगा। जहाँ तक सवाल है एमपी का सवाल है, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है। फ्रीट मिलता हुआ यहाँ पर डॉक्टर लाइन के पास इस वक्त एमपी के खिलाड़ी के पास पिरांशी छेत्री के पास है, कारवान के पास ये
रहने वाली हैं। इस वक्त पिराची छत्री ने बॉल को बढ़ा दिया, पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। सुदीप्ता किंडो के पास गेंद के लिए है। सुदीप्ता किंडो ये ग्वालियर की रहने वाली है, पीछे सरकाया सुदीप्ता किंडो अपने साथी खिलाड़ी को, बॉल को बढ़ा देता शाहिदा बेगम के लिए। ये शिवनी से आती है शाहिदा बेगम, और अच्छा पंजी के खिलाड़ी हैं। बॉल को बढ़ा दिया एक बार फिर, अच्छा तालमेल के साथ खेल रही है यहाँ पर एमपी की टीम। गेंद इस वक्त चली आई है हरियाणा के खिलाड़ी के पास। बॉल मिडफील्ड के खिलाड़ी है हरियाणा के खिलाड़ी, बॉल के बढ़ने की कोशिश, बॉल को बढ़ा दिया, अच्छा पास, हल्का पास, डिफेंडर के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल, साथी खिलाड़ी की तलाश, इस वक्त पीछे सरकाया। अब यहाँ पर लय में आने की कोशिश कर रही है हरियाणा की टीम। लंबा हिट लगाया है, जमाया है हरियाणा के खिलाड़ी ने, और आप ये देख सकते हैं इस वक्त डग आउट नज़र आ रहा है। इस वक्त एमपी का डग आउट नज़र आ रहा है, देवकी नंदन कुशवाहा इनके निर्देश देते हुए। अच्छा पास, यहाँ पर केसर भाबर ने बॉल को बढ़ाने की कोशिश की अपने राइट विंगर के लिए। राइट विंगर बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर खेल के निर्णायक खुशप्रीत कौर ने इशारा किया है एमपी के लिए, हरियाणा के लिए। हरियाणा का हिट यहाँ पर मध्य रेखा के पास, बहुत सटीक हिट, और अब हरियाणा का काउंटर अटैक, लेफ्ट साइड में बॉल को बढ़ा दिया लेफ्ट विंगर के लिए। लेफ्ट विंगर बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश, सर्किल एंट्री की कोशिश कर रही है हरियाणा की टीम के खिलाड़ी। और यहाँ पर इस बीच इंक्रीमेंट फ्री हिट मिलता हुआ हरियाणा को, पीछे पास हरियाणा के खिलाड़ी के पास, यहाँ पर सर्किल के ऊपर खेल होता हुआ एमपी के सर्किल के ऊपर हरियाणा की टीम एंट्री करने की कोशिश, बहुत तेज हिट यहाँ पर कैरेड हुआ, और यहाँ पर फ्री हिट मिलता हुआ एमपी को। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए यहाँ पर पहुँच गई है 23 मीटर रेखा के पास, बहुत तेजी के साथ गीताश्री नम्मी बॉल के लेकर आगे बढ़ रही है। गीताश्री नम्मी में बता दूँ ये ग्वालियर से आती हैं, बहुत तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। अच्छा पास यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी का, एक बार फिर एमपी का यहाँ पर हमला पनपता हुआ, क्रॉस पास बढ़ाने की कोशिश, लेकिन वहाँ पर पहुँच चुकी हैं एक बार फिर एमपी के खिलाड़ी। नौशीन नाज वहाँ पे पहुँच गई थी एक बार, यहाँ पर बेहतरीन क्लियरेंस हरियाणा के खिलाड़ी, काउंटर अटैक मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए बहुत तेज दौड़ लगाते हुए इस वक्त हरियाणा की लेफ्ट विंगर बढ़ रही हैं बॉल लेके। सर्किल के ऊपर खेल होता हुआ यहाँ पर एमपी के सर्किल के ऊपर बॉल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है इस वक्त यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर गलत तरीके से रोका गया हरियाणा के खिलाड़ी को, फ्री हिट मिलता हुआ। 3 मिनट का समय बाकी है, इतना तेज हॉकी चल रहा है कि हमें भी पता नहीं चल रहा है कि समय कहाँ पे जा रहा है। बहुत बेहतरीन, निश्चित रूप से अभी तक जो मुकाबला खेला गया है उसमें सबसे बेहतरीन हॉकी आप देख रहे हैं। मध्य रेखा से बॉल लेकर बढ़ते इस वक्त एमपी के खिलाड़ी, आप देखिए कि लगता है कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है, जिस तरह से जिस गति से दोनों टीमें खेल रही है यहाँ पर, एक तरफ एमपी दूसरी तरफ हरियाणा की टीम। अपने क्षेत्र में हरियाणा के खिलाड़ी बॉल को निकाल दिया है यहाँ पर मिडफील्ड के खिलाड़ी के पास, लेकिन वहाँ पे हैं स्नेहा दावड़े मौजूद हैं। स्नेहा दावड़े की गेंद छिन गई, सफलता मिली इस वक्त हरियाणा के खिलाड़ी को। लंबा हिट, गलत पास दे बैठी, गेंद चले इस वक्त एमपी के खिलाड़ी के पास, बहुत ही गलत पास, और गेंद एक बार फिर यहाँ पर संभाल लिया है एमपी के खिलाड़ी ने अपने ही क्षेत्र में से। बॉल को बढ़ा दिया है विभा सिंह के लिए। विभा सिंह बॉल लेके निकलने की कोशिश, राइट फ्लैंग में लंबा पास बढ़ाने की कोशिश, गेंद गई बाहर। तो परिस्थिति है इस वक्त 1-0। नौशीन नाज ने जो गोल किया था ये मध्य प्रदेश की तरफ से, खेल के चौथा में वो अभी तक बढ़त कायम है। यहाँ पर एमपी का लेफ्ट फ्लैंग से एक बार फिर एमपी की टीम आगे बढ़ती हुई 23 मीटर रेखा के पास, गेंद इस भी है नौशी केसर भाबर के पास, जर्सी नंबर 4 केसर भाबर इस वक्त बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश, अभी भी केसर भाबर के पास है बॉल। मैं बता दूं ये केसर भाबर बड़वानी से आती हैं, लंबा हिट किया था, लंबा हिट। अब गेंद इस बार चली आई है हरियाणा के खिलाड़ी के पास, बहुत ही तेज हॉकी चल रहा है। आप कमेंट्री की गति से पता लग सकता है आपको कि कितनी हमें तेज बोलनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि बहुत तेज हॉकी चल रहा है यहाँ पर।
एक तरफ से मध्य प्रदेश और दूसरी तरफ से यहाँ पर हरियाणा के बीच खेल अंतिम मिनट में चल गया है। और अंतिम मिनट में लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनता हुआ हरियाणा की तरफ से, लेकिन वहाँ पर अच्छा ब्लॉकिंग सुदीप्ता किंडो ने किया है। सुदीप्ता किंडो मैं बता दूँ ये ग्वालियर की रहने वाली है, बहुत तेज पास बढ़ाया था, गेंद गई बाहर टच लाइन का। फिर एक मिलता हुआ इस वक्त यहाँ पर हरियाणा को अपने क्षेत्र से लंबा हिट, मध्य रेखा के पास एक अच्छा पास, बीच में से आई हरियाणा के खिलाड़ी, बॉल को कलेक्ट किया है, पीछे सरका दिया। बहुत ही तेज यहाँ पर हरियाणा एक बार अटैक करती हुई अपने राइट विंगर को पास 23 मीटर रेखा के पास पहुंच गई हरियाणा की टीम। बहुत ही सुंदर तालमेल के साथ सटीक पास से आगे बढ़ रही है हरियाणा इस वक्त सरहद की तरफ एडवांस करती हुई, एमपी की सरहद की तरफ। यहाँ पर डी बॉक्स के ऊपर खेल चलता है इस वक्त, चल रहा है अच्छा पास, ये अच्छा मौका यहाँ पर हरियाणा के लिए, लेकिन गेंद गई बाहर। और यहाँ पर पहला क्वार्टर का अब हूटर बजने की तैयारी, हूटर बजता हुआ अब यहाँ पर ये बताते हुए कि पहला क्वार्टर में एक कड़े संघर्ष में एक तेज हॉकी चल रहा है। हरियाणा 0, मध्य प्रदेश 1। मिलेंगे हम दूसरे क्वार्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, आदाब, जोहार। झारखंड की धरती रांची से मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मैं शमी आलम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। एक कड़ा संघर्ष, तेज हॉकी, हॉकी के सारे समावेश यहाँ को देखने को मिल रहा है। अच्छी पास, लॉन्ग पास, बेहतरीन डिफेंस, स्कूप, सारे चीज जो है हॉकी का जो समावेश है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि टीमें यहाँ पर दो बहुत मजबूत टीमें आपस में खेल रही है। एक तरफ से है हरियाणा की टीम, दूसरी तरफ से है मध्य प्रदेश की टीम। यहाँ एक मौका है फिर यहाँ पर एमपी के लिए, और ये गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर, दूसरा गोल होता हुआ। ये खेल का 16वां मिनट कहा जाएगा, 16वां मिनट दूसरे क्वार्टर का। देखिए यहाँ पर पहला मिनट या कुल मैच की बात करें तो 16वां मिनट में यहाँ पर मध्य प्रदेश की तरफ से एक बार फिर अटैक बना और जगह बनाया यहाँ पर खिलाड़ी ने, और ये डिफ्लेक्शन, गेंद एक बार फिर गई गोल पोस्ट के अंदर, दूसरा गोल होता हुआ। कि मध्य प्रदेश की तरफ से दूसरा गोल तो इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम इस आज के मुकाबले में एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के तहत खेल रही है, कोई मौका नहीं दे रही इस वक्त। यहाँ पर हरियाणा की टीम को भी ब्लॉकिंग करके रखा है और कोई मौका नहीं दिया अभी तक हरियाणा के मौका नहीं मिला है गोल करने का। दूसरी तरफ से अभी दूसरा क्वार्टर का शुरुआती क्षण में यहाँ पर दूसरा गोल कर दिया गया, यहाँ तक सवाल है मध्य प्रदेश का। तो इस तरह से यहाँ पर ये 16वां मिनट में गोल गीताश्री नम्मी ने किया है। ये गीताश्री नम्मी ने खेल के 16वां मिनट में एक बेहतरीन गोल दागा और बेहतरीन कहा जाए प्रेसिंग किया बहुत आराम के साथ। और अब यहाँ पर मध्य प्रदेश 2, हरियाणा 0। हरियाणा के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन समय काफ़ी है हरियाणा के पास।
बराबरी पर लौटने के लिए, मैच में बराबरी पर आने के लिए हरियाणा के पास समय काफ़ी है, क्योंकि हॉकी बहुत तेज खेल होता है और बहुत कम समय में हॉकी के परिणाम बदल जाते हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, मैं बता दूं, पहला गोल हुआ था खेल के चौथा मिनट में, जबकि दूसरा गोल खेल के 16वां मिनट में। यानी हर पहला क्वार्टर के चौथा मिनट, दूसरा क्वार्टर के पहला मिनट, मैंने बहुत अचंभित में डाला यहाँ पर मध्य प्रदेश ने हरियाणा को। 2-0 इस वक्त हरियाणा के लिए जरूर चिंता का विषय है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा की टीम खेलती है ये कभी भी उलटफेर कर सकती है। मैं बता दूं, इस तरह मणिपुर ने 2 पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके पहला खेल में जो हरियाणा का हुआ था उसमें 2 गोल की बढ़त प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसके बाद हरियाणा की टीम लय में आई और न सिर्फ मणिपुर को पीछे छोड़ दिया, बल्कि मणिपुर को 3 के मुकाबले 6 गोल से पराजित भी कर दिया। और यहाँ पर हरियाणा की टीम एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई। इंजेक्शन की तैयारी हरियाणा की तरफ से। परिस्थिति इस वक्त पक्ष में हरियाणा की नहीं है, लेकिन समय काफ़ी है हरियाणा के पास। दूसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ, इंजेक्ट किया और ये हिट बहुत अच्छा बचा। अभी भी यहाँ पर हरियाणा की टीम डी के अंदर खेल रही है। एमपी के डी के अंदर देखिए यह मौके को तलाश रही है और ये मौका हाथ से निकला। अच्छा पास, बॉल बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। एमपी के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर बहुत अच्छा पास। रेड फ्लेम में नौशीन, यहाँ केशर भाभर के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया है, जैसे नंबर 4 केशर भाभर ये बॉल लेकर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इंफ्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ हरियाणा को। हरियाणा 0 मध्य प्रदेश 2। लंबा हिट यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी के द्वारा, 16 गज का हिटिंग, बेहतरीन इंटरसेप्ट यहाँ पे सुदीप्ता किंडो के द्वारा। सुदीप्ता किंडो मध्य प्रदेश से आती हैं और ये बॉल इस वक्त निकल गई। यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी पूर्वानुमान के साथ बॉल को कलेक्ट किया। लेफ्ट फ्लैंग में बहुत लंबा पास बढ़ा दिया, लेफ्ट विंगर के लिए भाग रही है हरियाणा की लेफ्ट विंगर। बॉल को निकालने की कोशिश है लेकिन गलत पास दे बैठी और फ्री हिट मिलता हुआ हरियाणा को। हरियाणा धीरे धीरे लय में वापस आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर सर्किल एंट्री हरियाणा के खिलाड़ी का, और लेकिन एक बार फिर यहाँ पर गलतफहमी कर बैठे और यहाँ गलती कर बैठे हरियाणा की टीम। और यहाँ पर बेहतरीन क्लियरेंस इस वक्त है, गेंद एमपी के खिलाड़ी के पास बॉल, लेकिन कॉर्नर फ्लैग के पास एक फ्री हिट मिलता हुआ हरियाणा को। सर्किल के अंदर बेहतरीन क्रॉस पास बढ़ाने की कोशिश। एक बार फिर यहाँ पर बेहतरीन हिट, जबरदस्त हिट लगाई गई, लेकिन यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा खेल के निर्णायक का। नोमिता खाल को मैं बता दूं एक तरफ से मुकाबले को संचालित कर रही है, जबकि दूसरी तरफ से है खुशप्रीत कौर। हरियाणा की टीम यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई, एक अच्छी खबर हरियाणा के लिए। इंजेक्शन की तैयारी, इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया। यहाँ देखिए बढ़ा दिया गया है डिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ पर ड्रैग के लिए, हिटिंग के लिए, लेकिन देखिए अभी भी गेंद घूम रही है डी के अंदर। और अब यहाँ से ये खतरा टला एमपी के ऊपर से। एमपी के खिलाड़ी के पास बॉल, इस वक्त रूली बार्मी की बॉल लेकिन निकलते हुए बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। लंबा हिट यहाँ पर और बहुत तेज नौशीन नाज ने बॉल को हिट लगाई थी। जर्सी नंबर 5 नौशीन नाज को याद रखिएगा, इन्होंने पिछला खेल में 3 गोल स्कोर किया था और आज पहला गोल नौशीन नाज ने खेल के चौथा मिनट में किया था। यहाँ के खिलाड़ी के पास है बॉल,
बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मध्यरेखा के पास हरियाणा का काउंटर अटैक, लेफ्ट फ्लैंग से लेफ्ट विंगर को एक सुरक्षित पास, एक खिलाड़ी को डील करते हुए यहाँ पर लेफ्ट विंगर बॉल के लिए आगे बढ़े हैं, बॉल को बढ़ा दिया है। यहाँ पर सर्किल के अंदर हरियाणा की टीम यहाँ पर ढूंढ रही है, अवसर को ढूंढ रही है सर्किल के अंदर कब जोरदार हिट लगाया जाए, कब मध्य प्रदेश के गोलकीपर महक परिहार को डिफीट किया जाए और गेंद गोल पोस्ट के अंदर डाला जाए। लेकिन अभी तक एक क्वार्टर का समय बीत गया 15 मिनट का, और दूसरे क्वार्टर का 6 मिनट का समय लगभग बीत गया है, कोई गोल नहीं हुआ हरियाणा की तरफ से। चपास सर्किल के ऊपर एक बार फिर यहाँ पर कोशिश करती हुई हल्का पास, हरियाणा के खिलाड़ी के पास है बॉल, सीधा डायनल पास, मध्यरेखा से बॉल लेके निकलने की कोशिश, लंबा हिट, लेकिन बेहतरीन इंटरसेप्ट यहाँ पर एमपी के डिफेंडर के द्वारा। बॉल लेके आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे दो खिलाड़ियों के झुरमुट में से देखिए कितना सही तरीके से बॉल लेके निकली और बाएं फ्लैंग में बॉल को बढ़ा दिया, एक सुरक्षित पास, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच गई है हरियाणा यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम। लेकिन हरियाणा की सुरक्षा रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही संयम तरीके से बॉल को निकाल दिया। राइट फ्लैंग में राइट विंगर को पास बढ़ा दिया गया है। हरियाणा का काउंटर अटैक राइट फ्लैंग से इस वक्त होता हुआ दाएं छोर से बहुत तेजी के साथ आक्रमण बना था, लेकिन बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा। बॉल अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी राइट फ्लैंग से बॉल लेके निकलते हुए बहुत बेहतरीन पास बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन गेंद के अंदर गति थी, गेंद निकल गई बाहर इस वक्त टच लाइन के बाहर। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। हरियाणा अपने चिर प्रतिद्वंदी टीम मध्य प्रदेश से इस वक्त भिड़ रही है, जबकि मध्य प्रदेश की तरफ से 2 गोल हो चुका है। यहाँ पर केसर भावर आगे बढ़ रही थी और केसर भावर को सफलता मिली। केसर भावर ने पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, सुनीता किन्नू के लिए। खिलाड़ी बेहतरीन तालमेल के साथ खेल रहे हैं। इस वक्त गेंद चली गई है सरोज मानसी के पास, जर्सी नंबर 14, और लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर हरियाणा का, और बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया है। राइट के डायगोनल पास अटैक बनता हुआ इस वक्त 23 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए हरियाणा के खिलाड़ी बॉल को बढ़ा दिया डी के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर गेंद पैर से टकराई हरियाणा के खिलाड़ी का, ले नहीं पाई, और इस वक्त नमिता खालको का इशारा फ्री हिट लेने का मध्य प्रदेश का। दूसरा क्वार्टर का 8 मिनट का खेल हो चुका है। बहुत तेज हॉकी खेल चल रहा है और हमें भी काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि खेल के गति के साथ हमें भी उसी तरह से अपनी आवाज़ को बढ़ानी पड़ती है, अपनी खेल कमेंट्री की गति को बढ़ानी पड़ती है। फिट मिलता हुआ यहाँ पर एमपी को पीछे सरका दिया रक्षा पंती के खिलाड़ी के लिए बॉल, डायगोनल पास, बहुत अच्छा पास, एक खिलाड़ी को डील करते हुए इस वक्त हरियाणा के एमपी के खिलाड़ी बढ़ गई है। मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए एमपी के खिलाड़ी बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया था, यहाँ पर सुंदर पास बढ़ाया था, लेकिन ले नहीं पाई उनके साथी खिलाड़ी, गेंद गई बाहर। 6 मिनट 20 सेकंड का समय लगभग बचा हुआ है इस वक्त दूसरा क्वार्टर का। हरियाणा के खिलाड़ी के पास है बॉल, अपने क्षेत्र में खेलती हुई राइट फ्लैंग में बॉल को बढ़ा दिया गया मिडफील्ड के खिलाड़ी के लिए। अच्छी तालमेल के साथ खेल रही हरियाणा की टीम, राइट फ्लैंग से अटैक बनता हुआ। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का एक अहम मुकाबला हो रहा है। यहाँ पर डिवीजन ए का पूल सी का मुकाबला चल रहा है। मैं बता दूं हरियाणा और एमपी के बीच। हरियाणा भी एक मुकाबला को जीत चुकी है, एमपी भी एक मुकाबला अपने आरंभिक मुकाबले को जीत चुकी है। मणिपुर की टीम मैं बता दूं अपना दोनों मुकाबले को हार चुकी है। इस पूल का आखिरी मुकाबला चल रहा है हरियाणा और मध्य प्रदेश के बीच। जो भी इस मुकाबले को जीतेगी वो अपने पूल सी में टॉप पे पहुंच जाएगी, शीर्ष स्थान पे पहुंच जाएगी। एक मुकाबला जीतने के बाद हरियाणा के पास भी है 3 अंक, मध्य प्रदेश के बाद भी है 3 अंक गोल डिफरेंस में, लेकिन एमपी की टीम आगे है। पास अगर हम जीडी की बात करें, गोल डिफरेंस की बात करें, तो हरियाणा का गोल डिफरेंस है 2 और यहाँ मध्य प्रदेश का है 3।
पीछे पास यहाँ पर रक्षाबंधी के खिलाड़ी के पास है बॉल, बहुत बढ़िया पास अभी भी है। यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए बाएं फ्लैंक से यहाँ पर बॉल को बढ़ा दिया गया है। बढ़िया पास विभा सिंह के लिए, विभा सिंह ने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, बाएं फ्लैंक से अटैक बनता हुआ। बहुत अच्छा तालमेल के साथ खेल रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है एमपी की लड़कियाँ। जबकि हरियाणा अपने परंपरागत जो खेल है, नेचुरल खेल है, स्वाभाविक खेल है, उस तरह की हॉकी खेल रही है। लेकिन इस बार तो बहुत तेज तर्रार हॉकी खेल रही है एमपी की लड़कियां। सब जूनियर लड़कियां इस वक्त अच्छा प्रदर्शन करती हुई फिलहाल यहाँ पर 4 मिनट का समय बचा हुआ है दूसरा क्वार्टर का। दाएं फ्लेम में पास, लंबा हिट, मध्यरेखा को बॉल को संभाल लिया है यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी। हरियाणा का अटैक बनता हुआ राइट फ्लेम से बहुत तेज अटैक बन रहा है, बहुत ही तेज तरीके से इस वक्त यहाँ पर क्रॉस पास बढ़ाने की कोशिश। मध्य प्रदेश से, सॉरी, हरियाणा की तरफ से मध्य प्रदेश के विरुद्ध यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर इंजेक्ट करने की तैयारी। इंजेक्ट किया गया हरियाणा के लिए, यह ड्रैग और अच्छा बचाव। सोलह गज का हिटिंग इस वक्त हरियाणा के लिए। हिट किया यहाँ पर, एक बार फिर रिटर्न यहाँ पर पास बढ़ा दिया गया है हरियाणा का खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर टॉम हॉक, लेकिन अच्छा ब्लॉकिंग यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी का। रक्षापति के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़े, बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया लेफ्ट साइड में। बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए इस वक्त मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बहुत तेज हॉकी खेल रही है एमपी की टीम। बहुत अच्छा नपतुला पास राइट विंगर पर स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया था, लेकिन बॉल ले नहीं पाई। नौशीन नाज को बॉल को बढ़ाया था। हिट यहाँ पर नौशीनान ने बॉल को सरका दिया है सुदीप्ता किंडो के लिए। सुदीप्ता किंडो ने बैक सरकाया, एक बहुत अच्छा पास अपने क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त यहाँ पर एमपी की टीम। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल, डीप डिफेंडर के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया। लंबा हिट राइट फ्लैंक से, एक बार फिर डायगोनल पास के द्वारा बॉल लेके निकलने की कोशिश। एक बार फिर यहाँ पर नौशीन नाज के, सॉरी, यहाँ पर सुदीप्ता किंडो के लिए बॉल को बढ़ाया था। सुदीप्ता किंडो इस बात में बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई यहाँ पर साथ में बेहतरीन पास बढ़ा दिया था साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर एक बार फिर बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही है इस बार एमपी की टीम। खतरा बनता हुआ यहाँ पर हरियाणा के ऊपर एक बार फिर यहाँ पर, क्योंकि संभल के खेलना पड़ेगा। प्लेसिंग बहुत अच्छा करती है एमपी की टीम। एक बार फिर हरियाणा के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए मध्यरेखा से लेफ्ट फ्लैंक से अटैक बनता हुआ हरियाणा का। बहुत अच्छा डायगोनल पास राइट फ्लैंक में बॉल को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा यहाँ पर 0 है, जबकि मध्य प्रदेश 2 गोल से आगे। हरियाणा की टीम पूरी शक्ति को झोंकती हुई इस मैदान के अंदर वापसी के लिए बेकरार। राइट फ्लैंक से बॉल लेकर बढ़ने की कोशिश यहाँ पर, और ये स्थिति इस वक्त गई बेकार। अच्छा मौका हरियाणा के लिए। खेल 1 मिनट 30 सेकेंड का बचा हुआ है इस बीच। लंबा हिट निकालने की कोशिश, और दूसरा क्वार्टर का समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। 1 मिनट 22 सेकेंड का समय। अभी तक हरियाणा की लड़कियों का स्टिक बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। गोल नहीं हुआ है अभी हरियाणा की तरफ से, जबकि यहाँ पर खेल के 16वां मिनट में, जबकि मध्य प्रदेश की तरफ से 2 गोल हो गया। खेल के चौथा मिनट में नौशीन नाज ने गोल किया, और खेल के 16वां मिनट में गीताश्री नम्मी ने गोल करके अपनी टीम को 2-0 की बढ़त दिला दिया है। अभी तक जो कायम है, खेल चला गया है आखिरी मिनट में। लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा है हरियाणा के लिए।
खिलाड़ी को ड्रिबल करते हुए पीछे सरका दिया। अभी भी यहाँ पर बॉल है हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल, लेकिन अच्छा वहाँ पर इंटरसेप्ट, गेंद को बढ़ा दिया गया रूली वाल्मीकि के लिए। एमपी के खिलाड़ी रूली वाल्मीकि मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए यहाँ पर 23 मीटर रेखा के पास पहुँच गई है। एक अच्छा मौका, यहाँ पर बहुत तेज अटैक बना था यहाँ एमपी के द्वारा, लेकिन बढ़िया इंटरसेप्ट, उतने ही बेहतरीन इंटरसेप्ट किया गया हरियाणा के खिलाड़ी के द्वारा। स्थिति यहाँ पर 2-2, लेकिन दूसरा क्वार्टर का वक्त की नज़ाकत बतला रही है कि अब यहाँ पर हुटर बजने वाली है, और हुटर बजी, और इस तरह से ये स्थिति यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का ख़त्म हुआ। स्थिति है इस वक्त एमपी 2 हरियाणा 0। हम मिलेंगे मध्यांतर के बाद तीसरे क्वार्टर में, तब तक की जाए।
नमस्कार, स्वागत है आपका। तीसरा क्वार्टर का खेल इस वक्त शुरू होता हुआ, और मैं बता दूं 2-0 की स्थिति है। अभी तक हरियाणा की टीम कोई भी गोल नहीं कर पाई है। जहां तक सवाल है इस मुकाबले का, एक बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच। जहां तक एक तरफ से हरियाणा का सवाल है और दूसरी तरफ से यहाँ पर मध्य प्रदेश का सवाल है। तो परिस्थिति जो है वह 0-2 की है। तो हरियाणा के खिलाड़ी के पास है बॉल। इस वक्त हरियाणा की टीम हमसे ठीक कमेंट्री बॉक्स की दाईं तरफ चली गई है, जबकि बाईं तरफ चली गई है इस वक्त मध्य प्रदेश की टीम। मध्य प्रदेश का खिलाड़ी के पास है बॉल, पीछे से हटा दिया गया। अच्छा पास, गेंद इस वक्त है हरियाणा के खिलाड़ी राइट फ्लैंक से इस वक्त अटैक करने के लिए चाह रही है हरियाणा की टीम। 0-2 की स्थिति है। तीसरा क्वार्टर का खेल इस वक्त चल रहा है। गेंद गई बाहर इस वक्त, टच लाइन का फ्री हिट मिलता हुआ हरियाणा को। उन व्यूअर के लिए जिन्होंने अभी भी स्मार्टफोन के ऊपर खेल देखना शुरू किया होगा, हरियाणा की टीम है, मैं बता दूं इस वक्त गुलाबी और पीली रंग की जर्सी में, जबकि दूसरी तरफ ब्लू रंग की जर्सी में, नीली रंग की जर्सी में है मध्य प्रदेश की टीम। बहुत तेज गति से गेंद निकल गई बाहर इस वक्त गोल लाइन का। पास, लंबा हिट, हरियाणा के खिलाड़ी के पास है बॉल। हरियाणा रणनीति बना रही है इस वक्त। बहुत ही संतुलित टीम है हरियाणा की टीम। क्रॉस पास यहाँ पर, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा। रक्षा पंथी के खिलाड़ी, जैसे मैं बता रहा था, बिल्कुल बनोकिंग करके रखे हैं ये खिलाड़ी एक दूसरे को। एक बार फिर यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी के पास है बॉल। अपने क्षेत्र से इस वक्त एमपी की टीम खेलती हुई। लंबा पास, समांतर पास, हरियाणा के खिलाड़ी के पास है बॉल। 5 मीटर रेखा के बाद पहुंच गई है। यहाँ पर क्रॉस करने के लिए चाह रही हैं, सर्किल एंट्री की कोशिश कर रही थी, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी के पास। मध्य रेखा से बॉल को निकालने की कोशिश, 5 मीटर का फ्री हिट मिलता हुआ एमपी को सीधा सेंटर लाइन के पास राइट फ्लैंक से। 0-2 की स्थिति है। लंबा पास, एक बार यहाँ पर क्षेत्र में इस वक्त सर्किल एंट्री करती हुई लंब सेंटर लाइन के पास बढ़ाने की कोशिश। मध्य रेखा से इस वक्त सर्किल एंट्री करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर एमपी की टीम। रिवर्स फ्लिक और गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। एक बार फिर यहाँ पर गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। तीसरा गोल, टॉम हॉक, बेहतरीन टॉम हॉक। देखिए किस तरह से यहाँ पर पोजीशन बनाती हुई एमपी की खिलाड़ी, बॉल को बढ़ाया गया। एक अच्छा पास यहाँ पर, ये है नौशीन नाज और नौशीन नाज ने यहाँ पर टॉम हॉक लगाया, एकदम नपतुला टॉम हॉक कर गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। तीसरा क्वार्टर का 8वां मिनट, यानी 38वां मिनट में नौशीन नाज ने गोल किया अपनी टीम के लिए, दूसरा गोल। तो तीसरा गोल यहाँ पर नौशीन नाज का स्टिक का जादू चल रहा है कहा जाएगा। कल भी उन्होंने 3 गोल किया था। आज नौशीन नाज ने पहला गोल चौथा मिनट में पहला क्वार्टर का, और तीसरा क्वार्टर का यहाँ 38वां मिनट में। तो इस तरह से 2 गोल नौशीन नाज के नाम, 1 गोल किया गया जो है वो गीताश्री नम्बे ने किया, जो खेल के 16वां मिनट में किया।
तो इस तरह से आज जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति कहा जाएगा बन रहा है यहाँ पर। तो 2 गोल नौशीनाज, 1 गोल गीताश्री नम्मी के द्वारा 3 गोल हो गया मध्य प्रदेश के नाम। यहाँ पर चिंताएं बढ़ती हुई हरियाणा के लिए। हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल 23 मीटर रेखा के पास पहुंच गई हरियाणा की टीम। एक बार सर्किल एंट्री की कोशिश इस वक्त हरियाणा के द्वारा। तीसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है। इस वक्त चिंता का विषय है हरियाणा के लिए। मध्य प्रदेश की टीम बहुत बेहतरीन खेल रही है, कलात्मक हॉकी खेल रही है यहाँ पर आज। दूसरी तरफ से पूरी शक्ति को झोंक रही है हरियाणा की टीम। हालांकि हरियाणा की टीम उलटफेर करने में माहिर टीम है ये। हमने देखा था मणिपुर के विरुद्ध, मणिपुर ने दो पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके 2-0 की बढ़त प्राप्त कर लिया था। लेकिन उसके बाद वापसी किया हरियाणा की टीम ने। हरियाणा की टीम ने वापसी किया, बल्कि बराबरी का गोल करके 6-3 का स्कोरिंग रहा था जब मुकाबला समाप्त हुआ था। और यहाँ पर हरियाणा की टीम 1 पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई। हिमांशी इस वक्त गई हैं लंबी कद की खिलाड़ी इंजेक्शन के लिए हरियाणा की तरफ से। तीसरा क्वार्टर का लगभग 6 मिनट समय बाकी है। ये इंजेक्शन बॉल को बढ़ा दिया गया। अभी भी मौका है हरियाणा के लिए, पोजीशन बना रही है यहाँ पर हिटिंग के लिए, लेकिन गेंद गई बाहर। खुशप्रीत कौर हैं एक तरफ से मुकाबले को संचालित कर रही हैं और दोनों बाहों को फैलाकर यहाँ पर खुशप्रीत कौर ने इशारा किया है, वाइट का इशारा किया और ये बताया कि गेंद गोल पोस्ट से बाहर चली गई। और ये मौका हाथ से निकला यहाँ पर हरियाणा के। नौशीन नाज के पास है बॉल। नौशीन नाज देखिए इस वक्त बॉल लेकर आगे बढ़ती हुई मदरेका को क्रॉस करती हुई नौशीन नाज एक बढ़िया पास बढ़ा दिया है। एक नपातुला पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए यहाँ पर स्नेहा दावड़े के लिए, लेकिन वहाँ पर बेहतरीन इंटरसेप्ट। एक बार फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए देखिए स्टैकिंग सर्किल के अंदर एंट्री करने की कोशिश। बहुत अच्छा पास बढ़ाया था। तो तीसरे क्वार्टर का 5 मिनट का समय बचा हुआ है। बहुत तेज़ी के साथ वक्त निकल रहा है, समय की धार के साथ, वक्त की नज़ाकत के साथ। अब यहाँ पर हरियाणा को ज़रूरत है अपने खेल के फॉर्मेट को बदलने का, खेल की रणनीति को बदलने का। और यहाँ पर जोरदार हमला करने पड़ेगा एमपी के डी बॉस के ऊपर जा करके, तभी बात बनेगी। हलचल मचानी पड़ेगी, मिडफील्ड को तोड़ना पड़ेगा। जो मिडफील्ड जो है बहुत मजबूत है एमपी का, इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है कुछ। गेंद गई बाहर। लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा है यहाँ पर एमपी के लिए। पीछे सरका दिया गया, डायगोनल पास, राइट फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश, बॉल को सीधा पास बढ़ाने की कोशिश की गई थी। खुशप्रीत कौर का इशारा स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर इस वक्त बढ़ रही है यहाँ पर। अच्छा बचाव गोलकीपर का, बहुत अच्छा बचाव गोलकीपर महक परिहार ने बेहतरीन बचाव किया। गई बाहर इस वक्त, टच लाइन। और एक बार फिर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा है हरियाणा के लिए। उसको फरेल नहीं दिए। तो यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। इंजेक्शन, बॉल को रोका गया और लंबा हिट यहाँ पर। और ये मौका हाथ से निकला। तो एक और मौके को तलाश रही इस वक्त एमपी की टीम।
बहुत तेज हॉकी चल रहा है दोनों टीमों के बीच। यहाँ तक सवाल है, एक तरफ से हरियाणा, एक तरफ से एमपी। तीसरा क्वार्टर का खेल प्रगति पर है, मात्र 3 मिनट का समय बचा हुआ है। हरियाणा के लिए इस वक्त ये चिंता का विषय है कि अभी तक कोई गोल नहीं हुआ है हरियाणा की तरफ से, जबकि दूसरी तरफ से यहाँ पर एमपी की टीम समय के कालांतर में गोल करती गई। और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा यहाँ पर खुशप्रीत कौर ने इशारा किया है। हरियाणा के लिए यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा किया गया, लेकिन ऑब्जेक्शन भी यहाँ पे हुआ है। जा कर के कहा जाए कि निर्णायक ने जो है वो मदद मांगी है वीडियो अंपायर से। देखिए बॉल लेके किस तरह से बढ़ रहे थे हरियाणा के खिलाड़ी। अच्छा पास, 23 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए डॉटेड लाइन के फिर अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे साइकिल सर्किल के अंदर। गलत तरीके से उनको रोका गया और यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा, जबकि ऑब्जेक्शन है वहाँ पर। देखिए रिप्ले में क्या हुआ। ये है स्क्रीन के ऊपर खुशप्रीत कौर नजर आ रही हैं। ये पंजाब से आती हैं, बहुत तेज तर्रार अंपायर हैं। और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। लंबी वार्ता के बाद वीडियो अंपायर से पेनल्टी कॉर्नर का इशारा किया। हरियाणा के लिए अच्छी खबर है। सर्किल के ऊपर 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इंजेक्ट, तेज हिट यहाँ पर। अभी भी मौका है यहाँ पर हरियाणा के लिए। आप देख सकते हैं सर्किल के अंदर गेंद घूम रही है, लेकिन अब यहाँ से मौका हाथ से निकला और एक यहाँ पर सुरक्षित स्थान है। अब यहाँ पर एमपी के लिए खतरा टला एमपी के ऊपर से। तीसरा क्वार्टर का लगभग 2 मिनट 20 सेकंड का समय बचा हुआ है। और अब यहाँ पर मध्यरेखा से बॉल लेके निकलने की कोशिश हरियाणा के खिलाड़ी। लेफ्ट फ्रेम में पास, अच्छा मौका है 23 मीटर रेखा के पास यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश। लेकिन मैं जैसा बता रहा था मिडफील्ड और जो डिफेंस के खिलाड़ी हैं काफ़ी मजबूत हैं ये एमपी के। यहाँ के खिलाड़ी 10 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए बॉल को निकलने की कोशिश। बहुत तेज इस वक्त हॉकी चलता हुआ। 1 मिनट 43 सेकंड का समय बचा हुआ है। तो ये स्थिति जो बतला रही है इस वक्त, हरियाणा बहुत ही जितोड़ कोशिश कर रही है मुकाबले में वापसी के लिए। मतलब कि
हालांकि 3 गोल से आगे चल रही है इस वक्त टीम। और इसी परिस्थिति से निपटने के लिए हरियाणा को एक बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हुआ है, कोई भी गोल नहीं कर पाई है हरियाणा की टीम। परिस्थिति बिल्कुल उल्टा चल रहा है हरियाणा का। खेल आखिरी मिनट में चला गया है, इसके बाद मात्र 15 मिनट का समय बचेगा हरियाणा के लिए। तो तो देखिए यहाँ पर ये बॉल बढ़ाया गया और यहाँ पर पहला गोल दागती हुई हरियाणा की टीम आप देख सकते हैं। अब स्थिति है 3-1, यानी तीसरा क्वार्टर का आखिरी मिनट, 44वां मिनट में हरियाणा की तरफ से गोल हुआ और अब स्थिति हुई है 3-1। बहुत देर के बाद हरियाणा को सफलता मिली क्या करके तीसरा क्वार्टर में। साजिदा बेगम के पास है बॉल, हरियाणा के खिलाड़ी बॉल एक बार फिर कलेक्ट करते हैं, बॉल के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सर्कल के ऊपर खेल चलता हुआ, लेफ्ट फ्लेयर में पास, पीछे से आए वहाँ पर एमपी के खिलाड़ी, रक्षापंत के खिलाड़ी। बहुत मजबूत है जो टीम है वो हरियाणा की, यहाँ पर एमपी की। और स्थिति अब है 3-1 यहाँ पर। तो इस परिस्थिति से यहाँ पर कुछ मौका मिला है, यहाँ पर हल्का कुछ उम्मीद की किरण जगी है हरियाणा के लिए। और यहाँ हुरर बजता हुआ, स्थिति अब है 3-1। हम मिलेंगे जाकर के चौथे क्वार्टर, जो आज का आखिरी अंतिम क्वार्टर होगा। तब तक के लिए आगे जी नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। नमिता खालको की सिटी के साथ यहाँ पर चौथे क्वार्टर के खेल की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर गेंद इस वक्त है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के पास बॉल। मध्य प्रदेश की इस वक्त हमसे ठीक कमेटी बॉक्स की दाईं तरफ, बाईं तरफ है हरियाणा की टीम। लेफ्ट फ्लेंक से इस वक्त बॉल लेकर निकलने की कोशिश, गेंद है केसर भाभर के पास। गेंद इस वक्त हरियाणा के खिलाड़ी के पास चली आई है। बहुत तेज टीम खेल रही है, दोनों टीमें मुकाबला। यहाँ पर अंतिम क्वार्टर का समय है, 3-1 की स्थिति है। अभी अभी खेल के 44वां मिनट में एक गोल डाला गया हरियाणा की तरफ से। बहुत देर के बाद एक अच्छी खबर आई हरियाणा के लिए, जबकि यहाँ तक जो स्थिति है वो बतला रही है कि बहुत आज खेल के ऊपर हावी रही यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम हरियाणा के ऊपर। हरियाणा के लिए कोई मौका आज ही नहीं मिला, बहुत अच्छे से ब्लॉकिंग किया गया हरियाणा के खिलाड़ियों को। स्थिति है इस वक्त 3-1। 2 गोल नौशीन नाज ने किया, 1 गोल गीताश्री ने किया, जबकि हरियाणा की तरफ से मात्र ज्योति ने किया है। आखिरी 45वां मिनट में बिल्कुल खेल खत्म होने की स्थिति में थी, तो गोल किया गया हरियाणा की तरफ से ज्योति के द्वारा। तो स्थिति इस वक्त है यहाँ पर 3-1। पेनल्टी कॉर्नर इस वक्त इंजेक्शन
बॉल को बढ़ाने की कोशिश, जगह बनाने की कोशिश कर रही है हरियाणा की टीम, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहाँ पर। तो 3-1 की वहाँ पर परिस्थिति है इस वक्त। हरियाणा के खिलाड़ी के पास है यहाँ पर बॉल, अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी का, लंबा हिट यहाँ पर राइट फ्लैंक में। धीरे धीरे बॉल लेके निकलने की कोशिश, एक बार हमला पनपता हुआ राइट फ्लैंक से मध्य प्रदेश का हरियाणा के ऊपर। देखिए किस तरह से, और ये पेनल्टी कॉर्नर पे इशारा, गेंद पर टकराई पैर में। मध्य प्रदेश के लिए पेनल्टी कॉर्नर इस वक्त मिलता हुआ। सुदीप्ता किंडो इंजेक्शन, लेकिन हवा में उछली, एक बार फिर हिट यहाँ पर, अच्छा मौका, लेकिन गिरते हुए यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी ने, अच्छा पंच के खिलाड़ी थे, उन्होंने बॉल को क्लियर किया। फिर यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल, लगाने की कोशिश, सीधा पास, बॉल लेके निकलने की कोशिश, तेज पास। एक बार फिर यहाँ पर आक्रमण करती हुई मध्य प्रदेश की टीम के खिलाड़ी स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच गई, बहुत तेजी के साथ सेंटर करने की कोशिश यहाँ पर पहुंची हुई थी। नौशीन नाज बहुत ही आकर्षक खिलाड़ी हैं, बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं, वक्त की नजाकत के साथ मौका को ढूंढती है और गोल करने में एक्सपर्ट है नौशीन नाज। जर्सी नंबर 5 को याद रखिएगा, नौशीन नाज, मध्य प्रदेश। पास मधुरेखा के पास गेंद है इस वक्त किंडो के पास, किंडो ने पीछे सरका दिया। एक और बहुत ही काफ़ी दूर डिफेंडर के लिए बॉल को भेजा गया था, गेंद निकल गई यहाँ पर भाविका के स्टिक से रखती हुई बाहर। फिर हिट मिलता हुआ हरियाणा को, हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल, लेफ्ट फ्लैंक में पास है, लेफ्ट फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश। कुछ समय से यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम हावी है हरियाणा के ऊपर। 3-1 की इस वक्त परिस्थिति है। सोलहवीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आज 7वें दिन का मुकाबला चल रहा है रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, और आज का चौथा मुकाबला चल रहा है। बहुत ही तेज हॉकी चला अभी तक दोनों टीमों के बीच। यहाँ पर सवाल है हरियाणा और मध्य प्रदेश का बात। पास यहाँ पर है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, बॉल लेके निकलने की कोशिश, यहाँ पर गेंद, अच्छा पास नौशीन नाज के लिए बॉल को बढ़ा दिया। ये वो सबसे खतरनाक खिलाड़ी है नौशीन नाज, एमपी के नौशीन नाज ने बॉल को बढ़ाया साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत ही नपातुला पास केसर भाभर के लिए, केसर भाभर ने लंबी हिट लगाई लेकिन गेंद गई बाहर। लगभग 5 मिनट का खेल हो गया चौथे क्वार्टर का। यहाँ के खिलाड़ी के पास बॉल, मैं बता दूं हरियाणा की तरफ से जो खेल रही टीम, इस टीम में
ज़्यादा लड़कियाँ जो है हरियाणा के हिसार से आती हैं। कुछ लड़कियाँ हैं सोनीपत की, कुछ लड़कियाँ, एक लड़की जो है मानसी कुरुक्षेत्र से आती है। तो इनके जो कप्तान हैं ये राधिका, ये भी हिसार से हैं। जबकि दूसरी तरफ से जो ये मध्य प्रदेश की टीम है, इसमें ज़्यादा लड़कियाँ ग्वालियर की हैं, कुछ जबलपुर की हैं, सिवनी की है सबसे खतरनाक लड़की जो खेल रही है इस वक्त, नौशीन नाज, ये जबलपुर की नदी सिवनी से आती हैं। सदर जहाँ भोपाल की हैं, सरोज मानसी ग्वालियर की, मानसौर की हैं शालिनी सिंह, जागृति यादव हैं ग्वालियर की, जबकि इनके कोच भी हैं देवकीनंदन कुशवाहा, ये भी ग्वालियर से आते हैं। हिट। और यहाँ पर एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त नौशिन्ना ने टॉमहॉक लगाई थी, लेकिन यहाँ पर उससे पहले इंक्रीमेंट हो गया था। तो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो चल रहा है यहाँ पर रांची में, आज मुकाबले का है 7वां दिन। इसके बाद मात्र 3 दिन और मुकाबला रह जाएगा। कल है विश्राम का दिन, 9 तारीख को क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा, 10 को सेमीफाइनल, 11 को रेस्ट, 12 को फिर फाइनल खेला जाएगा। ये रहेगी इस टूर्नामेंट की स्थिति। आठ मिनट का खेल हो गया है। तीन एक की स्थिति है इस वक्त, हरियाणा 1 मध्य प्रदेश 3। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त हॉकी चल रहा है। जहाँ तक इस हॉकी का निष्कर्ष का सवाल है, क्वार्टर 4 का मुकाबला चल रहा है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है, हरियाणा की टीम 2 गोल से पीछे चल रही है। यहाँ पर इस कड़े संघर्ष में मध्य प्रदेश की टीम इस वक्त आगे हो गई है। खेल के 45वां मिनट में ज्योति ने गोल किया, एकमात्र गोल किया हरियाणा के लिए, और यही गोल अभी तक कायम है। जबकि नौशीन नाज ने 2 गोल किया 4वें मिनट में, और 30वां मिनट में गीताश्री नमी ने 1 गोल किया खेल के 16वां मिनट में मध्य प्रदेश की तरफ से। तीन एक की स्थिति है, 6 मिनट का समय बचा हुआ है। हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल, इनफील्ड हुआ, फ्रीट मिला है वहाँ पर सेकंड सर्किल के अंदर, नौशीन नाज वहाँ पे पहुँच गई थी। खतरा इस तरह से बढ़ेगा, अगर आप कहीं भी गलती कीजिएगा तो बहुत ही तेज तर्रार खेल रही है आज ये एमपी की टीम। 5 मिनट 30 सेकंड का समय बचा हुआ है। लंबा हिट स्टैगी सर्किल के अंदर एक बार फिर वहाँ पे पहुँची हुई थी गीताश्री नम्मी। गीताश्री नम्मी ये ग्वालियर से आती हैं, ये मतलब बता दूँ, इन्होंने खेल के 16वां मिनट में गोल किया था। गेंद है इस वक्त यहाँ पर एमपी के खिलाड़ी के पास बॉल, गेंद एक बार फिर यहाँ पर केसर भाबर के पास है बॉल, ये एमपी के खिलाड़ी केसर भाबर। तो
बाईफले में पास बहुत तेज हिट इस वक्त हरियाणा के खिलाड़ी के लिए। हरियाणा के खिलाड़ी इस वक्त अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं जैसा बता रहा था हर खिलाड़ी को मार्क करके रखा है यहाँ पर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने। और यहाँ प्रियांशी छेत्री बॉल लेकर निकली। एक बार फिर यहाँ पर बॉल स्वीप तकिंडो के द्वारा बाईफले में पास। यहाँ बहुत बढ़िया पास केसर भाभर के लिए लंबा हिट। और यहाँ पर एक मौका निकला फिर। हरियाणा के खिलाड़ी के पास बॉल इस वक्त सर्किल एंट्री करने की कोशिश कर रही है हरियाणा के खिलाड़ी। यहाँ पर कैरेड हुआ, पैर से टकराई गेंद, फ्री हिट मिलता हुआ इस वक्त सर्किल के ऊपर हरियाणा को। आज बहुत ही जबरदस्त हॉकी खेला है मध्य प्रदेश की टीम ने। एक अच्छा मौका यहाँ पर, बहुत तेज हिट यहाँ, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ी। महक परिहार, इन्होंने बढ़िया बचाव किया मध्य प्रदेश के लिए। कई निश्चित मौके को बचाया है महक परिवार ने। लंबा हिट यहाँ पर रूली वाल्मीकि के द्वारा मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बॉल को भेज दिया है नौशीन नाज के लिए। नौशीन नाज देखिए इस तरह से बॉल एक आगे बढ़ रही है। गजब की खिलाड़ी है नौशीन नाज, माननी पड़ेगी। और यहाँ गेंद हुआ, चौथा गोल हुआ मध्य प्रदेश की तरफ से। नौशीन नाज बहुत तेज तरीके से बॉल लेके निकली, साथी खिलाड़ी को बढ़ाया। वहाँ पे देखिए देखिए रिप्ले में देखिए क्या स्थिति बनी। ये देखिए नौशीन नाज बॉल लेके आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे बढ़ती हुई स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर पहुंची। वहां पर बॉल को बढ़ा दिया अपने राइट फ्लैंक में अपने साथी खिलाड़ी के लिए। वहां पर उन्होंने बॉल को सेंटर किया, गेंद गई बाहर। इस वक्त यहाँ पर गोल डालते हुए प्रियांशी भंवर लगता है गेंद डाल दिया है गोल को। यहाँ पर तो चौथा गोल हुआ इस वक्त। एक और फिर यहाँ पर गोल की तलाश में देखिए एक बार फिर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर घूम रहा है बॉल। तो स्थिति हो गई अब 4-1। वैसे स्कोरिंग का ग्राफ को बदला नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर 4 गोल हो गया है मध्य प्रदेश की तरफ से। आज अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश की टीम ने बहुत बढ़िया हॉकी खेला, और ख़ास करके तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर नौशीन नाज की। अकेले यहाँ पर नौशीन नाज ने कमर तोड़ के रख दिया है हरियाणा का। और हरियाणा की तरफ से यहाँ पर मध्य प्रदेश की तरफ से 5वां गोल होता हुआ। देखिए किस तरह से बॉल को भेजा है इस तरफ दाएं फ्लाई में, लंबा हिट और गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। 5वां गोल। आज गजब का प्रदर्शन हो रहा है मध्य प्रदेश की तरफ से। 57वां मिनट में प्रियांशी भंवर, मैं सही बता रहा था, जैसे नंबर 12 वो जैसा मैं देख रहा था यही गोल डाली यहाँ पर खेल के 57 मिनट में। चौथा गोल, लेकिन उसके बाद भी एक गोल हुआ है। आंकड़े बतला रहे हैं 5-1। चौथा मिनट में नौशीन नाज ने गोल डाला, फिर 37वां मिनट में, 16 मिनट में, उसके बाद फिर 57 मिनट में, और अभी अभी एक गोल डाला गया। तो इस तरह 5 गोल हो गया। पाँच एक आज ये बिल्कुल हरियाणा की कमर को तोड़ के रख दिया यहाँ पर एमपी की खिलाड़ी की लड़कियों ने। टीम मध्य प्रदेश की आज बहुत ही जुझारू रूप से खेली है, और न सिर्फ जुझारू रूप से बल्कि आज बैकफुट पे जाने को मजबूर कर दिया है एमपी को। प्रियांशी भंवर ने यहाँ पर 1 मिनट के अंतराल के अंदर 57 मिनट में और 58 मिनट में गोल किया। 2 गोल इस वक्त प्रियांशी भंवर के नाम। ये कारकोन से आती है प्रियांशी भंवर, और 2 गोल है
नौशीन नाज के नाम और एक गोल गीताश्री नमी के नाम। तो अब खेल यहाँ पर बहुत ही कम समय बचाया है और समय वक्त आपकी नज़ाकत बतला रही है कि अब खेल ख़त्म होने की स्थिति में है। और इस वक्त परिस्थिति जो है वो है यहाँ पर पक्ष में कहा जाए तो हरियाणा के विरुद्ध मध्य प्रदेश के पक्ष में खेल चला गया है और मध्य प्रदेश की टीम यहाँ पर इस वक्त अग्रसर होती हुई जीत की तरफ। 25 सेकंड का समय बचा हुआ है। 17 सेकंड का समय बचा हुआ है इस वक्त। एमपी की टीम 5-1 से आगे है। 4 गोल की बढ़त बरकरार है इस वक्त एमपी के पास। 2 गोल नौशीन नाज ने किया, 2 गोल प्रियांशी भंवर ने किया और 1 गोल किया है गीताश्री नम्मी ने, जबकि राधिका ने एकमात्र गोल किया है या ज्योति ने एकमात्र गोल किया जो खेल के 45वां मिनट में वो हरियाणा की तरफ से। तो स्थिति यहाँ पर चौथा क्वार्टर का खेल ख़त्म हुआ। बाजी मारी आज मध्य प्रदेश की टीम ने। बहुत बेहतरीन कलात्मक हॉकी खेला आज मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने और बैकफुट पे जाने को मजबूर किया यहाँ पर हरियाणा को और हरियाणा को 5-1 से पराजित कर दिया। मैं शमी आलम ये बताते हुए कि आज धमाकेदार जीत दर्ज किया यहाँ पर।
A very good afternoon to one and all who is joining us for the live broadcast again for another cracker of a contest, which is going to be the Hockey Association of Urisa versus Hockey Punjab, right here from the Marangom ke Jaipal Singh AstroTurf International Hockey Stadium, right in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand. I'm Mayur Barwa, your host commentator. I'll be joined along with Mr. Shami Malam. Very soon we'll be in Hindi, but that's for the next leg of the chapter, the next, the last tournament. Already, Hockey Association of Urisa pressing on the attack from the very first start, bring in the yellow and black, our Hockey Association of Urisa in white, complete white, and just a lining of pink are playing the girls all the way from Hockey Punjab. This is the 16th edition of the Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026 that you're watching live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. We've had so very good days today of these matches that you see. And the umpires for today's match is Miss Nitu Kumari and Miss Sefali Choker. The reserve umpire is Miss Anjali Rathore. The timing judge is Miss Pratima Tirki. The scoring judge is Miss Ashrita Lagra, and technical officer is Miss Sweta. For Orissa, and the goalkeeper is Miss Nita Maji. The captain is Rubina Baxla. The coach is Mr. Peter Soreng, and team manager is Miss Reshma Lakra. For Punjab, the coach is Miss Harry. You have the captain, Miss Lovepreet Kaur, and the coach, Miss Pushpa Rani. Team manager is Mr. Kuljit Singh Bamra. So it's the boot playing 11 and the coaches in the technical bench that I have mentioned. But good to see Urisa. Not surprised the way they have just started off the attack. That's how they play Urisa. They love to play some good game. They've done with some good joy in them, and they absolutely love the surface, and the way they go on the business is something for everyone to illuminate, for everyone to just enjoy and laugh. And they have some such outstanding academies under the belt also, from where they produce some great players. And so not surprisingly, it is with some good full throttle that they have started off this match at the moment. So getting some good brindle, some nice catch up onto this match at the moment. As the girls now getting on along, I believe this is something which you'll be definitely be loving, and nice to know that really getting back, and not a single moment that you see that Punjab has been able to get it. And this is again a good case in point, back and forth. And the ball, this is a first time stealer from Punjab. As the ball just went off the blade, like past the center line, moving ahead from left to right will be Punjab attacking. From right to the left will be the Urisa girls attacking. But good implementation that you have seen. This is really good. The way they have gone on the business is scintillating. The pace is there, and the movement is everywhere for them to really see and admire.
and why not? We have seen some cluster of players of how they can go on and how can they make it their own. And not surprisingly, they have just moved along in a nice bunch, and they're definitely here to play and just create some inroads, and they have been able to do it. And how, if you have to check, it's more for everyone to play, for them to understand and learn of how they can just press the attack. Don't be don't be very excited, because on your screen, that's where the Urisa girls are actually defending. Good to see a good movement on a foot stick also coming to the fore. And lovely way they are going in their business now at the moment. If to talk about the team of Urisa, Nita Maji, the goalkeeper, Nikita Barla. It's a very good name, Nikita Barla. I'm sure every one of you know how she's performed. She's almost getting into that household name, Nikita Barla. Then you have Princess Ekka. She's also got a goal into her name. Sonima Gaud, Saraswati Oram, Captain Rubina Bakhla, Priyanka Minch, Ankita Ba, Sweetie Kuzur. Again, a very good name in that player category. Deepika Bej, and then Kiran Ekka. For Punjab, it's Harry Sulochani, Rashmin Kaur, Jashandeep Kaur, Tanya Chandelia, Jamanpreet Kaur. She has a goal. He has a field goal to her name. Harshita, Captain Lovepreet Kaur, Ramandeep Kaur, Harmanpreet Kaur, and then Sirmanpreet Kaur. So that's the playing 11 for Punjab for this match. And a good movement of the feet now. The sixth lives cross past diagonally gone. Um, or at the corner that you saw as Miss Sefali Chokr, the umpire. The other end is Miss Nitu Kumari, a very nice personality and very dear to me also. She's been such a nice friend. Let me tell you, Nitu Kumari loves her game to the T, and she's very passionate. And most of the matches you do see in women's Nitu Kumari features, and she is such a good learner of the game. So match officials also plays a significant role on a screen. That's the other umpire, Miss Sefali Chokr. The ball goes out of bounds. Less than 9 minutes now remaining in the end of quarter number one. This is the second last match of the day. This is really just holding up some nice pace and attack onto this, and good balance. If you check off how they're minting a nice business end onto it. If you have to check off what are the matches. So on the 7th, as I mentioned today, now it's Hockey Association of Urisa and then Punjab. And the last match at 4:30, which will be taken over in Hindi completely by Mr. Shamim Alam, will be Hockey Jharkhand to play versus Bihar. So that's going to be the home team, the home girls, to play versus Bihar. And you have to take about the numbers of what happened before. Urisa versus Punjab. The last time they met, it was Urisa who won 3-1 versus Punjab, and that was probably that was actually in the last edition. So this is the 16th and the 15th edition. That's what happened. This is Pool A, Division B match which are playing, and Orissa and Punjab, they both have played 1-1 match each. This is the second match that both these teams are playing, and both of them have won versus the similar opposition, Andhra Pradesh. 4-0 versus Andhra Pradesh for Orissa, and 2-0 versus Andhra Pradesh for Punjab. For Orissa, one goal each in all. Sweetie Kuzur, a field goal. Priya Princess Ekka, a field goal. Archana Kuzur, a field goal. And then Deepika Bays, a penalty corner. For Punjab, 2 goals. One from Rashmin Kaur, penalty corner. And then Jarmanpreet Kaur, a field goal. So these are the bifurcations of the goals and the number of goals that were being scored. Both of them, as I mentioned, have won versus Andhra Pradesh, their opening encounter in this 16th edition of the Sub Junior Women's National Championship 2026. Tomorrow is going to be a rest day, and then
We'll be having the four quarterfinals on the 9th of April. The first starts at 7 o'clock, then 9 o'clock, then 11 o'clock, and then 4 p.m. And then on 10th, we'll be having the first semi-final, which starts in the afternoon at 2 p.m. And then the 4 p.m. is the second semi-final. 11th April is a rest day, which is a Saturday. And then on Sunday, 12th of April, we have, and in the morning at 10 o'clock, we have the hardliner, the third and the fourth place. And then at 4 p.m. in the evening, we have the grand finale for the coveted trophy, gold and silver position for the teams. So they just put up that they do seriously very well with the way they just carry on the business. It will be wonderful to see of how they can just revolve and just gear up and put up the paces in terms of how they can just get into the goals business. And in the end, it's all about how you pull yourself, how can just mend your timing. This is how it needs to be, needs to go. Mm. Is the timing going right into the striking circle? Urisa reversing themselves and is trying to search for a goal. Ms. Nitu Kumari says, "Go back. You need to play to your original position with 5 minutes remaining." Wonderful venue. This Marang Gomke Jaipal Singh AstroTurf Hockey Stadium here in the capital city of Ranchi in Jharkhand. Absolutely blue, climbing on, and with lovely sunshine. It's not a hard sunshine at the moment, but it is just grappling along with all the players. It seems to be a very nice one, isn't it? We had the hockey in the league, and also, of course, the stature of hockey at the moment is growing as Hockey India has celebrated 100 years of its existence. So massive thank you to the office bearers, including the president, Dr. Dilip Kumar Tirki, and also to the general secretary, Mr. Bhola Nath Singh, who have been instrumental in putting the map of hockey in India to the foremost front, and have done some wonderful work behind the scenes in getting this in such an appropriate manner. Playing well at the moment. The boys, the beg your pardon, the girls. The boys are actually playing in Bihar. They're same playing the 16th edition of the Sub Junior Men's National Championship at Rajgir in Bihar, where my dear friends in commentary, Mr. Vikas Kumar in Hindi and Arbas Khan in English, are getting through the shows with the mic. And I hope you're also listening to the men's commentary there and just enjoying it. For me, here in English, this is me, Mayur Parva, and I'll be joining in Hindi very soon by Mr. Shami Malam, who's going through his space history. He's resting and had his nice little lunch. I'm starving a little bit, get onto it very well. But starving for goals at the moment are Urisa and Punjab, in that's getting very at the corner, trying to spoon the shot. I say the scoping angle in there. One of them just got a little hurt. It's all okay. To see in there doesn't get easy sometimes, but all's well that ends well at the moment. And let's see how they'll be just passing through the time at the moment. So that was, I believe, number 4. That was Salochni from Punjab, who got a little hurt there. But Urisa gets a penalty corner, the first penalty corner of this match, with 2 minutes and 55 seconds remaining for the quarter number 1 to finish with a blow of the Huta across his venue. Gorgeous, absolutely gorgeous venue. The blue in favor. We'd also like to thank the Sports Authority of India, the Jharkhand government, also been providing this lovely venue for the girls to display up the colors, to hone the skills and talent, and level it up in terms of how hockey is being played. And I absolutely love it. Isn't it all ready for injection for the penalty corner being signaled by umpire Nitu Kumari?
Ah, green card. Green card for me to Kumari. Oh, as he says, it's a 2 minute suspension for you. I have to get the reason exactly why, but she walks and she shows the green card. Ah, hard taskmaster, Neetu Kumari. Anyways, here we go. All whistles done. Injection has been done. Stops, direct flicks, and the ball goes like a lightning. But somewhere has felt the brunt. Kumari says, have to go back to the huddle, go back to your places, and because it's penalty corner time, which remains in there. Trying to stop in there, and he says, no, we'll have to just go through those level of the paces. This is very gentle. Let's see what happens. In that column that you want your piece to be there. Injection has been done, and a stop from the right, from the center, trying to spook the shot. Goalkeeper very much into the center, and now Neetu Kumari, the umpire, says, go back to your play. Don't have to be struggling there because I have given twice of a penalty corner. Neetu Kumari sometimes can get a little bit of a hard taskmaster. But all okay, as Urisa and Punjab are leveled at 0-0, yet to open the scoreline. Let's see what happens at the moment. Just going, yeah, getting it all moving at the moment. Less than 2 minutes remaining in quarter number one. Still moving up. Just getting it. Just impounding on the stick. The stick probably got rolled over a little bit. So okay, to get it moving, get it going. Right at the center again, pulling it through across the surface. But I believe Punjab has done well to keep it at 0-0. And the way they just crawl up there, they nose can be a little easy on in there, can be a little, sometimes can be a little lazy also in terms of foot movement of how it can go, as the ball has been split right across on the left hand side, and the ball just toggles over. Oh, Urisa, oh, right at the corner of the striking circle, and very quickly they move off. That's how the movement of the legs will be in accordance and sync with the stick and the hockey ball. Complete wide. Oh, as if they're playing in some cold territory, isn't it? That's how they've moved up and made all the feelings in some coldness there in whites. Just 30 seconds now remaining for the blow of the hooter to signal end of quarter number one. I think more displeased will be Urisa because they should have opened their account by now, and because they believe that this is something which is very tackling very hard on them. They cannot be just be lying underneath. But Urisa says, let's see if we can get an opening here in the score line with just a second remaining, milliseconds, and the hooter has been sounded as one of the players from Urisa displays her 3D skills and gives it to the umpire. So 0 for Urisa, 0 for Punjab. With the mic, I'm Mayur Barua. I'll take a small little breather. We'll come back after 2 minutes for the next set of play in the second quarter. All those action will be coming live to you on the YouTube channel, live and exclusive on Hockey India's YouTube channel. So stick by.
Start quarter number two. It is raining actually very heavily here in Gurgaon in Haryana as I'm talking from where I'm doing the commentary. But back there in Jharkhand, it's so nice, sunny. It's actually flooded here overnight rain as they've got those roads flooded, little stagnant also. That's never looks easy. Let me tell you, not bad, not good. That could be some that portion of that calling. It's like rain calling rain. There'll be some of those precedents that you let's try and call your shots. And all of a sudden, there's been so much of it written, as you can sometimes just see the brilliance of how they've been just caught sometimes little unaware of how they also try to play their hockey. Urisa, they'll be vastly depending on how Sweetie Kuzur, Deepika Benj are very good names. Have played right at the center and have got the goals to their name. Punjab doing very well at the moment. I'm sure that will be such an irritating factor for Urisa. They've got the penalty corner advantage. In fact, got it twice at one go, but couldn't convert it. So that will also be very much itching on the mind, and that keeps on replaying on your mind for a long, long time. They're very good professionals. They want to keep it moving it. Some nice stick stories. Punjab, but hockey gets it. It's a nice reverse slap from the left flank inside the striking circle. Doesn't get it in the D, in a position where it needed to be. The Stiller show gives a nice bisecting cross pass behind. Stick work. Good man-to-man marking from Punjab has not enabled Urisa to get off the hook very easily to hammer the shot. That was Rubina Bakla from the captain who was trying to hammer it away. And now trying to get a good member of the ball was Jasprit Kaur, not there in the initial playing 11. But Rashmin Kaur is rushing up those things. My goodness, the way she did it was really nice. The ball going out of bounds. And it's 3 minutes of this match being started. Is it going well? To just conjuring on to the fact that Urisa can, in the blink of an eye, start scoring. Good to see a few spectators also who have come onto the ground to witness history of this 16th edition unfolding in their eyes. They can say that we were there when the 16th edition happening. So probably 10 years, 5 years down the line, when the 26th edition will happen, the 21st edition happens, you can say we were there, we witnessed XX Players play, and we witnessed some thunderous goals. So, because Odisha is such a good powerhouse, you you can be everywhere there in the action. You know, there can be always be a piece of history coming their way. So not letting by, not missing any of the action. The ball just rolls by out of bounds. 11 minutes remaining in this contest, so which is effectively 660 seconds. I always love to call by the number of seconds when the match just finishes, and as the match just rolls by, there's and the very much opposite end of your watching. That's the bench of Punjab, where the ball has just rolled by. Um, Always admirable of those huge umbrella that they spot on. Umbrella can be in the form of goal. Nitu Kumar signals that yep, it's a goal officially. Nice teamwork, nice carry on, and a bunch of the army of Urisa girls marches ahead after scoring that goal right to the center. Let's see how they transpire. The first goal to the name. Orissa 1, Punjab 0. Whoa, what a nice spoon shot. As he saw the goalkeeper marching ahead. That was Princess Priya Eka, who spooned the goal and waiting in the wings to play that shot. Have to check who's there. After that, official score line will be coming in. But really, really good the way that this played is.
Good to know of how they have just get on to that business that ends, which matters so much. So in terms of goal position, the first goal, Archana Kuzur officially in the 20th minute. So second goal overall for Archana Kuzur, with her first goal being scored versus Andhra Pradesh. That was goal number 4 she scored, and now she's opened her account. So now the first goal has been scored by Archana Kuzur to give her a total of 2 field goals in the second quarter. Now, been really, really understandable of how she's been so wonderful with her stick work. You see, Keris is right in the corner, just putting and drifting the balls. It just goes in some lovely association. First one, which came in the second quarter. So, lovely work there for number 7. This is now rotating one and again, getting in bludgeoned onto her stick work as number 7 moves along. That is Chandelia Tania from Punjab. Can she weed it through? Can she get it? It's Rashmin Kaur the ball, reversing herself to get the first goal. It's a long corner being signaled by umpire Shefali Choker, the Andrin. Choker says, "Go and play up." It's all gone and now and done and dusted. Little less than 9 minutes remaining. Cry for a foul. That's where she started. And that's Jason Deep Core with a stick for trying to bisect Christian Cross. But Urisa very much up to the task, getting the ball going from the left, trying to make the movement little outwards. Does it wonderfully well, isn't it? Loves so much of it coming. 8.5 minutes now remaining for the match to finish. Carvalicious, I'd say, that love curves, gets sticks by, presses against it. Oh, nice movement of the foot movement going past the center line. Lovely stiff movement, and Sips makes a long aerial pass. Not aerial, actually, it's a long pass under the surface. It's not getting in going at the moment with Orissa at 1, Punjab 0. Can be just probably ruffle up the feathers and just understand, okay, this might be just one of those which we understandably need. So one more goal from here on, and then Punjab will be left thinking that they need to really come to the terms and see if they can change something in the skills, in the strategy. As Urisa has always been a very good front runner in terms of hockey, be it men's, be it women's. And to talk about that, I would say Madhya Pradesh also has been really wonderful in terms of how they have set the formula, the tonic tone, a success tonic tone, and let's see how it is just moving along. Just stops it by, grabs it, spoons it, creates an opportunity, and nicely just holding on, creating that advantage. It needs to be so much need advantage. So one for Urisa, none for Punjab. It's really good, really wonderful, really good. And let's see how it just transpires from here on. It'll be good to know that they can be in one zone where the movement cannot be too much, because it's 6 minutes remaining. They'll have to gather the courage to come back and we want not be playing 1-to-1, especially for Punjab, because on their own territory sometimes can little difficult, but the other end, how they play can be a very easy one
But when you play like versus oppositions like Urisa, you really have to be on your top of the game. Punjab might be showing a little bit of a rustiness at the moment as the ball position hasn't equally come onto their grips, onto their sticks, and which might just make it a little difficult for them to go on the business at the moment. You're watching the 16th Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026 live and exclusively on the YouTube channel of Hockey India. As Orissa tries to hammer the shot inside the striking circle, and Punjab trying to make a nice stick work. The defense corridor is like a semicircle, and the circle is formed. The ball has been weighted away. The storm which Orissa created has been weighted away. I would simply say, because they were definitely going for getting this into such an important circle into they get the charge and the much needed charge, I would say, or else it was just going out of nowhere in there. 4 minutes and 40 seconds remaining, which is a total of 300, I would say, or you say 280 seconds to speak by. This quarter number two, and this is really good, playing from the Marangomke Jaipal Singh Astroturf Hockey Stadium here in Ranchi, the capital city of Ranchi, in the state of Jharkhand. The voice that we'll be hearing, and the next match will be of Mr. Shami Malam in Hindi, who also hails from the same city here in Ranchi in Jharkhand. It's a great personality to hear to, and a wonderful human being, as I always keep saying. So, Toro gentleman has a lovely family. So, Mr. Shami Malam here, his son's name is also Arbaz Khan. The reason why I say also, because our commentary panel also features Arbaz Khan, who does in English and hails from Chennai in Tamil Nadu, and currently, along with Vikas Kumar in Hindi, is covering the 16th edition of the Sub Junior Hockey India Men's National Championship 2026 at the Rajgir Hockey Stadium in Rajgir in Bihar. 3 minutes now remaining back here, all the way from Bihar back to Ranchi. Quarter number two going on, and then it's been done some difficulty sometimes for Hockey Urisa. If and you can see they have been pushed behind the walls, so that's why also making it a little tough, difficult for Urisa to create and convert probably more than one goals at the moment, and it's just a matter of probably one more to bring the confidence back on Punjab. But what Orissa can do, if they get one more, and then they can break and make the tides to swim a little more tougher for Punjab. And there's the penalty corner being signaled, and Orissa will be getting the penalty corner. They'll be very happy with 44 seconds plus 2 minutes remaining. I did see today earlier morning on the very first match when I was doing the commentary, just when 3 seconds were remaining, a penalty corner was awarded, but then it was not converted. In fact, it was at the 10 o'clock morning match, which happened, and the match between Delhi versus Assam stops, and the referee was not where. Again, it's back to number 14. She rotates herself, makes a 360-degree angle, and came from the blade of Sweetie Kuzur. Sweetie Kuzur already has a goal, a field goal versus Andhra Pradesh, which they won 4-0 a few days before. Look at that. Sweetie Kuzur could have got one more goal and could have been a penalty corner conversion. And now that's Neetu Kumari, the umpire. All focus on her. They cried for a foul, and they have been given a penalty corner. But a huge advantage now in this game. And lovely way to sum up. And now it will be Priyanka Minch all ready for the injection for that penalty corner being given. They will keep the fingers crossed in hope that they converts this penalty corner at a much derising position. Will be stopping, will be inject, will be just making a drag flick. Drag flick is there. It's rebounds from probably the padding of the goalkeeper, as everyone just throws away their face masks. The team Punjab,
Let's see first of all lineups, and then all the matches just come up. Um, and this is not coming into a good zone at all. Let's see if they can just make it work. If more, if you build on confidence, then it becomes a tough proposition for someone like Punjab. Or else Orissa have been doing well, but they've been hoping, as I keep on saying, they've been hoping that they get us more goals here, breaching the 23-meter circle, and then gets into the striking end. Couldn't get in the ball, but still twisting and rolling the ball past the hard line, and just gets a small bit of an filament of a channel for Orissa to get the ball, but they cannot. They lose the control again. Again, it's from Sweetie Kuzur. What Sweetie Kuzur does, let the ball roll by out of bounds. And says that less than 1 minute remaining. Let us just get. We need to rehydrate. They'll get this 10 minutes to get refreshed. But more for Punjab of what they can do. They've been able to redress some of the rustiness, and they'll be happy that it's just one goal they are trailing by, just one goal that they've given for Orissa to score. So to again just read this quickly, that's into the wrong stick of Sulochani from Hockey Punjab. Let's see, Jig checks the ball out of bounds. Less than 30 seconds for the blow of the hooter, and then when we converse past on to the next half time, Sanfu, it's going out like quicksand. The remaining seconds in this quarter number 2. Good gameplay, well hold by Urisa. It's a nice diagonal pass that came onto the stick of Susma Lakra. Just a second, milliseconds, and the hooter has been blown as the game stops, and all will be going into the shadows of the dugout. We'll be back with a break after 10 minutes. Don't go far away. All those action of the next halftime will be coming live and exclusive on Hockey India. So stand and stay tuned.
Welcome back to the next half of this match. Urisa 1, Punjab 0 in the third quarter. With the mic, I'm Mayur Burwa, your host commentator. Starting with the third quarter, being played, bringing all these pictures live from the Mayan Gomke, their pulsing stadium, the Astrodome Stadium, hockey in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand. Live of the 16th Hockey India Sub Junior Women National Championship 2026, live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. I believe Punjab should be happy with the way they have coursed on and have selectively allowed just Urisa to score just one goal at the moment. So they'll be only doing a world of good if they can at least score a goal and make Urisa stand up and just notice. It's a nice scoop there on the corner. It gets into a good footing, good stranglehold. So now the sides will be changing from the left to the right. Is Punjab will be defending, and from the right to the left will be the Urisa girls will be defending. See one of those girls is getting into a nice zone, spanning up well. It'll be it's a good pass getting on to Urisa Sting. Was getting nicely as she was moving ahead. She saw the defense was getting heavy. Went across back pass. Good work, really good skills. This is trying to scoop the shot from the defense corridor of Punjab. Gets that foul entry. Only way to regress and to address certain stuff. I'm sure those 10 minutes have allowed them to look ahead. 12 and a half minutes now from here on. I'm sure they have played very well to just iron out much of what they needs to think ahead here. Those next few minutes, just getting them a very understable quarter. Understandably so, what they have been able to do so. So much of that, I'm sure, luck riding of what initial placements would be saying for the girls at the moment. But for Punjab, it's not the defense ploy that they should be employing. They should be as positive in the gameplay as possible. Nothing to take away of how Urisa has played. But they know on paper you might be thinking, okay, it's Urisa is getting very strong. But look at the way they've made that stand. Just they're not letting it anything easy. That's why it's really nice to see of how they are breaking that old brindle of joy and back onto Urisa's quandrum. Good chances that there might be raining also. I don't even know. That's what the predictions is for from vastly of the North Indian. Because that's why I say it's not a huge sunshine which is at the moment. So it might just change at a blink of an eye. It might be just changing some of the fractions there. So we really never know of how it will be just shaping up for the next time. Might be very different. So that's why there have been so many things which will be going in the minds of the girls of how to play up their hockey. They don't want to be left in a situation where they are actually depending on other teams
as happens in cricket, it's more about the net run rate. Here, it's the goals conceded and number of goals that you have scored. That will be depending on the ratio and then on the points. Sure, that is something they will be holding onto a nice little fortress for the girls, and especially for Punjab. The good leaders, good astute leaders. So they're all holding on what the captaincy will also be like to check on the progress of how the goals will be going ahead. With 9 minutes now remaining, the pressure will start slowly to build on Punjab, I believe. Which after this, because it will be just 1 quarter remaining, trying to slap the shot from the striking circle from the right, going for the second time again, well blocked, second block, fantastic work from the goalkeeper of Punjab. Not easy, any huge paddings and the accessories onto your body to get it one time, second time, reflexes has to be absolutely spot on, and she has done very, very good. This is how they need to play, this is how they're doing it. Just hearing some other sounds. This is how they'll be very happy, I believe. Don't have to take any different route. I think this is really okay. So play it up. Quarter number 3 at 8 minutes now remaining. We have to fancy the chances Punjab from somewhere. They don't want to be, as I mentioned before, they don't want to drag it till the very last moment and then be got napping of haven't done too much of the things and trying to push anything else. It can be vastly set up. Where the setups are coming. There's one goal that's been scored by Urisa at the moment. Let's see what happens from here on. Can they just get and settle on all the things that you have mentioned before? Will it be Urisa who might just be smiling all the way till the end? That's what the sharing bargains is all about. It's how long till you can hold on to fortress. This is also one factor. They need to just bring on the action. So over and over again, they can just keep on replaying on the mind of how they can get on the game. Some good little passes which have been created here. Short passes are also very important. I think that's where they have been very good. Urisa and Punjab. The only thing that they will be so very happy is the way they've got on the formations. Formations can be evenly helpful. Spool it up. Spook the shots. I think they should be doing okay after that. A little bit of a regressive play at the moment, more than offensive, I believe. And there we go. That's it's one of those. Some suspensions will be there. If you do much of the things which is not probably scheduled for you, it'll be very much important to check by. So all those players that you've mentioned, like Princess Priya Ekka, be it Kushma Kuzur, then you have Sweetie Kuzur, they're very important components of player for Urisa. The more they hold up the hands and bring on the responsibility, it will only be benefiting for the team, not only for themselves. It's a team sport after all.
Crisscrossing the angle, still trying to find an inroad to get into the goal. But Punjab has been relentless. They've been absolutely spot on. That's Ramandeep Kaur trying to get in a D. It's a lovely pass, giving it to Aram Saraswati from the stick of Ekka Princess Priya. Trying to get a nice cross angle through the defenses is Urisa, but they couldn't do it. Still 4.5 minutes remaining. Urisa 1, Punjab 0. Nicely well judged, well placed. Oram Saraswati is still there. Oh, is it an intentional push? Ah, umpire Shefali Chokker says, go back to your places. It's a push, which has been vastly disastrous. Other players immediately holding up the hand. So I see a fault in there, acknowledged by the umpire. As the acknowledgement comes, there is a penalty corner, also which comes for Punjab. This will be huge in context of how they were seeing this match to be moving. Want to be reeling too far. Can they make it now 1-1? Punjab, that's a kiss. That's an important kiss. And I think the Almighty says, do me the favor. Listen, as if you're talking to the hockey stick, isn't it? And it's obliging to your request. Stops, and a direct flick was not good enough. Oh, penalty corner stays. That says Miss Nitu Kumari. I've seen it all. Probably the Russia. It's not came in, and the ball also hit the leg portion. That's why it has been given. Number 4 is there. Slamming the shot from 4-5. The blockage from the goalkeeper has been really good. Rolling by, twisting and turning from the left to the right. Well done. Again, moving on to the center, giving a lovely pass in a good cross angle. 23-meter circle. Sticks is gone. It's going by, rolling by, revolving herself. And Urisa gets into the picture. And so it is all done and dusted. The penalty corner advantage was right to the corner. Again, building on what needs to be. And so much of the angle to speak for. Keep on application. Keep on all those minded theories. Let's just build on the attack. Just make them see what it is. At the moment, Urisa 1, Punjab 0. And it's raining very hard from where I'm doing the commentary in Gurgaon. And the match is happening there in Ranchi. So contrasting difference between the weather. I hope all the recordings is going through. It goes up to the concerned person. The third quarter, 2 minutes remaining. And Punjab will look to make an inroads right in the corner from the striking circle. Edging past, Urisa doing very well. Way to sum it up and to do it. Let's get on with the business and let's get it moving. So I'll say, and sometimes one of them will be whistling past and saying, okay, that means that we should be getting on. And look at the pace. They've generated some good pace. As they say, it's in 1.5 minutes. The penalty corner, says the umpire also. And umpire says, yep, I've seen it. I've seen it closely. Umpire Sefali Chokker says, I can signal it because I've seen an infringement happening there. It's for Urisa. Now they'll have to stick and stand
I believe it will be Ramandip Kaur. Yep, Ramandip Kaur, just in number 12 from Urisa. All will be, oh, beg your pardon. It's my bad. Priyanka Minch is looking at Punjab. Priyanka Minch, just in number 12 from Urisa, is ready for the injection. She waits for the blow of the whistle, looks at the corner, stops, slams it, and a drag flick was good. Priyanka Minch was waiting for a deflection onto the corner. Doesn't happen. Penalty corner. Urisa is gone out of the wings now, as Punjab can heave a bit of a sigh of relief. But this is a very good quarter, especially for Punjab. They've not allowed Urisa to get on top of the game. It's been a goalless quarter. Less than a minute remaining. Then fencing much of the chances here. Now corner. Penalty corner again for Urisa. They have been seriously spooning very hard. And now Priyanka Min says, "You do the huddle, you do the talking, I'll be ready for my injection." It always reminds me of Agnes Malaswamy, the captain of Mizoram in the recent Kilo in the tribal games. Talk about it later. Trying to drag the flick. First rusher was up to the task from Punjab so very quickly. But Urisa might have some other ideas. Whistle has been sounded by umpire Mr. Choker, Mr. Fali Choker. It gives that nicely to 30 seconds of a gap of a small bit of a breather for all of them to get into that small little zone to understand of how they can play up the small bit of the nitty gritties. They'll be saying the legs come on, just hold up, just pass the vibe through, just 3, 2, 1. I'm sure it will be sounded now. Yes, it is. So quarter number 3 comes to an end. So last 15 minutes will decide of what it goes from here on. This is Mayur Barwa. It's 120 seconds for us to also bring back our energy. Don't go far away. The last quarter will be coming back very soon, live and exclusive on the YouTube channel of Hockey India. So stay tuned. Quarter number 4 starts, and in full force comes Urisa. Look at that girl. I love to see her long logs, how way she is carried through the winds, and the story has not finished of penalty corners. Live action coming in. This is Mayur Barwa watching the last quarter of the second last match of the day on day number 7 of the 16 Hockey India Sub Junior
Women National Championship 2026, all the way from the Parangzong Maram ke Jaipal Singh AstroTurf Hockey Stadium here in the capital city of Ranchi in the state of Jharkhand. I have an exclusive all these pictures on the YouTube channel of Hockey India in sections. And the stopping was not good enough. Punjab is doing well. It was a goalless quarter on the first one. Then a goal came in the second quarter, goalless quarter. In the third, no goals, and now in the fourth, let's see. They have to hurry the paces, and you can definitely feel a vibrancy because both the team girls are going with the ball very quickly, and especially Punjab knows. And initially, now Orissa says, "Okay, we need a goal here because we had just one goal in the whole match, and which is like you never know if Punjab comes back with a bang, it'll make the situation very very tense and then tougher. After this match, it will be Bihar to play versus the home team Jharkhand, and with the mic will be Mr. Shamim Alam, our great distinguished commentator, who also hails from the same city here in Ranchi. Sometime will be my pleasure, my it's an absolute honor. It will be to welcome him to the Combox, Mr. Shami Malam. Forms such a lovely partnership when he comes. I'm sure so many of the followers will be waiting for this Hindi commentary to start. So many remarks that you follow, so many great suggestions, and I'm sure. And I've seen young pictures of Mr. Shami Malam doing football commentary on bicycles. Those are the days when it was, that the wide mics. Nowadays also is being used, but again, those golden days are much better. I would say, you don't have the pressure of videos and reels. Nowadays, it's so much of social media. But still, he has been able to give us some good glimpses of those photos that has made him the kind of person, the commentator he is. Back to the grind here of hockey, as Urisa also knows how to make those mm, timings very meaningful of going along with the girls in Punjab, going farther away. Might just be one goal, you never know. It might be stopping at one, never know. Oh, nice crisscross angle from the striking circle. You can feel the spring in the strides. You can feel there's an urgency. You see, there's a definite urgency of the way they're trying to go in the business with less than 12 minutes now remaining in this match. Will tell you so much of the story. It will be holding and aloft. It will be for them. That's why it makes such sometimes a remarkable progress. The way they hold up the line. That's why you say the progress will be might be just be minuscule, might be just a minuscule number, but for something which just holds up, you never know. 11 minutes now remaining. Progress can be halted. Getting onto that action very soon in the other corner. It can be a little deceptive also. Let's see what happens from here on. How much they can just put and rely heavily on. Kudos to the way they have just put on. There's an appeal. There's a certain appeal. And the way they have been just moving, this is really good. You never know of what at any fraction of the second it just starts. The ball is just trickling by towards the right corner.
Less than 10 minutes now remaining for this match to start. Urisa definitely knows they need a goal and doing everything possible, making making everything possible. Only one stone unturned. And a half. I will be happy. And somewhere you feel never know. And the mind just come with a bang saying, okay, let's make it 1-1. Let them feel the rumors and the shivers across. Then it might just make it very tough. Because every goal you can see the scoring opportunities has been continuously been made just go up and go away, and that's why one more goal from either of them will make some shock waves going into the other corner. Oh, cry for a foul play, and a penalty corner has been awarded to no other than Urisa. Not surprised. Oh my goodness, how now this quickly can result in a good adversity or in very adverse conditions. You never know. So you can clearly see what is meant for both these girls. Refer to C would be there with the injection. Number 8 goes right behind with the injection. Hoping to place it fine. Let's see what happens from here. Slaps the ball, stops, receives, and gives it towards the other center. She hammers it. Not a very hard of a hammer shot. She's still there. This time she not only hammers, she scoops the ball right into the body of the goalkeeper. So it's really nice. Goalkeeper knows they've been questioned. She's been questioned. Her decision has been questioned by Punjab. They say that it cannot be a penalty corner. A video referral now has been taken up by Punjab. Oh, let's see. Let's see what happens. I have definitely seen something coming here. It can be a very tense situation. Orissa 1, Punjab 0.
So, with a look of it, the penalty corner has stayed for Urisa to get it one more. Will be huge momentum shift in the game of what you see here. As captain just understood of what came from upstairs. The action stops. The penalty corner, I believe, has stayed. I'll be now moving over for the next segment, and I'll be welcoming Mr. Shamim Alam to the Combox. Welcome, sir. नमस्कार, स्वागत है झारखंड आप से मुखातिब थे, अंग्रेजी में आंखों देखा विवरण सुन रहे थे। तो स्थिति जो है इस वो है 1 तक नहीं कर पाई है, लेकिन वक्त जाकर समय बहुत अब कम बचा हुआ है यहाँ पर पंजाब के लिए, क्योंकि खेल चौथा क्वार्टर का चल रहा है और उड़ीसा यहाँ पर 1 गोल की लीड लिए हुए है। चलते चलते हैं, खेल की मैदान में चलते हैं। खूबसूरत स्टेडियम मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पीले रंग की जर्सी में है। यहाँ पर मैं बता दूं उड़ीसा की टीम, जबकि सफेद रंग की जर्सी में है पंजाब की टीम। पंजाब के लिए पंजाब के खिलाड़ी के पास है बॉल। इस वक्त सफेद बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। तो उड़ीसा 1 पंजाब 0। निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। बहुत ही यहाँ पर कठिन परिस्थिति है इस वक्त पंजाब के लिए। स्टैकी सर्किल के ऊपर खेल चलता हुआ पंजाब की टीम इस वक्त कोशिश कर रही है बराबरी पर आने के लिए। 4 मिनट 52 सेकंड का समय बचा हुआ है। ये परिस्थिति इस वक्त है, लेकिन कौन है अर्चना कुजूर के पास इस वक्त उड़ीसा के खिलाड़ी। अर्चना कुजूर ने एक समांतर पास बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे पंजाब के खिलाड़ी तत्पर कुछ ही तकनीकी व्यवधान आता हुआ उड़ीसा के खिलाड़ी के पास, रक्षा पंडित के खिलाड़ी के पास है बॉल। सीधा
थ्रू पास बढ़ाने की कोशिश। गेंद चली है वहां पर मध्य रेखा के पास। एक बार फिर उड़ीसा के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश, राइट विंगर को पास। राइट विंगर इस वक्त बॉल लेके निकल रही हैं, सुषमा लकड़ा बॉल लेके निकल रही हैं। साथी खिलाड़ी को बढ़ाने की कोशिश की गई थी अर्चना कुजूर के पास, लेकिन गेंद चली इस वक्त पंजाब के खिलाड़ी के पास। गेंद चली आई है जसदीप कौर के पास बॉल। जसदीप कौर से गेंद निकली और सफलता मिली है फिर उड़ीसा के लेफ्ट विंगर ने बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही है स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर। उड़ीसा की टीम पहुंचती हुई यहाँ पर 3 मिनट तो इस वक्त परिस्थिति जो है वो पश्चिम नहीं है और यहाँ उड़ीसा को एक पेनाल्टी कॉर्नर मिलता हुआ। इंजेक्शन, लंबा हिट और गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। ये यहाँ पर दूसरा गोल करती हुई उड़ीसा की टीम। वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन ऑफ पेनाल्टी। देखिए किस तरह से इंजेक्ट किया गया, रोड को रोका गया और गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। और ये देखिए कितना खूबसूरत गोल बनाया गया। तो इस तरह से अब उड़ीसा 2 और पंजाब 0। लेकिन इस समय वक्त का तकाजा है कि अब यहाँ उड़ीसा की टीम के लिए जीत अब बिल्कुल नजदीक, मंजिल नजदीक आ रही है, नजर आ रही है। तो इस तरह से अब उड़ीसा 2 और पंजाब 0। लेकिन इस समय किरण एक्का वक्त का तकाजा है कि अब यहाँ पर एक बार फिर उड़ीसा के खिलाड़ी बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेफ्ट फ्रंट से। 2 मिनट 30 सेकंड का समय बचा हुआ है। लंबा हिट और गेंद गई बाहर। समांतर पास यहाँ पर किरण एक्का के लिए। किरण एक्का ने एक डायगोनल पास बढ़ा दिया सुषमा लकड़ा के लिए। सुषमा लकड़ा, लंबा हिट यहाँ पर सुषमा लकड़ा ने लगाया है यहाँ पर किरण कुजूर के लिए। किरण कुजूर ने बॉल को बढ़ा दिया है। प्रियंका मिंज बहुत अच्छा तालमेल के साथ कहाँ तक चल जाए बाबा, क्या हो रहा है। तो स्थिति यहाँ पर 2-0, खेल लगभग 1 मिनट 28 सेकंड का बचा हुआ है। और इस परिस्थिति यहाँ पर जो बतला रही है वो बतला रही है कि अब उड़ीसा की जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही है यहाँ पर। और यहाँ पर 2-0, खेल लगभग 1 मिनट 28 सेकंड का बचा हुआ है। और इस परिस्थिति यहाँ पर जो बतला रही है वो बतला रही है कि अब गेंद गई बाहर इस वक्त गोल लाइन का। और यहाँ 1 मिनट का समय बाकी है। अब इस बीच इस वक्त यहाँ पर एक पेनाल्टी कॉर्नर शायद अर्जित कर लिया है यहाँ पर पंजाब की टीम ने। कई बार इस वक्त गोल लाइन का और यहाँ 1 मिनट का समय बाकी है। अब पंजाब के लिए एक मौका। एक पेनाल्टी कॉर्नर शायद अर्जित कर लिया है यहाँ। इंजेक्शन यहाँ पर, लेकिन अच्छा बचाव देख सकते हैं। पंजाब के खिलाड़ी के पास है बॉल।
लेकिन निकलने की कोशिश थी। पंजाब की रश्मिन कौर लगी हुई थी वहां पर, लंबी कद की खिलाड़ी हैं, जैसे नंबर 5 आप देख रहे थे। और यहाँ पर अब एक बार फिर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा है पंजाब के लिए। अवसर इस वक्त मिल रहा है पंजाब को। देख रहे थे और यहाँ पर अब पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा है पंजाब के लिए। नीतू कुमारी हैं इस वक्त अंपायर। उन्होंने लिया है, मदद मांगी है इस वक्त वीडियो अंपायर से नीतू कुमारी। नीतू कुमारी मैं बता दूं ये झारखंड से आती हैं, बहुत तेज तर्रार अंपायर हैं। कुमारी हैं इस वक्त अंपायर। और यहाँ पर अंततः पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड किया गया पंजाब के लिए। पंजाब के लिए एक मौका है यहाँ पर आखिरी समय में, मात्र 44 सेकंड का समय बचा हुआ है। इंजेक्शन बॉल को रोका गया है यहाँ पर रश्मिन कौर, लेकिन ये मौका हाथ से निकला। गया है यहाँ पर और एक और पेनल्टी कॉर्नर दे दिया गया है इस बार उड़ीसा के विरुद्ध पंजाब को। इंजेक्शन की तैयारी पंजाब की तरफ से। 16वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप एक अच्छा मौका है यहाँ पर। और अब यह खतरा टला यहाँ पर उड़ीसा के ऊपर। उड़ीसा 2 पंजाब 0। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का मुकाबले का 7वां दिन और 7वें दिन का यहाँ पर 5वां मुकाबला चल रहा है उड़ीसा और पंजाब के बीच। इससे पहले 4 मुकाबले हो चुके हैं। आज का आखिरी मुकाबला जो शाम का सत्र का खेला जाएगा वो मेजबान झारखंड की टीम होगी और झारखंड के सामने होगी बिहार की टीम। आखिरी मुकाबला झारखंड और बिहार के बीच और यहाँ पर मुकाबला समाप्त हुआ। चौथा क्वार्टर के यहाँ पर इस वक्त हूटर बजता हुआ स्थिति रही। यहाँ उड़ीसा 2 पंजाब 0। पंजाब की टीम कोई गोल नहीं कर पाई। हम मिलेंगे आज के आखिरी मुकाबले में जब मेजबान झारखंड के सामने होगी पड़ोसी राज्य बिहार की टीम। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।
नमस्कार, झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा मैं शमी आलम आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए कि आज शाम के सत्र का आखिरी मुकाबला यहाँ पर शुरू होने के लिए जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं दो अंपायर सोनाली सिंह और अंजलि राठौर तैयार और यहाँ पर पुष्पा के साथ खेल की शुरुआत किया है झारखंड की टीम ने। झारखंड की टीम है पीली रंग की जर्सी में, जबकि हॉकी एसोसिएशन बिहार की टीम है हरी रंग की जर्सी में, ग्रीन रंग की जर्सी में। कल झारखंड की टीम खेल रही थी लाल रंग की जर्सी में। तो मैं बता दूं सोनाली सिंह है ये उत्तर प्रदेश से आती हैं और जबकि अंजलि राठौर है ये मध्य प्रदेश से आती हैं। दो अंपायर यहाँ पर इस वक्त मैच को संचालित करते हुए। मैं आपको बता दूं आज का खेल का जो यहाँ पर स्वरूप होगा, झारखंड की तरफ से खेल रहे हैं गोलकीपर से कुमारी खिली खेल रही हैं। जैसे नंबर 2 में निपुणता कुल्लू, 3 में है रोजेजिना कुल्लू, 4 में पुष्पा मांझी, 5 में सुरती कुमारी, 6 में स्वीटी आइन, 7 में अलमा भेंगड़ा, 8 में शानिया टिर्की और 9 में संदीपा कुमारी, 10 में शिवानी करकेटा, 11 में सुस्मिता गुड़िया, 12 में है मरियम भेंगड़ा, 13 में प्रीति बिलून, 14 में सुगुन सांगा, 15 में अंकिता लकड़ा जो अपनी टीम के कप्तान भी हैं और 16 में नीलम टॉपनो, 17 में रिचा मिंज। इनके कोच हैं विकास पंत, जबकि टीम मैनेजर हैं बालो होरो। और यहाँ पर पहली गोल करती हुई इस वक्त झारखंड की टीम। यहाँ पर देखिए खेल के पहले यहाँ पर दूसरा ही मिनट में गोल हो गया। मैं आपको खिलाड़ियों का परिचय बता रहा था लेकिन उससे पहले ये लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा है क्या? हाँ, इस लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा। तो दूसरी तरफ से जो है मैं बता दूं ये देखिए किस तरह से गोल हुआ था। लॉन्ग कॉर्नर से हिटिंग ली गई थी, उसके बाद एक सुंदर गोल झारखंड के टीम के द्वारा। अब झारखंड की टीम हो गई 1 और बिहार 0। खेल के दूसरे मिनट में ही झारखंड ने गोल डाल दिया। तो ये था झारखंड का खिलाड़ियों का स्वरूप। सोनाली सिंह है ये आती है उत्तर प्रदेश से, जबकि दूसरी तरफ अंपायर है अंजलि राठौर, ये मध्य प्रदेश से आती है। हॉकी बिहार का जहां तक सवाल है मैं बता दूं हॉकी बिहार की तरफ से आज ये गोलकीपर में खेल रही है सुनंदा कुमारी और जैसी नंबर 3 में सीता कुमारी, 4 में रागिनी कुमारी, 5 में रितिका सिंह, 6 में मालती हांसदा, 7 में शिवानी कुमारी, 8 में समीक्षा कुमारी, 9 में कृतिका कुमारी, 10 में रूपम कुमारी, 11 में पिंकू कुमारी, 12 में स्वीटी राय, 13 में मनीषा कुमारी, 14 में रीतम कुमारी, 15 में सिद्धि विनायक, 16 में सोनम यादव, 17 में अंजलि कुमारी और 18 में है श्वेता कुमारी। इनके टीम के जो ये स्वरूप है इन खिलाड़ियों का। मैं बता दूं अंकिता लकड़ा जो है वो टीम के कप्तान है। जहां तक सवाल है झारखंड का, झारखंड ने अपने पहले मुकाबले में महाराष्ट्र को 6-0 से कल पराजित किया था। कल जो आखिरी मुकाबला कल खेला गया था इस मैदान के अंदर। उसके बाद मैं बता दूं बिहार और महाराष्ट्र का जो मुकाबला हुआ था उसमें महाराष्ट्र ने बिहार को 3-0 से पराजित किया था। दोनों टीमें लीग का आखिरी मुकाबला खेल रही है, झारखंड और बिहार। यानी झारखंड भी एक टीम मुकाबला को जीती है और महाराष्ट्र भी एक मुकाबला को जीती है। बिहार कोई भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। झारखंड का तरफ से अभी तक 6 गोल हुआ है, विरुद्ध में कोई भी गोल नहीं हुआ। महाराष्ट्र की तरफ से 3 गोल हुआ, विरुद्ध में कोई गोल नहीं हुआ। बिहार की बात अगर हम करें तो बिहार की तरफ से अभी तक कोई भी गोल नहीं हुआ। बिहार अपना ये दूसरा मुकाबला खेल रही है। तो बिहार अपना पहला मुकाबला हार चुकी महाराष्ट्र से। झारखंड ने अपना पहला मुकाबला जीता था महाराष्ट्र से। तो इस तरह से बिहार का अंक है 0, महाराष्ट्र का 3 और झारखंड का 3। जबरदस्त यहाँ पर पहले ही खेल का क्वार्टर में यहाँ पर गोल कर दिया गया और यहाँ पर झारखंड ने एक आसान गोल किया बिहार के विरुद्ध। स्थिति इस वक्त है यहाँ पर 0-1। तो
एक तरफ से है सोनाली सिंह और दूसरी तरफ से है अंजलि राठौर। एक है यूपी की अंपायर, एक है एमपी की अंपायर। एक बार फिर झारखंड का प्रवेश, सर्किल के अंदर प्रवेश करती हुई झारखंड की टीम। कल झारखंड ने एक बहुत ही बेहतरीन अच्छे मार्जिन से पराजित किया, जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र को 6-0 से। तो इस तरह से झारखंड के खिलाड़ियों का आत्मबल काफी ऊंचा है और यहाँ पे एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई झारखंड की टीम। देखते हैं इस पेनाल्टी कॉर्नर से कितना फायदा उठा पाती है। मैं बता दूं कल का जो ब्यौरा है खेल के, सुष्मिता गुड़िया ने 14 मिनट में गोल किया, फिर संदीपा कुमारी ने झारखंड की तरफ से 22वां मिनट में गोल किया, 27वें मिनट में श्रुति कुमारी ने, 36वां मिनट में पुष्पा मांझी ने और 40 मिनट में साइया किया, प्रीति बिरुंग 52 मिनट में। यहाँ पे इंजेक्शन और ये अच्छा बचा, लेकिन स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर एक बार फिर यहाँ गेंद, लेकिन अब यहाँ पर निशाना गलत साधा झारखंड के खिलाड़ी ने, अन्यथा ये दूसरा गोल होता। तो परिस्थिति इस वक्त जो चल रही है वो चल रही है यहाँ पर 0-1 की परिस्थिति चल रही है। तो इस वक्त पहले क्वार्टर का खेल चलता हुआ, खेल 9 मिनट 30 सेकेंड यानी 9.5 मिनट का खेल बाकी है पहले क्वार्टर का, और झारखंड ने एक गोल की बढ़त प्राप्त कर लिया है। चलते हैं खेल के मैदान में, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आपको लिए चलता हूं। झारखंड इस वक्त 1 गोल से आगे चल रही है। झारखंड के बॉल है, स्वीटी आइन के पास है बॉल। स्वीटी आइन ने बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर है बिहार के खिलाड़ी के पास बॉल, लेकिन गेंद चली है झारखंड के खिलाड़ी के पास बॉल, और यहाँ पर ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स की दाईं तरफ है झारखंड पीली रंग की जर्सी में, जबकि बाईं तरफ हरी रंग की जर्सी में, ग्रीन रंग की जर्सी में नजर आ रही है बिहार की टीम। बिहार को यहाँ पर खाता खोलना है, झारखंड ने अपना खाता खोल दिया है। 1 गोल की इस वक्त बढ़त है झारखंड के पास। बिहार के खिलाड़ी बॉल के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश। कल का परसों का गम भुलाना चाहेगी बिहार की टीम, जो हार गई थी बिहार की टीम, महाराष्ट्र से पराजित हो गई थी परसों। 3 गोल से महाराष्ट्र ने पराजित किया था बिहार को। राइट फ्लैंक से अटैक बनता हुआ झारखंड का, देखिए किस तरह से तेज गति से बॉल लेकर आगे बढ़ रही है झारखंड की खिलाड़ी, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहां बिहार के खिलाड़ी का। झारखंड मैं बता दूं एक ऐसा स्टेट जो बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, यानी 25 साल का सफर झारखंड ने तय कर लिया है। 26वां साल में 15 नवंबर 26वां साल में झारखंड की टीम प्रवेश कर जाएगी, सॉरी झारखंड राज्य प्रवेश कर जाएगी। 25 साल हो गए हुए हैं झारखंड को अलग होने में बिहार से। इस साल 15 नवंबर को 26वां सलाहग्रह होगी झारखंड के लिए। झारखंड जो बहुत ही एक प्राकृतिक छटा से निराली है, भरी हुई टीम है, स्टेट राज्य। यहाँ के आबो हवा, यहाँ की जलप्रपात, यहाँ की नदियां अपने आप में एक अलग दास्तां बयां करती है। यहाँ का पर्यटन स्थल दर्शकों को आकर्षित करता है। यहाँ के घंघोर जंगल, सपाट मैदान, उबड़ खाबड़ धरती, पहाड़ों का श्रृंखला, नदियों का जलप्रपात का शांत रूप से बहना एक अलग दास्तां बयां करती है। यहाँ पर यहाँ के सीधे साधे लोग जब बीच जंगल में बांसुरी की आवाज आती है तो एक अलग ही मनोहर न सिर्फ दृश्य पैदा होता है बल्कि एक अलग समा बनता है। लंबा हिट यहाँ पर गेंद गई बाहर। झारखंड खनिज संपदा से भरपूर राज्य है,
यहाँ पर कोयला, लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट और कई अन्य खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलती है झारखंड में। झारखंड की एक अलग पहचान है पूरी भारतवर्ष में। लंबाहिट यहाँ पर हॉकी का जहाँ तक सवाल है, मैं बता दूं झारखंड का एक हॉकी की दुनिया में भी एक अलग विशेष स्थान है। 5 पुरुष ओलंपियन हो चुके हैं झारखंड की तरफ से। जयपाल सिंह मुंडा और मैं बता दूं माइकल किंडो, सिल्वानुस डुंगनुंग, मनोहर टोपनो, अजीत लकड़ा, ये 5 ओलंपियन हुए हैं जो वक्त समय के कालांतर में खेला इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। 2 महिला ओलंपियन हो चुकी है यहाँ पर, निकी प्रधान और सलीमा टेटे। इस वक्त सलीमा टेटे के हाथों में है भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान। तो एक अलग पहचान है। 3-4 लड़कियां अभी भी भारतीय हॉकी टीम की तरफ से खेलती है। ट्यूटी डुलुंग, संगीता कुमारी, निकी प्रधान, सलीमा टेटे, रेशमा सोरेंग। तो हर वक्त हर समय झारखंड ने एक बेहतरीन भूमिका अदा की है। जहां पर पुरुष हॉकी टीम का सवाल है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, और महिला हॉकी टीम का सवाल है। इस बीच यहाँ पर बिहार के खिलाड़ी अलग लेफ्ट हैंड से बॉल लेकर निकलने की कोशिश कर रही थी। इंक्रीमेंट फ्री मिलता हुआ यहाँ पर झारखंड को फ्री मिलता हुआ अपनी क्षेत्र से, और इस वक्त तैयार हो रही हैं पर सुगन संगा ने बॉल को समांतर पास बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। लंबा हिट यहाँ पर अलग बहुत तेज हिट लगाने की कोशिश, गेंद गई बाहर। 4 मिनट का समय बचा हुआ है पहला क्वार्टर का। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जहां कहा जाता है कि चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत समझा जाता है। हिट मिलता हुआ 16 गति इस बात में बिहार के लिए। बिहार यहाँ पर पहला क्वार्टर का समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है, लेकिन इतनी समय तक रोक के रखा है बिहार की टीम ने। एक अच्छा मौका है यहाँ पर, डिफ्लेक्शन की तैयारी थी, झारखंड को रोक के रखा है। तो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहले क्वार्टर का समय हुआ है, हो रहा है खत्म। लेकिन जबकि महाराष्ट्र को झारखंड ने कल बहुत ही बुरी तरह से पराजित कर दिया था। टीमें 14 मिनट से जो खेल कि 14 मिनट से गोल हुआ करना शुरू किया था झारखंड के खिलाड़ियों ने, निरंतर जारी रहा। 14वां मिनट में गोल हुआ, 22वां मिनट में, 27वां मिनट में, 36 मिनट में, 40 मिनट में और 52 मिनट में। तो इस तरह से हर क्वार्टर में गोल होता गया। आखिरी क्वार्टर तक झारखंड की टीम हावी रही महाराष्ट्र के ऊपर। सुमन सांगा के पास है बॉल, अच्छा पास, एक बार फिर बॉल लेके निकलने की कोशिश। यहाँ पर अच्छा पास लेफ्ट विंगर को लिए, लेफ्ट विंगर बॉल लेके निकलते हुए सर्किल एंट्री करते हुए झारखंड के खिलाड़ी। अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश। तो इस वक्त बार पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा है झारखंड के लिए। सुनसान जंगल में जब कोई व्यक्ति बांसुरी की तान छेड़ता है तो एक अलग अलग क्षमा बन जाता है। ये झारखंड की एक अलग पहचान है। जैसे कि इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया, अच्छा मौका है यहाँ पर झारखंड के लिए स्कोरिंग के ग्राफ बढ़ाने का, लेकिन अभी तक एक और मौका है झारखंड के लिए। और ये गेंद गई बाहर। 16 यहाँ पर लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग के सारा स्पीच, यहाँ पर एक बिहार के खिलाड़ी गिर गई है, सर्किल के अंदर एक बिहार की खिलाड़ी गिरी हुई है।
सोनाली सिंह है एक तरफ और दूसरी तरफ से हैं अंजलि राठौर। एक है यूपी के खिलाड़ी, ये यूपी का अंपायर, और दूसरा है एमपी का, मध्य प्रदेश का अंपायर। एक खिलाड़ी इस वक्त गिरी हुई है बिहार की अंजलि कुमारी, जैसे नंबर 17, कुछ लंगड़ा के चल रही है, हल्की हल्की चोट आई है उन्हें। अंजलि कुमारी बाएं पैर में कुछ लगती है चोट आई है, फर्स्ट एड उनको अटेंशन दिया जा रहा है। लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा है झारखंड के लिए। लंबा हिट यहाँ पर सुमन सांगा ने लगाई, बहुत अच्छे इंटरसेप्ट। लगभग 2 मिनट का समय बाकी है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप मुकाबले का है 7वां दिन। 7वें का दिन का अंतिम खेल हो रहा है, छठा खेल हो रहा है इस वक्त। और इस वक्त झारखंड की टीम यहाँ पर 1 गोल से आगे चल रही है। बहुत ही जबरदस्त हॉकी, कल जैसा हॉकी हुआ था, झारखंड ने खेला था महाराष्ट्र के विरुद्ध। बहुत ही धुआंधार हॉकी खेल का प्रदर्शन हुआ था। लेकिन आज देखिए यहाँ पर क्या होती है स्थिति। फिलहाल 1 गोल से आगे चल रही है इस वक्त झारखंड की टीम। और मैं बता दूं, संदीपा कुमारी जो है झारखंड की, इन्होंने खेल के दूसरा मिनट में ही गोल कर दिया। मात्र जो 1 गोल हुआ है, पहली गोल ये संदीपा कुमारी ने किया था खेल के दूसरा ही मिनट में। कल भी संदीपा कुमारी ने 22वें मिनट में गोल डाला था झारखंड के लिए। तो स्थिति इस वक्त है यहाँ पर 1-0। क्वार्टर 1 का समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है, मात्र 40 सेकंड का समय बचा हुआ है। तो इस तरह से 1-0 की बढ़त इस वक्त झारखंड के पास है। लेकिन शुरुआती झटका देने के बाद झारखंड की लड़कियों का इस वक्त स्टिक खामोश नजर आ रहा है। एक अच्छा मौका है यहाँ पर, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी बिहार के खिलाड़ियों का भी, बिल्कुल गार्ड करके रखे हैं। मैन टू मैन जो झारखंड का ऑफेंस के खिलाड़ी हैं, आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी हैं, उनको रोक के रखा है। कड़ी पेट्रोलिंग की जा रही है यहाँ पर बिहार के खिलाड़ियों के द्वारा। झारखंड के आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ियों को के ऊपर पैनी निगाह रखे हुए हैं। यही वजह है कि अभी तक पहला क्वार्टर का समय बिल्कुल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मात्र 1 गोल हुआ है झारखंड। तो खेल के 14वां मिनट में, 22वां मिनट में गोल हो गया था। इंजेक्शन की तैयारी झारखंड की तरफ से, पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया है, बढ़ा दिया गया साथी करारी के लिए। लेकिन आज बिहार की खिलाड़ी भी काफी अच्छा खेल रही है, माननी पड़ेगी। एक मजबूत की झारखंड को, जिसने कल महाराष्ट्र को 6-0 से पराजित कर दिया था, आज बिल्कुल रोक के रखा है। झारखंड की आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी है, उनके ऊपर कड़ी पेट्रोलिंग की जा रही है, मैन टू मैन मार्कर आउट करके रखा है। और यहाँ पर पहला क्वार्टर का हुटर बजता हुआ, पहले क्वार्टर की समाप्ति तक झारखंड 1, हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार 0। हम मिलेंगे दूसरे क्वार्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।
नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। और मैं शमी वालम, चलिए एक बार फिर ले चलता हूँ आपको खेल की दुनिया में, हॉकी की दुनिया में ले चलता हूँ। और चलते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जो झारखंड का दिल मोराबादी के पास स्थित है। और इस स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का रूप धारण चुका है, यहाँ पर मैं बता दूं कुछ वर्ष पहले यहाँ पर एशिया कप हॉकी का भी आयोजन हुआ था, महिला का। और महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के भी यहाँ पर कुछ मैच खेले गए थे। 2 बार यहाँ पर एचआईएल का भी मुकाबला हो चुका है। इस वर्ष तो एचआईएल का महिला हॉकी टीम का पूरी मुकाबला यहीं पर खेला गया था। पुरुष एचआईएल का भी मुकाबला कुछ इस ग्राउंड पे, इस स्टेडियम के ऊपर खेले गए थे। तो दुनिया के धुरंधर धुरंधर खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपने जलवा बिखेरा है, अपनी कलात्मक हॉकी से दर्शकों का दिल जीता है। चलिए चलते हैं अब खेल के मैदान में, मैं आपको लिए चलता हूँ खूबसूरत स्टेडियम। चलते हैं मोराबादी गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहाँ पर दूसरा क्वार्टर का मुकाबला शुरू हो गया है। एक तरफ से है मेजबान झारखंड की टीम और दूसरी तरफ से है यहाँ पर बिहार की टीम। और आपका स्वागत है हॉकी इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और हमारी एक्शन टीम जो है, लाइव एक्शन जो रांची से दिखलाया जा रहा है, ये है जैलम स्पोर्ट्स टोटल स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर। आपको बेहतरीन कवरेज हमारी प्रोडक्शन टीम के हेड उदय कौशिक के द्वारा, उनके साथ कैमरामैन बिल्कुल तत्पर हैं। और हमारी प्रोडक्शन टीम की कोशिश रहती है कि बेहतरीन तरीके से पूरी यहाँ पर मुकाबले को कवर करके आप तक पहुंचाया जा सके। और हमारी कमेटी पैनल की टीम, मैं शमीम आलम खुद, मयूर बरुआ, की हमारी कोशिश रहती है कि आपको तक मैच के मुकाबले में यहाँ स्टेडियम के अंदर घटने वाले एक घटनाक्रम का हाल आप तक पहुंचाया जा सके। और इस बीच यहाँ पर एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई झारखंड की टीम दूसरा क्वार्टर का तीसरा मिनट में, यानी अगर कुल समय की बात करें तो खेल के 18वां मिनट में यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई यहाँ पर झारखंड की टीम, कल झारखंड की टीम खेल रही थी लाल रंग की परिधान में जर्सी में, आज उन्होंने अपने जर्सी का रंग बदला है, पीली रंग की जर्सी में नजर आ रही है झारखंड सब जूनियर महिला टीम। लंबा हिट, ड्रैग, अच्छा मौका है यहाँ पर, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा बचाव, गजब का बचाव किया बिहार के गोलकीपर ने। आनंदी कुमारी, नंदा कुमारी कप्तान है। ये दो अंपायर, दो जो यहाँ पर गोलकीपर हैं, बहुत अच्छा बचाव आज कर रही है। खास करके मैं बता दूं, जो बिहार की गोलकीपर है, ये बहुत अच्छा बचाव आज अभी तक इन्होंने किया है। सुनंदा कुमारी इस वक्त गोलकीपर के रूप में खेल रही हैं, जो कप्तान भी बिहार की हैं। तो इस तरह से आज यहाँ पर सुनंदा कुमारी ने बहुत बढ़िया बचाव किया अपनी टीम के लिए, निश्चित गोल को बचाया। हालांकि यहाँ पर बिहार झारखंड की टीम पूरी आक्रमण के ऊपर उतारू है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर सुनंदा कुमारी की। तो स्थिति इस वक्त है 1-0। एक मजबूत टीम झारखंड को रोक के रखा है यहाँ पर बिहार के खिलाड़ियों ने। यहाँ पर बॉल इस वक्त झारखंड के खिलाड़ी के पास, बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सर्किल के अंदर बॉल को भेजने की कोशिश की गई, लेकिन इस क्रम में एक खिलाड़ी फिर गिर गई यहाँ पर बिहार का। झारखंड के खिलाड़ी के पास बॉल है। कल जैसा झारखंड की टीम ने धुआंधार हॉकी खेली थी, आज वैसी जो है टीम नहीं खेल रही है झारखंड की टीम। दूसरी तरफ से ये जो बिहार की लड़कियां हैं, इन्होंने काफी हद तक इस बढ़ते हुए आक्रमण को विफल किया है, झारखंड के आक्रमण को।
फिर मिलता हुआ झारखंड। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। यानी 15 नवंबर जब इस वर्ष का आएगा तो झारखंड अपनी 26वां सालगिरह मनाएगी, झारखंड स्टेट। झारखंड एक बहुत ही खनिज संपदा से भरपूर प्रदेश है। यहाँ पर कोयला की अद्भुत भंडार है। खास करके ये नदी बहती है यहाँ पर, ये दामोदर नदी, उसके तट के पर कोयला की सीम, काफी कोयला की सीम है। नॉर्थ कर्णपुरा एरिया, चतरा जिला, उसके बाद आप चले जाएं धनबाद जिला, रामगढ़, इन सभी जिलों के जो गंगा नदी या दामोदर नदी बहती है, इनके तट पे लगे हुए हैं ये कोयला सीम, जहां पर अनेक कोयला के खदान हैं। उसके बाद यहाँ अबरक, बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा, बहुत सारे खनिज मिलते हैं झारखंड में। खास करके झारखंड का एक जिला है सिंहभूम, वहां पर किसी भी आप खनिज का नाम ले लीजिए, आपको सिंहभूम में वो खनिज मिल जाएगा। तो स्थिति यहाँ पर है। हालांकि अभी सिंहभूम को उत्तरी पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में बांट दिया गया है, लेकिन सिंहभूम में काफी खनिज पाए जाते हैं। एक बहुत ही खनिज संपदा का कुछ भंडार है सिंहभूम के अंदर। जबकि झारखंड की गिरिडीह और कोडरमा में अबरक के कई खदान मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में। खासकर कोडरमा में अबरक के खदान थे, और अभी कुछ इन्हें गुने खदान मिलते हैं वहां पर, जहां से अबरक को निकाला जाता है। कोयला की खदान इस वक्त पूरी झारखंड में भरी हुई है, अकुत भंडार है कोयला का झारखंड में। इस बीच यहाँ पर बॉल लेके निकलने की कोशिश नीलम टॉपनो कर रही थी। यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी बॉल को भेज दिया गया स्वीटी आइन के लिए, और ये स्वीटी आइन बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी है। इन्होंने लंबा हिट किया है, गेंद चलाई है बिहार के खिलाड़ी के पास। गेंद एक बार फिर संभाल लिया है पुष्पा मांझी, लेकिन गलत पास दे बैठी। गेंद चली गई बिहार के खिलाड़ी के पास। खेल 8 मिनट का चला गया है, दूसरा क्वार्टर का भी। फर्दर यहाँ पर झारखंड की टीम कोई गोल नहीं कर पाई। इसका मतलब साफ हुआ कि कल जो खेला यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम ने, आज उससे बेहतर खेल रही है यहाँ पर बिहार की टीम। क्योंकि महाराष्ट्र ने हालांकि बिहार को पराजित कर दिया था 3 गोल से, लेकिन आज अपेक्षाकृत महाराष्ट्र से बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रही है बिहार की टीम। क्योंकि बिहार की टीम ना सिर्फ झारखंड के आक्रमण को रोका है, बल्कि बढ़ चढ़ के यहाँ पर आगे बढ़ने की भी कोशिश की। यहाँ पर झारखंड के स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर भी पहुंचने की कभी कभी कोशिश की जाती है बिहार के खिलाड़ियों के द्वारा। इसका मतलब उनका जो 2 मुकाबले को हार चुकी है, जो 1 मुकाबले को हार चुकी है, उससे उन्होंने सबक प्राप्त किया और अब यहाँ पर बिल्कुल मैदान के अंदर डटी हुई है। ये बिहार की टीम हार गई थी महाराष्ट्र के 0 के मुकाबले 3 गोलों से। तो स्थिति इस वक्त है यहाँ पर 1-0 झारखंड की तरफ से। जो एकमात्र गोल हुआ वो खेल के दूसरा मिनट में संदीपा कुमारी ने किया था, लेकिन उसके बाद झारखंड के खिलाड़ियों का बिल्कुल स्टिक खामोश नजर आ रहा है। खेल 5 मिनट पे 54 सेकंड का बचा हुआ है यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का। लंबा हिट यहाँ पर गेंद चलाई, इस वक्त बिहार के खिलाड़ी के पास गेंद उनसे छीन गई, सफलता मिली पर झारखंड के खिलाड़ी को। यहाँ पर बॉल को अंकिता लकड़ा ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए, जो कप्तान है अंकिता लकड़ा। राइट फ्लैंक से एक बार अटैक बनता हुआ काफी देर के बाद यहाँ पर झारखंड का आक्रमण
बनता हुआ स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच गई झारखंड की टीम। इस वक्त खिलाड़ी तलाश रहे हैं, मौके को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर ये दूसरा गोल होता हुआ, दूसरा क्वार्टर के लगभग 10वां मिनट में यहाँ पर गोल हुआ। अगर हम बात करें टोटल समय की तो खेल के 25वां मिनट में ये दूसरा गोल हुआ। देखिए किस तरह से झारखंड के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ी, जगह बनाया और राइट फ्लैग से ये बहुत तेज हिट और गोलकीपर के दाएं तरफ निकली गेंद। तो इस तरह से यहाँ पर झारखंड की तरफ से दूसरा गोल हुआ है। तो अब है झारखंड 2 और बिहार 0। हालांकि स्कोरिंग का ग्राफ को अभी बदला नहीं गया है, लेकिन 2 गोल हो चुका है झारखंड की तरफ से। अब स्कोरिंग का ग्राफ को बदला गया, तो झारखंड अब है 2, बिहार 0। बहुत देर के बाद झारखंड की टीम लय में आती दिखाई दिया। चार मिनट 48 सेकंड का समय मात्र बचा हुआ है दूसरा क्वार्टर में। बिहार के खिलाड़ी के पास है बॉल, यहाँ पर लेके निकलने की कोशिश, लेकिन बहुत अच्छा इंटरसेप्ट वहां पे झारखंड के खिलाड़ी का। इंप्रूवमेंट फ्री हिट मिलता हुआ झारखंड को। अच्छा पास लेफ्ट फ्लैंक से अब बॉल लेके निकलते हुए लेफ्ट विंगर को बॉल को बढ़ा दिया गया है। इस बार सर्किल एंट्री करती हुई झारखंड की टीम के खिलाड़ी इस वक्त यहाँ पर टॉम हॉक यहाँ पर गेंद गई इस वक्त गोल लाइन के बाहर। तो स्थिति 0-2। यहां से मैं बता दूं, ये लीग का मुकाबला जो है खत्म हो जाएगा और इसके बाद कल है विश्राम का दिन। 9 तारीख को क्वार्टर फाइनल के 4 मुकाबले खेले जाएंगे। और गेंद एक बार फिर गोल पोस्ट के अंदर, बेहतरीन प्लेसिंग, तीसरा गोल होता हुआ झारखंड की तरफ से। अब यहाँ पर झारखंड ने अपने आक्रमण को तेज कर दिया है। दूसरा क्वार्टर में 2 गोल हो गया। खेल के 25वां मिनट और यहाँ पर तेरहवां मिनट की हम बात करें तो कुल जो है यहाँ पर यहाँ 28वां मिनट, तो 2 गोल हुआ खेल के 25वां मिनट में और खेल के 28वां मिनट। टोटल हो गया अब 3 गोल। यहाँ से अब झारखंड की टीम अपनी आक्रमण को तेज करती हुई, पहला गोल हुआ था मैं बता दूं झारखंड की तरफ से यहाँ पर दूसरा मिनट में, लेकिन अब यहाँ पर खेल के 25वां मिनट में और खेल के 28वां मिनट में 2 गोल हो गया है। यहाँ से झारखंड की इस वक्त चिंताएं बिहार की अब इस वक्त बढ़ती हुई। लंबा हिट यहाँ पर तो 3-0 की इस वक्त परिस्थिति बन गई है। 3-0 की इस वक्त स्थिति हो गई है। इस वहां पर झारखंड के लिए यहां अब मुश्किलें कुछ आसान नजर आ रही है, क्योंकि झारखंड ने इसे दूसरे क्वार्टर के अभी समाप्ति के पहले 3 गोल स्कोर कर दिया है। बता दूं समय के क्रांत में 217 मिनट में गोल हुआ था। सदीपा कुमारी ने खेल के इस वक्त 25वां मिनट में गोल दिया दागा है। मरियम भेंगड़ा ने ये खेल का 25वां मिनट और फिर खेल का 27वां मिनट में गोल दागा है रिचा मिंज ने। तो इस तरह से यहाँ पर गोल करने का सिलसिला जो चालू हुआ ये अभी तक चालू है। खेल के दूसरा मिनट, खेल के 25वां मिनट, खेल के 27वां मिनट में गोल होता गया झारखंड की तरफ से और झारखंड अब है 3 और यहाँ पर
बात करें बिहार का तो बिहार कोई गोल्ड नहीं कर पाई अभी तक। 3-0 की इस वक्त स्थिति है, लेकिन हालांकि बिहार के खिलाड़ी चोटिल होकर बहुत तारी गिर रहे हैं। तो इस वक्त दूसरा क्वार्टर का समय बहुत नजदीक है और तो 2-3 गोल हो चुका है झारखंड की तरफ से। खेल का दूसरा मिनट में संदीपा कुमारी ने किया, खेल के 25वें मिनट में मरियम भेंगड़ा ने किया, खेल के 27वें मिनट में रीचा मिंजी ने। और यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त इंजेक्शन की तैयारी झारखंड की तरफ से। एक और खतरे का बादल मंडराता हुआ यहाँ पर बिहार के ऊपर। ये क्या बॉल को रखा गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये जोरदार हिट, बहुत बेहतरीन ड्राइव लगाया गया था, लेकिन दिशा को नहीं दे पाए स्टिक से बॉल को, और गेंद निकल गई गोल पोस्ट के बाहर। दूसरा क्वार्टर का इस वक्त खेल इस वक्त समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और मैं बता दूं इस वक्त स्थिति जो है वो 3-0 की, लेकिन यहाँ पर खेल के निर्णायक बात कर रहे हैं। 2 अंपायर हैं, सोनाली सिंह और अंजलि राठौर। एक बार फिर पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया गया है झारखंड के लिए। लगातार इस वक्त दबाव बढ़ रहा है बिहार के ऊपर। इंजेक्शन की तैयारी झारखंड की तरफ से। इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया, और ये ड्रैग, फिर यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। लगातार झारखंड टीम पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित कर रही है। 0-3 की इस वक्त स्थिति है। इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया, यहाँ पर बढ़ा दिया गया साथी खिलाड़ी के लिए। एक मौके को तलाश रही है यहाँ पर, देखिए मौका और ही चूक गए यहाँ पर। बहुत अच्छा मौका था सुगुन सांगा के लिए। ये सुगन सांगा ने यहाँ पे गलती कर बैठी, और नहीं तो ये बिल्कुल चौथा गोल होता। ओपन यहाँ पर गोल पोस्ट थी, ऐन वक्त पर स्टिक के ऊपर गेंद आई नहीं। लंबा हिट मध्यरेखा के पास, पीछे सरका दिया गया यहाँ पर रक्षाबंदी के खिलाड़ी के लिए बॉल। एक बार फिर लंबा हिट ड्रिबल करते हुए पर यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी उनसे जूझ रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। मध्यरेखा को क्रॉस करते हुए इस वक्त बिहार के खिलाड़ी फीट मिलता हुआ बिहार को मध्यरेखा के पास। बिहार कोई गोल नहीं कर पाई है, और झारखंड 3 गोल। खेल इस वक्त दूसरा क्वार्टर का समाप्ति की ओर बढ़ता है। लंबा हिट यहाँ पर, और एक बार फिर सर्किल के ऊपर, झारखंड के सर्किल के ऊपर फीट मिलता हुआ बिहार को। और लेकिन यहाँ पर हुटर बजा, और यहाँ पर इस वक्त ये दूसरा क्वार्टर का हुटर बजने का संकेत।
नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, यहाँ पर एक संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है। दो पड़ोसी राज्य, एक तरफ से झारखंड और एक तरफ से बिहार की जो सब जूनियर गर्ल की टीम है, आमने सामने है इस वक्त। ताजा तरीन जो परिस्थिति है इस वक्त, झारखंड की टीम 0 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है यहाँ पर बिहार से। झारखंड एक ऐसा स्टेट जो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कुछ दिनों के बाद 26 वर्ष का हो जाएगा झारखंड का सफर। लंबा हिट, एक बार फिर झारखंड के खिलाड़ी बॉल के लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेफ्ट फ्लैंक से। यहाँ पर सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश हो रही है, गेंद जा रही है यहाँ पर शिवानी करकेट्टा बॉल लेके आगे बढ़ रही थी। फिर हिट मिलता हुआ यहाँ पर इंफ्रीमेंट हुआ बिहार को। तो बिहार 0, झारखंड 3। यहाँ सर्किल को प्रवेश करने की कोशिश, और इस वक्त यहाँ पर 2 अंपायर जो हैं, एक है तरफ से है सोनाली सिंह, दूसरी तरफ से है अंजलि राठौर। सोनाली सिंह मैं बता दूं ये यूपी से आती हैं, जबकि अंजलि राठौर मध्य प्रदेश। यानी 2 पड़ोसी राज्य की अंपायर इस वक्त यहाँ मैच को संचालित कर रही है, जबकि 2 पड़ोसी राज्य झारखंड बिहार की टीमें यहाँ पर खेल रही है मुकाबले को। हिट यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का खेल शुरू होता हुआ। लगभग 15,000 दर्शकों की बैठने की जगह है इस स्टेडियम में। तेज हिट, राइट फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश, और बहुत तेज यहाँ पर पास बढ़ाया गया था बिहार के खिलाड़ी के राइट विंगर के लिए, लेकिन पीछे रह गई और गेंद गया बाहर। कल झारखंड ने महाराष्ट्र को 6-0 से पराजित किया था। महाराष्ट्र की टीम भी कल पराजित हो गई थी, यहाँ पर बुरी तरह से हार गई थी। लेकिन आज यहाँ पर अगर कहा जाए तो अभी तक मुकाबला किया है बिहार की टीम ने, वो आत्मसमर्पण नहीं किया है। बिहार की खिलाड़ियों ने अपनी तर्मन धड़ से, अपनी पूरी लय के साथ नजर आ रही है बिहार की टीम। ये अलग बात है कि अभी तक बिहार की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ है। तीन 0 की स्थिति है। तीन 0, बहुत ही जबरदस्त इस वक्त खेल चल रहा है। पूरी लय के साथ खेल रही है यहाँ पर झारखंड की टीम। एक बार फिर यहाँ पर बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रही है, पर झारखंड की टीम यहाँ पर आक्रमण पनपता हुआ स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच गई है झारखंड की टीम। हमला पनप रहा है, लेकिन एक और मौके को तलाश रही है। पेनल्टी कॉर्नर का इशारा यहाँ पर झारखंड के लिए। आपसी मंत्रणा चल रही है खिलाड़ियों के बीच, झारखंड के खिलाड़ियों के बीच, किस तरह से इस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया जाए। इंजेक्शन के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाती हुई श्रुति कुमारी झारखंड की। आज श्रुति कुमारी ने गोल नहीं किया, लेकिन कल खेल के 27वें मिनट में तीसरा गोल किया था श्रुति कुमारी ने। इंजेक्ट किया श्रुति कुमारी ने, बॉल को बढ़ा दिया गया साथी खिलाड़ी के लिए। अभी भी मौके को तलाश रही है झारखंड की टीम, लेकिन ये मौका हाथ से निकला। 5 मिनट का खेल लगभग हो चुका है तीसरा क्वार्टर का। शून्य 3 की इस वक्त स्थिति है यहाँ पर। बिहार
कोई भी गोल नहीं कर पाई है बिहार की टीम, जबकि झारखंड की टीम ने 3 गोल किया है। अच्छा पास, हिट यहाँ पर गेंद गई बाहर। लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा है खेल के निर्णायक का इस वक्त झारखंड के लिए। पास टॉम हॉक यहाँ पर, अच्छा बचाओ। तो बहुत अच्छा बचा किया गोलकीपर ने, बहुत तेज टॉम हॉक लगाया गया था झारखंड के खिलाड़ी के द्वारा। एक बार फिर यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी अग्रसर होते हुए स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर 3 खिलाड़ी पहुंच चुकी हैं झारखंड के, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट वहां पर बिहार के खिलाड़ी का बॉल को खतरे से बाहर किया अपने क्षेत्र से। इस वक्त बिहार के खिलाड़ी ने फिट मिलता हुआ झारखंड को। झारखंड की तरफ से वहां प्रीति बिलूम तैयार हो रही है। प्रीति बिलूम ने बॉल को समांतर पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, सुगन सांगा के लिए। सुगन सांगा ने अपने और लेफ्ट में बॉल को बढ़ाया, गेंद एक बार फिर सुगन सांगा के पास। झारखंड के खिलाड़ी यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर एक बार फिर खेल होता हुआ बिहार के स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर एक अच्छा मौके को तलाश रही है झारखंड की टीम। एक बार फिर यहाँ पर हमला पनपता हुआ एक बेहतरीन मौके को तलाश रही है बॉल। एक बार फिर यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी के पास गेंद, और गेंद यहाँ पर गोल बाल से टकरा के सीधा जाल के अंदर टकरा गई, और यहाँ पर ये हुआ चौथा गोल। देखिए किस तरह से ये गोल हुआ। यहाँ पर देखिए ये गेंद आई, बहुत तेज हिट, प्रीति बिलूम ने ये गोल किया। तीसरा क्वार्टर का ये 6ठा मिनट में, यानी अगर हम बात करें तो ये 36वां मिनट है। 36वां मिनट में प्रीति बिलूम ने गोल किया है यहाँ पर। तो तीसरा क्वार्टर में, यहाँ तीसरा क्वार्टर के 36वां मिनट में गोल हुआ प्रीति बिलूम के द्वारा। अब वो स्थिति हो गई 4-0। बॉल लेके निकलने की कोशिश, राइट फ्लैंक से एक बार फिर हमला बनता हुआ झारखंड की तरफ से। गेंद एक बार फिर प्रीति बिलूम लेके निकलने की कोशिश कर रही थी, पीछे सरका दिया गया। अब यहाँ पर समांतर पास झारखंड के खिलाड़ी को बहुत अच्छा पास बढ़ाया था अंकिता लकड़ा ने, जो कप्तान है। लेफ्ट फ्लैंक से फिर अटैक बनता हुआ झारखंड का सर्किल के अंदर एंट्री करती हुई झारखंड की खिलाड़ी, और यहाँ पर देखिए एक बार फिर घूम रहा है बॉल स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, और यहाँ पेनल्टी कॉर्नर का इशारा है झारखंड के लिए। आपसी मंत्रणा चल रही है झारखंड के खिलाड़ियों के बीच, पेनल्टी कॉर्नर को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए गोल के अंदर। और एक बार बॉल लेके यहाँ पर ऋचा मिंज आगे बढ़ गई हैं। ऋचा मिंज ने जिन्होंने तीसरा गोल किया था खेल के 27वां मिनट में झारखंड की तरफ से। आज इंजेक्शन लेने की तैयारी ऋचा मिंज की तरफ के द्वारा। ऋचा मिंज को बुलाया गया है इस वक्त, शायद कुछ बात करती हुई ऋचा मिंज, और गेंद और एक बार गई फिर अपने स्पॉट पे, अपने स्थान पे ऋचा मिंज यहाँ पर इंजेक्शन के लिए तैयार। इंजेक्ट, अच्छा मौका है यहाँ पर, लेकिन ये खतरा टला। हाँ, तो स्थिति बहुत ही इस वक्त नाजुक है यहाँ पर, अगर कहा जाए तो बिहार के लिए। तो एक बार फिर अटैक करती हुई इस वक्त झारखंड की टीम। राइट साइड में एक पास बढ़ाया गया यहाँ पर, बहुत बेहतरीन पास। टॉम हॉक यहाँ पे, और ये टॉम हॉक बेकार। तो यहाँ पर परिस्थिति से जूझ रही है इस वक्त बिहार की टीम, और बिहार से जो
टिकली झारखंड की टीम, जिन्होंने एक 25 साल का सफर तय कर लिया है झारखंड स्टेट, उन्होंने, ये झारखंड की लड़कियां इस वक्त अपने बिहार को इस वक्त हॉकी का पाठ पढ़ाती हुई लंबा हिट यहाँ पर, और झारखंड की लड़कियों ने बिहार की लड़कियों को हॉकी का पाठ पढ़ाया। 4-0 बिहार की टीम अभी तक कोई गोल कर नहीं पाई है। डिपेंड अब करता है कि यहाँ पर जो 6 गोल से झारखंड ने पराजित किया था महाराष्ट्र को, उस 6 गोल के आंकड़े से कितना हद तक रोक पाती है बिहार की टीम यहाँ पर झारखंड को। अब बात यहाँ पे चली आई है, क्योंकि गोल होने की संभावना बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है बिहार की तरफ से, लेकिन हॉकी में कुछ कहा नहीं जा सकता कब से कब कोई टीम कैसा प्रदर्शन कर जाए। और यहाँ पर गेंद गई बाहर। लंबा पास विंगर के लिए, बॉल को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर बिहार के खिलाड़ी का, लेकिन अभी भी बिहार के खिलाड़ी के डिफेंडर के पास है बॉल। अच्छी खेलती है बिहार की लड़कियां भी, इतना आसान से इन्होंने समर्पण नहीं किया, आत्मसमर्पण। 5 मिनट 20 सेकंड का समय बचा हुआ है। प्रीति बिलोंग इस वक्त हिट लेने की तैयारी में। प्रीति बिलोंग जिन्होंने खेल के 36वें मिनट में गोल किया था, तीसरा क्वार्टर का। 5 मिनट का समय बचा हुआ है, यानी अगर हम बात करें समय की तो 40 मिनट का खेल हो चुका है अभी तक। पास एक बार फिर यहाँ पर झारखंड के खिलाड़ी बॉल पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिली वहां पर बिहार के खिलाड़ी को। इक्का दुक्का कभी आक्रमण बनता है बिहार की तरफ से, लेकिन अधिकतर जो है कहा जाए पोजीशन ऑफ बॉल है वो झारखंड के खिलाड़ियों के पास रह रहा है। झारखंड की टीम कोशिश कर रही है बिहार को हाफ मैदान के अंदर खिलाने की। ज्यादा अटैक बना, ज्यादा सर्किल पेंडेशन झारखंड की टीम के द्वारा किया गया। झारखंड सर्किल जो एंट्री करते हैं ज्यादा, और कभी कभी बिहार की टीम कोशिश करती है अग्रसर होने की, लेकिन वैसी कोई संभावना, कोई वैसा आक्रमण का पहलू नहीं नजर आ रहा है। झारखंड के खिलाड़ी के पास बॉल। झारखंड इस वक्त 4 बिहार 0। और यहाँ पर गोल होता हुआ, बेहतरीन गोल। यहाँ पर 5वां गोल डाला है। यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन सटीक निशाना साधा। आप रिप्ले में से देखिएगा कि कितना बेहतरीन, ये अच्छा शुगन, ये शांगा ने बॉल को बढ़ा दिया था साथी खिलाड़ी के लिए। देखिए किस तरह से गेंद आगे गई, यहाँ पर मौका निकाला। ये टॉम हॉक, बेहतरीन टॉम हॉक यहाँ पर अलमा भेंगड़ा के द्वारा, और गेंद गई इस वक्त गोल पोस्ट के अंदर, और अलमा भेंगड़ा ने ये तीसरा क्वार्टर का 12वां मिनट में गोल डाला। तो इसका मतलब ये हो गया 42वां मिनट में गोल हुआ। तो ये गोल किया अलमा भेंगड़ा ने खेल के 42वां मिनट में। अब स्थिति गोल हो गई कुल मिला के 5। एक गोल से पीछे है इस वक्त कल के स्कोरिंग से इस वक्त झारखंड की टीम। झारखंड की टीम बहुत मजबूत निकल कर सामने आई है, उभर कर सामने के दोनों मैच को यहाँ पर झारखंड की टीम ने पराजित किया है अपने प्रतिद्वंदी टीम को। जहाँ तक सवाल है यहाँ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ से जहाँ सवाल है बिहार। डिवीजन ए का पूल ए में है टीमें, ये थी बिहार का टीम और झारखंड की टीम और महाराष्ट्र की टीम।
तो तीसरा क्वार्टर का बहुत तेजी के साथ समय निकल रहा है, या यूं कहा जाए वक्त का पहिया बहुत तेजी के साथ घूम रहा है। और इस वक्त झारखंड की टीम बहुत मंजिल के नजदीक दिख रही है, यानी अब यहाँ पर से झारखंड जीत की ओर अग्रसर हो रही है। रेजिना कुल्ली के पास है बॉल, क्रॉस पास, अच्छा मौका यहाँ पर एक बार फिर झारखंड के लिए, अब पेनाल्टी कॉर्नर के इशारे। तो बहुत अच्छा इस वक्त मौका है झारखंड के लिए एक और स्कोरिंग को ग्राफ को बढ़ाने का। तो चलते हैं ग्राउंड के अंदर, देखते हैं क्या यहाँ पर इस वक्त आपसी मंत्रणा चली इनके बीच। यहाँ पर इंजेक्शन की तैयारी झारखंड की तरफ से, इंजेक्ट किया गया, ग्रीन यहाँ पर हिट, अच्छा मौका, ये गोल, छठा गोल, बेहतरीन डिफ्लेक्शन, छठा गोल होता हुआ और अब कल के आंकड़े को छूती हुई इस वक्त यहाँ पर झारखंड की टीम। अब झारखंड की तरफ से 6 गोल हो गया है। देखिए ये इंजेक्ट किया बॉल को रोका गया, बढ़ा दिया गया है साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर हिट किए लंबा, और यहाँ बेहतरीन देखिए इस किस तरह से यहाँ पर गेंद आई, रिबाउंड होकर उसको बहुत बेहतरीन तरीके से फिर डिफ्लेक्ट किया गया, और गेंद की गोल की संख्या हो गई अब 6। तो स्थिति है यहाँ पर जबरदस्त इस वक्त अब झारखंड के लिए। यहाँ पर इस मुकाबले को जीतना अब बहुत ही नज़दीक आ गई है मंजिल, और यहाँ पर 6-0 की जो परिस्थिति है ये दास्तां बयान करती है कि किस तरह से यहाँ पर गोल किया गया। तो अभी अभी जो गोल हुआ, ये गोल हुआ सुष्मिता गुड़िया ने किया है गोल अपने टीम के लिए, और सुष्मिता गुड़िया ने गोल किया ये खेल के 44वां मिनट में। तो इस तरह से गोल की संख्या होगी 6, और खेल तीसरा क्वार्टर का यहाँ चला गया है अंतिम समय में, और अब मात्र 30 सेकंड का समय बचा हुआ है। दूसरा मिनट के खेल के दूसरा मिनट में जो गोल करना का सिलसिला जारी हुआ झारखंड की तरफ से, वो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और लगातार वक्त समय की कालांतर में यहाँ पर गोल करती जा रही है झारखंड की टीम। और अब स्थिति है झारखंड 6 और यहाँ पर बिहार नील। दूसरा मिनट के खेल के दूसरा मिनट में जो गोल करना का सिलसिला जारी हुआ झारखंड की तरफ से, वो तो अब यहाँ पर तीसरा क्वार्टर का समय खत्म हुआ, और यहाँ पर तीसरे क्वार्टर के समाप्ति तक झारखंड की टीम है 6 गोल से आगे, बहुत दूर खेल हाथ निकल गया है यहाँ पर बिहार के हाथ से। और अब हम चलेंगे चौथे क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।
नमस्कार, स्वागत है आपका यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। और चलते हैं अब हम आखिरी क्वार्टर में चलते हैं, जहां पर मुकाबला इस वक्त शुरू हो गया है। इस वक्त झारखंड और बिहार के बीच दोनों टीमें इस वक्त जो है आमने सामने है, लेकिन मुकाबला अब कहा जाए तो एक तरफा हो गया है, क्योंकि जहां तक सवाल है झारखंड का इसने 6-0 की इस वक्त बढ़त प्राप्त कर लिया है, जो कहा जाएगा बिल्कुल अभी जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही है। इस वक्त झारखंड का बिहार इस मुकाबले में इस वक्त पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक बार झारखंड का फिर यहाँ पर आक्रमण का सिलसिला जो शुरू हुआ, मैं बता दूं दूसरा मिनट से जो गोल करना शुरू किया झारखंड ने, ये गोल करती गई झारखंड और अंततः यहाँ पर स्कोरिंग का ग्राफ पहुंचा दिया 6 गोल तक। और अब यहाँ पर झारखंड के लिए राहें बिल्कुल आसान हो गई है और निश्चित जो है झारखंड अपने ग्रुप में इस वक्त शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। अच्छा, यहाँ पर एक मौका है और ये मौका निकला झारखंड के हाथ से। तो परिस्थिति जो बतला रही है वो इसमें अब बिहार के लिए मौका नहीं है, लेकिन अंतिम समय तक जब तक हुटर बचता नहीं है कहना कुछ मुश्किल। लेकिन गोल का जो आंकड़ा है काफी ऊंचा आंकड़ा खड़ा कर दिया है इस वक्त झारखंड ने। बिहार के गोलकीपर सुंदा कुमारी जो कप्तान भी हैं इस वक्त पैड को ठीक करती हुई। सिक्स 0 झारखंड 6 और यहाँ पर बिहार 0। आखिरी क्वार्टर का खेल यहाँ पर चल रहा है और इस आखिरी क्वार्टर में क्या और कितना स्कोरिंग के ग्राफ को बढ़ाती है झारखंड की टीम, ये देखने वाली बात होगी। और किस हद तक रोक पाती है बिहार की टीम झारखंड के इन रन बांकड़ों को, कहां तक रोक पाती है। जो आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी है, खास करके सुष्मिता गुड़िया है, मरियम भेंगरा, अंकिता लकड़ा, ऋचा मिंट, इनको रोकना कहां तक आसान होगा, कहां तक ये सफल हो पाएगी बिहार की टीम। इन हॉकी के योद्धाओं को रोकना, ये एक बार यहाँ पर फिर लंबी हिट गोलकीपर ने बचाया। अच्छा मौका है एक बार फिर झारखंड को गोल करने का, लेकिन पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा खेल के निर्णायक का। तो स्थिति इस वक्त है 6-0 और यहाँ पर एक और मुसीबत आती हुई बिहार के लिए, या यूं कहा जाए संकट के बादल गहरे होते हुए। एक पेनाल्टी कॉर्नर यहाँ पे अर्जित कर लिया है झारखंड ने। और अब यहाँ पर जैसे की तैयारी, झारखंड बहुत तेजी के साथ इस वक्त जीत की ओर अग्रसर है। इंजेक्शन लंबा, बहुत तेज ड्रैग फ्लिक और यहाँ पर गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया गया। वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन ऑफ पेनाल्टी कॉर्नर इनटू गोल। देखिए आप रिप्ले में देखिए इस तरह से गोल हुआ। ये इंजेक्ट बॉल को रोका गया और यहाँ पर बेहतरीन ड्रैग फ्लिक, गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर, गोलकीपर को मात देती हुई। बहुत ही स्वच्छ क्लीन गोल हुआ, 7वां गोल हुआ झारखंड की तरफ से। और चौथा क्वार्टर के तीसरा मिनट, अगर हम बात करें तो खेल का 48वां मिनट में यहाँ पर गोल हो गया है, ये 7वां। समय के कालांतर में इंटरवल टू टाइम यहाँ पर गोल करती नजर आई। यहाँ जहां तक सवाल है आज का इस मुकाबले में, यहाँ पर जो टीम है इस वक्त जो बिहार, झारखंड की टीम बिहार के विरुद्ध काफी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन बिहार के, यहाँ झारखंड के खिलाड़ियों के द्वारा बिहार के विरुद्ध। तो परिस्थिति इस वक्त अपने पक्ष में करके रख लिया है यहाँ पर
झारखंड की टीम ने और यहाँ मुकाबला हाथ से दूर निकल गई है। तो इस परिस्थिति से उबरने के लिए यहाँ पर बहुत ही जीतोड़ मेहनत, लेकिन वक्त तकाजा है कि बहुत कम समय बचा है यहाँ पर बिहार के लिए। लेकिन बिहार के खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को मैदान से शायद बाहर भेजा गया। और यहाँ पर देखिए क्या स्थिति बन रही है। ग्यारह मिनट 14 सेकंड का समय बचा हुआ है। 7 गोल की बढ़त इस वक्त झारखंड के खिलाड़ी के पास बॉल है और गेंद के लिए इस वक्त यहाँ पर बिहार के खिलाड़ी के पास अपने क्षेत्र में खेलती हुई बॉल को पीछे सरका दिया गया। गेंद एक बार फिर बिहार के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसी तालमेल, सामंजस्य और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, ये सभी चीजों का कमी देखी बिहार के अंदर। वो भावना, वो खेल का जज्बा जरूर है बिहार के खिलाड़ियों के अंदर, लेकिन आपसी तालमेल की साफ कमी नजर आ रही है। अभ्यास की कमी भी दिख रही है, क्योंकि कहा जाता है कि सोना जितना आग में तपता है उतनी ही उसके अंदर चमक होती है। जितनी ही कोई टीम अभ्यास करेगी और अगर वो अभ्यास में पारंगत हो जाएगी तो खेल के अंदर उतना ही निखार पैदा होगा। गेंद गई बाहर। तो इस तरह से झारखंड की टीम ने जो खेल दिखलाया है आज, काबिल तारीफ। खेल के हर मोर्चे पर यहाँ पर बिहार को पछाड़ा है। चाहे हम पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने की बात करें, सटीक पास बढ़ाने की बात करें, मिडफील्ड से आगे बढ़ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात करें, इस सारे चीजों को आज समावेश, स्कूप की बात करें, देखने को मिला झारखंड के खिलाड़ियों में। इस बीच एक बार फिर और एक झारखंड का हमला पनपता हुआ यहाँ पर डी के अंदर पहुंच गई झारखंड की टीम। यहाँ पर टॉम हॉक लेने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मौका पोजीशन नहीं बना पाए झारखंड के खिलाड़ी। गेंद गई इस वक्त बाहर। 9 मिनट 29 सेकंड का समय बचा हुआ है। 6 मिनट का खेल हो गया। 7-0। तो इस तरह से जो है अब खेल कहा जाए औपचारिकता ही रह गई है, लेकिन जहां तक प्रश्न है, जब तक अंतिम घूंटा नहीं बच जाता है कहना मुश्किल। लेकिन गोल का स्कोरिंग का जो ग्राफ जो है वो बतला रहा है कि झारखंड की टीम एक बहुत ही इस वक्त आराम की स्थिति में है और अपने पत्ते को खो दिया। झारखंड की टीम ने खेल के हर मोड़ पे परास्त किया है यहाँ पर बिहार को। तो इस तरह से यहाँ पर जो आक्रमण हुआ वो देखने लायक था आज। कल भी यहाँ पर झारखंड की टीम ने महाराष्ट्र के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आज बहुत ही बुरी तरह से इस वक्त पराजित करती हुई नजर आ रही है बिहार को झारखंड की टीम। कुल गोल की संख्या है 7। खेल के दूसरा मिनट में जो संदीपा कुमारी ने गोल करना शुरू किया, उसके बाद लगातार सिलसिला बढ़ता गया। खेल के फिर 25वां मिनट में गोल हुआ, फिर खेल के 27वां मिनट में गोल हुआ, फिर हुआ गोल जाके 36 मिनट में, फिर 42 मिनट में और अभी भी पहले कुछ देर पहले 48 मिनट में। प्रीति बिलुंग ने आज 7 गोल में 2 गोल अपने नाम किया है झारखंड की तरफ से। प्रीति बिलुंग एक बहुत ही यहाँ पर जुझारू खिलाड़ी नजर आई। 7-0 आधे समय का खेल हो चुका है, 8 मिनट का। अब 7 मिनट 40 सेकंड का समय बाकी है चौथा क्वार्टर खत्म होने में। सूरज पश्चिम की ओर लगातार बढ़ता हुआ अपने नियत डूबने वाले स्थान पर यहाँ पर तैयार है। सूरज डूबने को पश्चिम की ओर लालिमा बढ़ रही है और आप स्टेडियम के ऊपर से देख सकते हैं जो हरे भरे पेड़ है। वहां पर दिन भर की थकान के बाद पंछी आशियाने की तरफ लौटते हुए, इक्का दुक्का कभी कभी देखा जाता है कि यहाँ पर पंछियों का
चहचहाना जारी अब हो जाएगा शुरू, क्योंकि शाम ढलते ही ये पक्षी अपने आसानी की तरफ लौटते हैं और इनका कलरव सुनाई पड़ता है। और बहुत ही मनोहर दृश्य भी है इस स्टेडियम का। एक तरफ आप लंबे लंबे हरे पेड़ देख सकते हैं और यहाँ पर फिलहाल एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई झारखंड की टीम संकट के बादल गहरे होते हुए बिहार का, यूं कहा जाए बिहार का हॉकी रूपी कश्ती है, बिल्कुल अब भंवर में फंस चुकी है बीच समंदर में। और अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल, भंवर में बिल्कुल फंसती हुई कश्ती, हॉकी रूपी कश्ती इस वक्त बिहार का। अब मंजिल इस वक्त नजर आ रही है यहाँ पर सामने झारखंड का, जीत की ओर अग्रसर। गोलकीपर का अच्छा बचाव, एक और मौका है यहाँ पर और ये गेंद गई बाहर। सुंदर सलोनी शाम ढलने को तैयार, पश्चिम की ओर लालिमा बढ़ती हुई, इस बात का संकेत कि सूरज अब डूबने वाला है और यहाँ उम्मीदों की शाम ढल चुकी है बिहार का, क्योंकि बिहार शून्य के मुकाबले 7 गोल से इस वक्त पराजित होती हुई नजर आ रही है। बिहार के खिलाड़ी शिवानी कुमारी ने लंबा हिट लगाया था, लेकिन अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पे झारखंड के खिलाड़ी का। झारखंड के यहाँ पर खिलाड़ी प्रीति बिलूम के पास है बॉल। प्रीति बिलूम मैं बता दूं जैसे नंबर 13 में जिसको आप देख रहे हैं, इन्होंने आज 2 गोल किया है झारखंड की तरफ से। खेल के 36वां मिनट में पहला गोल और खेल के 48वां मिनट में अभी अभी जो अंतिम गोल हुआ प्रीति बिलूम ने ही डाला था। कुल गोल की संख्या है 7। जो दूसरा मिनट में गोल करने का सिलसिला जारी हुआ झारखंड की तरफ से, वो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और लगता है इस तरह से कि झारखंड को अभी तक गोल करने की भूख कम नहीं हुई है। झारखंड के अच्छा पति के खिलाड़ी के पास बॉल, 5 मिनट 20 सेकंड का मात्र समय बचा हुआ है। परिस्थितियों से इस वक्त जूझ रही है बिहार की टीम और अब यहाँ से ये बात का बिल्कुल संकेत हो गया है कि पूल ए में, डिवीजन ए में टॉप पे पहुंच गई है झारखंड की टीम 6 अंक लेकर। दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र की टीम। तो इस तरह से पूल ए में है झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र की टीम। यहां से इस मैच की समाप्ति के बाद धुंध साफ हो जाएगा कि क्वार्टर फाइनल में इस टीम के साथ खेलेगी। कौन सी टीम के सामने कौन सी टीम होगी मैं बता दूं, कल विश्राम का दिन है और जो मुकाबला होगा 9 तारीख को, क्वार्टर फाइनल पहला मुकाबला होगा सुबह 7 बजे। फर्स्ट पूल बी, यानी पूल बी में जो पहले स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है यहाँ पर उड़ीसा की टीम। सेकंड पूल ए में जो सेकंड है, सेकंड में यहाँ पर है महाराष्ट्र की टीम, यानी उड़ीसा के सामने होगी महाराष्ट्र की। बात करें हम क्वार्टर फाइनल 2 की अगर बात करें तो फर्स्ट पूल सी में पहले स्थान पर रहने वाली टीम है यहाँ पर मध्य प्रदेश की टीम। और सेकंड पूल डी, यानी पूल डी में जो दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है यहाँ पर मिजोरम की टीम, यानी मध्य प्रदेश का मिजोरम से मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल 3 में है फर्स्ट पूल डी, यानी डी में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश की टीम और इनका मुकाबला होगा सेकंड पूल सी। पूल सी में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम है हरियाणा की टीम। उत्तर प्रदेश का मुकाबला होगा हरियाणा से। और अंतिम मुकाबला होगा जो शाम का 4 बजे मुकाबला होगा फर्स्ट पूल ए, यानी पूल ए में पहले स्थान पर, और यहाँ पर है झारखंड की टीम है पहले स्थान पर। सेकंड पूल बी और जो पंजाब, यानी झारखंड का मुकाबला पंजाब से होने वाला है। अब दिल थाम के रहिए और यहाँ पर मुश्किलें लगती है कुछ आसान हो जाएगी, क्योंकि पंजाब का प्रदर्शन जैसा रहा उससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि झारखंड को कुछ ज़्यादा अच्छी खासी परेशानी होगी उस मुकाबले को जीतने के लिए। तो अब यह रास्ता आसान लग रहा है, यहाँ पर सेमीफाइनल के लिए रास्ता खुलता हुआ झारखंड का, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जब तक यहाँ पर खेल नहीं हो जाता कहना मुश्किल, क्योंकि ऐसा लग रहा था जब हरियाणा का खेल हो रहा था आज मध्य प्रदेश के, तो हरियाणा लग रहा था अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करेगी, लेकिन हरियाणा की टीम
आज ये बिल्कुल बेबस नजर आई मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश ने 5-1 से पराजित कर दिया हरियाणा को। तो सफलता अभी भविष्य के घर में छिपा हुआ है। तो लेकिन जो क्वार्टर फाइनल का 9 तारीख को मुकाबला होगा, अंतिम मुकाबला होगा, वो झारखंड का इस ग्राफ के मुताबिक पंजाब से होना चाहिए। चलेंगे टेक्निकल क्या यहाँ पर होता है, क्या प्रगति आती है, क्या प्रोग्रेसिव शेड्यूल बनता है, उसकी तरफ हम चलेंगे। ये तो मैं अपने अनुभव से बताया, मैंने अपने ग्राफ के जो स्कोरिंग का ग्राफ के उसके अनुसार मैंने आपको बताया। लेकिन टेक्निकल क्या आती है, जब तक फाइनल ग्राफिंग नहीं हो जाती है कहना मुश्किल। लेकिन ये था मेरा जो है टेंटेटिव जो है ये मेरा अपना ग्राफ। तो चलते हैं खेल की तरफ। अब 2 मिनट 16 सेकंड का समय बाकी है। उम्मीद है ये जीत की देवी दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही। इस वक्त झारखंड का खेल बिहार के हाथ से निकलता हुआ है। शाम सुंदर सलोनी शाम अब बिल्कुल इस वक्त ढलने को तैयार है। सूरज अस्त होने वाला है, लालिमा बढ़ रही है इस वक्त पश्चिम की तरफ, आप देख सकते हैं। खुला मौसम रहा आज यहाँ रांची में, झारखंड की रांची में। 4 बजे एक और मुकाबला वहां भी चल रहा है, राजगीर में भी डिवीजन 1 का आखिरी मुकाबला चल रहा था। तो यहाँ पर तो अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। झारखंड की टीम यहाँ पूल ए में टॉप पे चली गई है और दूसरे स्थान पे रही है महाराष्ट्र की टीम। मौसम आज बिल्कुल शांत रहा और बहुत ही सुचारू रूप से खेल ये आयोजन हो रहा है। मैं बता दूं, इस आयोजन में हॉकी इंडिया, हॉकी झारखंड, स्टेट शाई झारखंड, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, झारखंड की इकाई, खेलो झारखंड और झारखंड गवर्नमेंट के संयुक्त तत्वाधान में ये मुकाबला बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। आज हम मुकाबले का 7वां दिन, अब खेला चला गया है आखिरी मिनट में यहाँ पर। तो अब मात्र कुछ सेकंड का समय बचा हुआ है, मैच समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पर अभियान इस वक्त झारखंड ने बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों मुकाबले को जीत के समाप्त किया है। पूल ए में झारखंड की टीम थी और बिहार की टीम और यहाँ पर महाराष्ट्र की टीम। झारखंड ने अपने दोनों पूल ए के दोनों मुकाबले को जीत लिया। यहाँ पर अब बिल्कुल नज़दीक जीतने की कगार पर है, जबकि महाराष्ट्र एक मुकाबला जीती, एक मुकाबला हारी। तो झारखंड पूल ए में शीर्ष स्थान पे चली गई। और ये गोल, 8वां गोल होता हुआ झारखंड की तरफ से। स्कोरिंग के ग्राफ को झारखंड ने जो बढ़ाया, खेल के दूसरा मिनट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अंतिम सेकंड का खेल चल रहा है इस वक्त। 8वां गोल होता हुआ झारखंड ने अपने अभियान को समाप्त किया यहाँ पर 8 गोल से एक तरफा मुकाबला जीत करके। और यहाँ पर हूटर बजा ये बताते हुए कि यहाँ पर झारखंड ने एक बहुत धमाकेदार जीत दर्ज की है। बिहार के विरुद्ध 0 के मुकाबले 9 गोल से पराजित करके यहाँ पर बैक फुट पे जाने को मजबूर किया है बिहार को। हॉकी का पाठ पढ़ाया झारखंड की लड़कियों ने बिहार की लड़कियों को। यहाँ पर जरूरत है बिहार को अपने प्रदर्शन को सुधार करने का। कोच की चिंताएं जरूर बढ़ेगी बिहार के कोच को। तो अब यहाँ पर 9-0 की उपस्थिति है, ये बताते हुए कि यहाँ पर झारखंड ने बिहार को 0 के मुकाबले 9 गोल से पराजित कर दिया। मैं शमी आलम आपको अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ जो हमारे साथ कमेंट्री कर रहे थे, आप पूरी टेक्निकल टीम, आप प्रोडक्शन हेड उदय कौशिक के साथ मैं आपको हॉकी इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस लिए चलता हूं। नमस्कार, थैंक यू।